We invite your active participation. Please free to note down your questions for the QA session that will follow. Let's begin. Over to you, Mr. Gupta. Good noon, everyone. सबसे पहले I want to thank everyone to be part of this important discussion because किसी भी civilization के growth के लिए important है कि वो कितना energy consume कर रहे हैं. And here we are here to talk about maize, which is a wonder grain. And the topic of this session is the demand puzzle shaping the future of maize and emerging grain alternatives. ये टॉपिक ना केवल किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज मेज इज वन ग्रेन वेयर फूड, फीड एंड फ्यूल all integrate together. Food in terms of direct consumption, feed in poultry and cattle, and in turn through byproducts DDGS, and fuel through ethanol and other industries. And to discuss about this, we have a very esteemed panel in front of us. We have on my right hand side Mr. P.S. Ravi, Mr. Naveen Kumar Patle, Mr. S.K. Shukla, and Arumal Jokshi, who represent different sectors of the industry. And in next 1 hour 30 minutes, we are going to talk about the various aspects of maize. The format in which we are going to continue, I will request all my co-panelists to talk about their views on the sector, about the industry for 2 to 3 minutes, giving their brief introduction. And after that, we will go to various questions, and then we will go to the audience for Q&A session, and we'll try and amalgamate everything together to come up with the closing remarks about the session. But to set the tone of this session, I will start with the basic numbers which were presented in the last session. We spoke about maize production is around 35 million ton. We should be proud of it. But alongside, we should see what is the maize production of US, China, and how much maize consumption is there in Brazil, and the per capita maize consumption which is associated with various other geographies. Today, approximately global maize production is around 1200 billion metric ton, 1.2 trillion tons. Okay. Out of that, US produces around 1.2 billion metric ton. Out of that, US produces around 400 million metric ton, China around 300, Brazil around 140, and India produces around 35 million metric ton. In terms of consumption, China consumes around 300 million metric ton, Brazil around 100 million metric tons of maize, and Indian consumption is around 35 million metric ton. India was a net exporter till 2020-21, and with the ethanol revolution taking place in the country, our S&D has become, steady supply and demand situation has become extremely volatile, extremely tight. Weather last year was quite benign, and because of that we had farmer choice. हमारे किसान ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया कि they have gone for maize cultivation across the country because it was a remunerative crop. Number 2, maize is a crop of technology. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन होता है, मेज का यील्ड ऊपर जाता है. एंड दीज फैक्टर्स हैव लेड टू मेज प्रोडक्शन इंक्रीज इन द कंट्री. परंतु हमारी पिछली प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि मेज का इंडिया में डिमांड लगातार बढ़ने वाला है. अगर एथेनॉल का हमें E20 मेंटेन करना है, फ्यूल कंजम्पशन ग्रोथ इंडिया में 6 to 8% है, इकोनॉमी इज गोइंग टू डू बेटर, तो फ्यूल का ब्लेंडिंग भी बढ़ने वाला है. साथ में पोल्ट्री अगर सेक्टर देखें, इट इज ग्रोइंग बिटवीन 6 to 8%. If we look at starch, it is also growing directly in line with the, if I'm not wrong, with the economy, which is around 6 to 7%. So all the sectors which are consuming maize are going up. If entire industry is growing between 6 to 8%, that means we'll have to grow at least 6 to 8% in main production. Can we do that? अभी area तो बढ़ नहीं सकता है. Can yield give that response of 6 to 8%? If not, or if yes, these are the two situations which will emerge after the discussion. If answer to those questions are yes or no, then we will need to plan for the future. Because I will like to bring one very important point of reference to us, that today we are in phase of assisted growth, where world wants us to grow, where people are looking towards alternative to China, that how India will respond.
But once we will become a country of size and scale, we'll have a resisted growth where world will not want us to grow. And if we have to plan for 20 years ahead of us, we'll have to start doing it today. Are we in position to do it? And we are going to solve this puzzle of grains through medium of maize, because maize is a wonder grain. And that is where I will like to uh, leave the floor open for all my panelists, and we are starting with introduction of 2 to 3 minutes with their views on the sector, with their views on the topic, and then we will go on the individual questions. Please, over to you, sir. Good morning. Thanks, Mr. Sumit, for setting the context. I am P.S. Ravi, Director Downstream from Federation of Indian Petroleum Industry, and I have worked in the oil industry in the past for the last 36 to 37 years. Mr. Sumit rightly pointed out that the key question is about the need for energy for a developing country like us. It is estimated that probably in the next decade, the energy requirement, per capita energy requirement in our country is likely to double. If that is so, one of the major component of this energy demand is going to come from mobility, that is transportation. And if you look at mobility, currently the energy is coming basically from liquid fuels, that is petrol and diesel. Going forward, with our energy doubling, same is the thing which is going to happen in transportation, that is in the mobility. In fact, the growth could be even higher. That means the need for liquid fuels will continue to grow over the next decade. So despite interventions in the form of alternate energies, I'm talking of from mobility perspective, alternate energies in the form of electric vehicles, gas of course is picking up, but still it is around 6 to 7% of the total energy demand, and maybe tomorrow hydrogen, but then a lot of technological innovations need to happen in the space. So at least for the next, since the summit is about the next 5 years, I don't see a big change or a big impact coming on the liquid fuels. So the liquid fuels is here to stay and it will continue to grow. As he said, 6 to 7 or 8%, it's going to continue to grow. If this is the case, definitely the need for biofuels, particularly ethanol, which we have achieved in the last 6 to 7 years, the kind of blending which we have achieved, so the quantum of ethanol and the blending percentage is only going to see an increase in the next 5 years. If we were to look at from where is this, so around in 2018-19, the ethanol consumed by the oil industry was 200 crore liters, roughly, approximately. Around, to be precise, it's 190 crore liters, but let me round it up to 200 crore liters. This year, the ethanol consumption is going to be of the order of 1,100 crores, which is more than 5 times in less than 5 to 6 years. In 18-19, I said 200 crore. In that 200 crore, the ethanol from grain was negligible. It was hardly 10 crore liters. So not even 5% of the total ethanol which the oil industry consumed was, the grain industry contribution was less than 5%. Coming to 21-22, its contribution increased to 10%. That's all. Again, where is maize in both these times? Maize was not there. But then, thanks to the incentives and active promotion of maize, from 21-22, when maize contribution in ethanol was nil,
This year, in out of the 1100 crore liters, the contribution of maize, that is ethanol from maize, is roughly 450 crore liters. So roughly 40% of the ethanol today is coming from maize. That means in 1819 the mainstay for ethanol blending program was the sugar industry. We have seen in the last 3-4 years the sugar industry's contribution is roughly around 350 to 400 crore liters, around 40%. And we have seen that in good seasons, probably it can, a good year of monsoon, it can probably add another 50 to 70 crore liters at best. So the rest, with 1100 crore liters requirement this year for 20%, and with the next 5-year roadmap for ethanol blending program likely to come, so the requirement of ethanol is only going to keep going up. And if it is going to go up, the only way it can come predominantly is, so maize has to play a very, very big role. So I feel that maize, as you rightly said, Mr. Sumit, is a wonder crop which surely we are looking forward to help meeting the energy demand of our country. Thank you. हाँ पाटले जी, नवीन जी, Yeah, hello. Myself, Naveen Patle. I'm from Godrej Agrovet, handling the strategic collaboration and new commercialization role. And I am honored to be the part of this panel discussion here with the all esteemed dignitaries. I want to start, although some data of the maize crop production and area has been given, but just I want to reiterate one more time for the clarity purpose. So right now, our total corn area is almost 12 million hectares in India. Our production is somewhere 42 million metric tons, and this has been growing with some rapid pace in recent years, last 1 and 2 years. The maize area has grown very rapidly. To give the clarity, our maize area in last 5 years is grown with the 4.5% CAGR. The production is grown with the 7.5% CAGR and productivity 2.4% CAGR. The growth in the maize area is happened because of few reasons. First is clear government policy on national, because of the national policy on biofuel. Our E20, 20% blending mandated by the government in petrol, which rightly pointed out by the Raviji, that we need almost 1,360 crore liters of ethanol to fulfill our fuel ethanol blending requirement, plus supplying the ethanol to the other industries like the pharmaceutical industries or maybe the alcohol industries. So almost to achieve our objective of 2025, 25 and 26, 1,000 crores liter of ethanol, we need huge capacities and supplies for the of the corn. I want to quote Mr. Gulati, who is the chairman of CLIPMA. He has pointed out the current demand. So our current maize demand for 2024-25 was 47.51 million metric ton. So our supply is 42, our demand is 47.5. So there is a demand to supply gap of almost 5.5 million metric ton. Out of this, almost 58% goes towards the poultry and animal feed. Somewhere 12 to 13% goes for the starch production, and almost 15 to 16% of maize is required for the ethanol production, and remaining goes for the fresh consumption purposes. So this is the current scenario where our demand to supply gap is almost 5.5 million ton. As I told you, there has been increase in corn acreages, which is supported by the national policy on the biofuel, plus also the support from the government to farmers by increasing the MSP. So MSP is 2,250, which has been increased, and the mandi price were even better than that, almost 2,400 rupees per quintal. The price were in the market. So that leads that farmer moved from some other crops like soybean to corn. And they were earned good remuneration by moving
the areas and towards the corn. And this trend, because I come from the agrochemical industry also, so we are seeing this same thing on the ground, that farmers are moving from some crops like soybean or pulses. They are moving towards the corn because of the better productivity, better income, and these trends we also see in future will be continue. Talking about the future demand, so one of the dignitaries also talked about the E30 mandate. Maybe by 2029-30, government might give phase-wise blending mandate to increase the 30% of ethanol in petrol. And if we talk about the industry growth rate, specifically in the feed industry, poultry feed, and if that grows with a 6 to 7% CAGR growth rate, so against our current demand of 47 million metric ton, that will definitely grow to 65 to 70 million metric ton. So there is then it will be huge demand and supply gap. Against the current supply, the demand will increase by more than 50%. So for this, to meet this demand gap, definitely we have to work together, government policies, and the industry. We should work together to fill this energy gap. Thank you. We have started with very informative inputs from the demand point of view. I would like to potentially go to Arumal to talk about the trade side of and his context of the maize industry. Yeah, thank you, Sumit. First of all, let me thank FICCI for organizing such a wonderful summit. I think this is the 11th edition and going strong every time. Yeah. I have been a participant in this FICCI summit almost from the first Maize summit. I was sitting there. So the topic of the discussion has evolved over the last 11 years. That is what I have observed. In my first Maize summit, the discussion was about how India can export more corn from the country. I mean, that was the time when 3.5 to 4.5 million metric ton of corn used to get exported, especially to the Southeast Asian countries. And the parallel discussions used to be about how can we develop a crop in Bihar, how can we develop crop in Madhya Pradesh, and all those things. Then over the last 10 years, what we have seen is that, okay, the export story is gone. And now we are talking about the demand outstripping, the domestic demand especially, outstripping the domestic supply of corn. We have been hearing about numbers from Yes Bank presentation from the fellow panelists that Naveen, you talked about somewhere between 65 to 70 million metric ton of demand probably in the next 5 to 6 years. The current crop as per government numbers is 42.5, and probably as per many private numbers is somewhere between 35 to 40. So we are now talking about a gap of how to bridge a 35 million tons of demand as far as the Indian maize sector is concerned. And how will we bridge this demand? Of course, part of the story is about increasing the domestic production. Some acreages can come in, some yield part can come in, but can acreages plus yields in India plug this 35 million ton story? I have my reservations. I mean, if it happens, that is a great thing to happen. But my personal bias is that, somewhere down the line, India is going to become structurally deficit in this maize. I mean, because the demand side is growing. Not only the poultry, starch industry, the ethanol industry. I mean, all the sectors are growing. And my personal bias is that over a period of time, India is going to get dependent on imported corn. Of course, we are now talking about 35 million tons deficit. Can the world supply 35 million tons of non-GMO corn at this point of time? Because the current regulations allow only the import of non-GMO corn. I mean, Ukraine can give maybe 3-4 million tons. Myanmar can give probably 500,000 to 1 million tons. So 3.5 to 5 million tons can come from imports. So there is still a gap of 15-20 million tons. I mean, even after factoring in for some increase in the domestic production. So the entire story has to consider this long-term perspective in mind. I mean that is where I will set the tone at this point of time, and I will wait for the other panelists and the follow-up discussions. I think this is a puzzle that, as an industry, as all stakeholders, we will have to solve
over the next 5 to 10 years. So thank you. Shukla sir, over to you. My name is S.K. Shukla. I am the business head of India Glycols Limited and president of UP Distillers Association. मेरे साथ कुछ किसान भाई बैठे हैं तो मैं चाहूँगा कि अपनी बात उन तक पहुँचाऊँ। मक्के की बात हम करते आ रहे हैं और हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो भी काफ़ी आगे जा रही हैं जिससे कि इसके प्रमोशंस को हम बढ़ा सकें। हम चूंकि एक सिरे पे हैं जो मूल रूप से मक्के को कंज्यूम करते हैं, तो मेरा दर्द कुछ किसानों के साथ ज़्यादा ही गहरा है। मक्का आवश्यक है एथेनॉल के लिए और उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है किसान के लिए। और जैसा कि मंत्री जी अभी कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस धरती माँ की है जिसको कि हम कैसे कर सकें। तो बहुत कुछ इकोसिस्टम अभी हमारे परिदृश्य से बाहर है जहाँ तक हम अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन चीज़ों को बचाने के लिए जिन पे काम करने की ज़रूरत है। पहला जो मेरे समझ से वो है जिसकी बात सारे लोग करते हैं कि हमें उत्पादकता बढ़ानी चाहिए, जरूर बढ़ानी चाहिए। देश की मांग है, एथेनॉल की मांग है, इंडस्ट्री की मांग है, लेकिन किससे? उस लैंड से, उस मिट्टी के लिए भी हमें कुछ काम करना चाहिए। तो मैं ज्यादा डिटेल में तो अभी नहीं जाऊंगा, जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उस पर जरूर जाऊंगा, लेकिन इस पे भी हम जरूर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि किसान के लिए, कंट्री के लिए हाउ द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज इंपॉर्टेंट और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए एमएसपी की बात सब करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन किसान की लागत और किसान की सुविधाएं कैसे कम हो सकती हैं, ये भी एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस पे बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम उनकी लागत कम कर सकें। तीसरी बात, सुविधा, मैन पावर डिपेंडेंस, श्रमिकों की कम से कम भागीदारी हो, उस पे भी बहुत जरूरी है काम करना कि पूरा इंटायर सप्लाई चेन में अगर हम, जैसे कि जाट साहब ने कहा था कि हमें मैकेनाइजेशन पे काम करने की जरूरत है, और विश्व में जो देश आगे हैं या उनका ग्राफ अभी आपने आगे देखा होगा, उनके मैकेनाइजेशन सिस्टम को जरूर फॉलो करना चाहिए और उस पे भी करके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना चाहिए। बहुत सारे वर्टिकल्स हैं हमारे जिन पे भी इक्वली काम करने की जरूरत है। जैसे मंत्री जी ने अभी डीडीजीएस पे कहा, डीडब्ल्यूजीएस पे कहा, एक तरफ वो फीड जो देश को एनर्जी दे रहा है, दूसरी तरफ उसका बाई प्रोडक्ट जो हमारे केटल्स को, हमारे जानवरों को चारा दे रहा है। एक ही मक्के से 13 लाभ मिल रहा है। ये सोचने की बात है। उस मक्के से हम अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहे हैं एथेनॉल के लिए, उस मक्के से के वेस्ट से हम कैटल फीड को भी दे रहे हैं। वो काफ, पत्ते, वो जड़ें जो धरती माँ को ज्वलंत जीवन दे रही हैं, इन पे भी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। तो इन सब के साथ मैं चाहूँगा, अपनी बारी का वेट करूँगा जब आप पैनलिस्ट जो मॉडरेटर हैं कहेंगे, तो मैं कुछ और चीज़ों पर प्रकाश डालूंगा। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। सर, आपने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा। अगर हम अभी तक जो पिछले आधे घंटे में हम कहाँ पर आए हैं, हमने ये देखा मक्का की डिमांड बढ़ने वाली है। वो हमारे पोल्ट्री सेक्टर के पैनलिस्ट और एथेनॉल सेक्टर दैट इज फ्यूल, उन दोनों में डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है, 6 से 8%। ट्रेड इंडिया में पोटेंशियली इट इज सीम्स लाइक वी मे बिकम इम्पोर्ट डिपेंडेंट, वी मे, आई एम नॉट सेइंग फॉर श्योर, वी मे, ओके। और व्हेन वी कम फ्रॉम द फार्मिंग प्रैक्टिस, तो हमको केवल कॉस्ट, केवल एमएसपी प्राइस के तौर पे नहीं जाना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या ये किसान के लिए अच्छा है,
क्या ये धरती के लिए अच्छा है, और ये क्या भारतवर्ष के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर ये तीनों चीजें होगी तभी ये देश के लिए अच्छा होगा। इन सब चीजों को देखते हुए मैं आपके सामने कुछ नंबर रखता हूं, एंड देन आई विल गो विद अ क्वेश्चन टू ऑडियंस, एंड देन आई विल गो टू अ क्वेश्चन टू शुक्ला सर अबाउट दैट। मेज, आज अगर हम, जो हमारे पैनलिस्ट ने बोला 6 से 8% पे ग्रो करते हैं इंडस्ट्री, तो अगले 9 साल में हमारी डिमांड डबल हो जाएगी, चाहे वो 35 मिलियन है चाहे वो 40 मिलियन है। दैट मीन्स अगले 8 से 9 साल में हमें 40 मिलियन टन मक्का और चाहिए इस देश में। सेकेंड क्वेश्चन, अगर ये डिमांड बढ़ने वाली है, इंडिया की एग्रीकल्चर की सक्सेस हमेशा ये रही है कि हमारे यहाँ फार्मिंग के साथ पशु आहार, और हमने हमेशा एनिमल्स के ऊपर बराबर ध्यान दिया है, क्योंकि हमारी ये कैटल बेस्ड इकोनॉमी है। तो मक्का जैसे फ्यूल और फीड को पुश कर रहा है, वैसे ही वो कैटल इकोनॉमी को भी आगे लेके जा रहा है। नंबर 3, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा देश अगर 2047 तक विकसित भारत बनना चाहता है, तो वो तब तक नहीं बन सकता जब तक 60% हमारी जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। कारण क्या है? या तो उनका इनकम बहुत तेजी से बढ़े, अदरवाइज नंबर ऑफ मैन आवर इन एग्रीकल्चर हैज टू गो डाउन, वो कम होना पड़ेगा और लोगों को दूसरे विकसित क्षेत्रों की तरफ काम में जाना पड़ेगा। अगर हम इस 3 चीजों को देखते हैं, अब हमारा ऑडियंस से सवाल है, सो दैट आई कैन आस्क द क्वेश्चन टू माय को पैनलिस्ट, क्या आपको लगता है कि हम भारत में मक्का की डिमांड को पूरा कर सकते हैं केवल बिना इंपोर्ट किए, बिना बाहरी सोर्सेस पे डिपेंड किए हुए? आप में से कितने लोग मानते हैं कि हम 40 मिलियन टन मक्का अगले 8 साल में इंडिया में और उगा सकते हैं? So I will say, again, this is like India, it's like our democracy, it is 50-50, and that makes market interesting. So and और यही इसका ब्यूटी है, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है हाँ हम कर सकते हैं, करना, इट इज ऑलवेज गुड टू बी पॉजिटिव एंड एम्बिशियस, लेकिन उसके साथ ये गेम प्लान इंपॉर्टेंट है कि कैसे कर सकते हैं। एंड दैट इज वेयर आई विल कम टू यू शुक्ला जी, कि हमारे जो 50% लोगों का जो ये मत है कि हम अचीव कर सकते हैं, वो सिर्फ विचार और प्रोमिसेस से नहीं होगा, वो एक रोड मैप ऑन ग्राउंड से होगा। हम अभी तक क्या कर रहे हैं एज ए इंडस्ट्री टू अचीव दैट, और हमारा आगे क्या विचार है। आई विल से इफ वी कैन एक्सप्लेन दैट इन नेक्स्ट 2 to 3 minutes टू आवर ऑडियंस। थैंक यू, आभार। सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, आपने अभी प्रेजेंटेशन देखा होगा उसमें कि इंडिया का एवरेज 3.6 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है। एक तरफ विश्व के सबसे सर्वाधिक देश यूएस का देखा होगा आपने 11, तो 3 से 3.5 से यात्रा शुरू करके 11 पे ले जाना संभव है, और इसको हमने खुद किया है। क्यों? आज से 2 साल पहले जब एथेनॉल इंडस्ट्री हमारी थी, तो यूएस ग्रेन काउंसिल के से मैंने यात्रा शुरू की थी अमेरिका की, और अमेरिका में देखा था कि किस तरह से उनका पैटर्न है, क्या है, हम क्या कर सकते हैं। कुछ देखने के लिए कुछ तो लर्निंग होनी चाहिए। मैंने सोचा कि हम अपने कैचमेंट एरिया में इन लर्निंग्स को हम जरूर उतारेंगे, और उसमें हमारे साथ कोर्टिवा एग्रो साइंस की टीम आई, जिन्होंने सीड प्रोवाइड किया, और टेक्नोलॉजी के लिए हमने वो चीज यूज किया जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। पहले आप लोग भी कर रहे होंगे, न्यूमेटिक प्लांटर मशीन से प्लांट पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, ड्रोन से फर्टिलाइजर का कंट्रोल एप्लीकेशन किया, और शायद भारत में पहली बार हार्वेस्ट करके लूज मैच को प्लांट पे ले गए। इस पूरे ऑपरेशन में जो भी मैन पावर था बहुत मिनिमल था। आप किसान हैं, आप समझ सकते हैं कि गर्मियों में 47 डिग्री टेम्परेचर के नीचे उसको मक्के को काटना, सुखाना, उसको साफ करना, बोरे में पैक करना, मंडियों में ले जाना डिफिकल्ट टास्क था। उस टास्क को खत्म किया तो फार्मर्स का एक इंटरेस्ट बना कि इस क्रॉप में तो कोई आदमी ही नहीं लग रहा, सब कुछ मशीनों से हो रहा है।
बहुत एरिया के किसान बहुत इंटरेस्टेड हुए, लेकिन उसमें एक चैलेंज था। चैलेंज को मैं लास्ट में शेयर करूंगा ताकि फिकी का जो प्रेजेंटेशन जाए या सजेशंस जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो उस रूप में जाए कि इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं और फार्मर को ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं सरकार के सहयोग से। इस पूरे ऑपरेशन में अगले साल हमने फिर रबी पे गए। फर्स्ट ईयर की जो हमारी यील्ड आई वो 7.5 टन पर हेक्टेयर आई। अगले साल फिर वही कोटिवा के साथ हमने उसको 4-5 डेमो प्लाट्स में उस सीड के साथ शुरुआत की, उस सिस्टम के साथ शुरुआत की, और इस बार की यील्ड हमारी 10.8 टन पर हेक्टेयर आई। मैकेनाइजेशन से हमारे पास डेटा है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक एक डेटा शेयर करूंगा कि मैकेनाइजेशन से पर हेक्टेयर रेवेन्यू फार्मर्स का 1,08,000 रुपया आया विद 2400 की एमएसपी पे। सब कुछ संभव है प्रोवाइडेड हम सबको मिलके एक रिक्वायरमेंट है, उस पे काम करने की जरूरत है। आज के दिन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट रिकवरेबल स्टार्च की बात करें, यानी कि उस मक्के से जितना स्टार्च हम बना सकते हैं उतना एथेनॉल निकलेगा। वो फीड के लिए भी अच्छा है और इंडस्ट्री के लिए, एथेनॉल इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। बट उसके लिए इंडस्ट्री को क्या चाहिए कि एक कैचमेंट एरिया चाहिए। जैसे शुगर फैक्ट्रियां हैं, शुगर फैक्ट्रियां अपने कैचमेंट एरिया में अपने चॉइस का केन फार्मर्स को देती हैं, वैरायटी ऑफ केन जो हाई यील्डिंग हो, हाई प्रोडक्टिविटी हो उसकी। उस तरह से अगर हमें एक दिन के प्रोसेस के लिए एक नॉर्मल जो एवरेज इंडस्ट्री है उसको 500 टन मक्का चाहिए, 500 टन एक दिन के लिए चाहिए। वो मक्का एक वैरायटी का हो, एक स्टार्च का हो, तो हम उससे रिकवरी भी अच्छी ले सकते हैं, क्वालिटी ऑफ डीडीजीएस भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये चैलेंज इंडस्ट्री के लिए, खास करके सीड इंडस्ट्री के लिए और फार्मर्स के लिए भी है कि अगर हमें उस ग्रोथ को देखना है, उस विजन को देखना है, उसको पाने के लिए हमें बहुत संगठित होके, संतुलित होके एक प्रयास करने की जरूरत है, जिससे कि किसानों को भी कम लागत में अच्छा मक्का पैदा कर सकें और जो इंडस्ट्री जो कंज्यूम करती हैं वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छे स्टार्च का मक्का अपने कैचमेंट एरिया से लेके उस पे एक अच्छी रिकवरी बना के एक कीर्तिमान बन सकता है जो शायद किसी और देश में होगा जरूर, लेकिन हम भी उससे बेहतर कीर्तिमान इस इकोसिस्टम को बनाते हुए कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज जिसके लिए सरकार भी पीछे है और इंडस्ट्री भी पीछे है कि हमारे लैंड जो बढ़ नहीं सकते, लैंड सीमित है लेकिन उत्पादकता बढ़ सकता है, और उस उत्पादकता से क्वालिटी प्रोडक्शन की बात करें कि जो इंडस्ट्री की कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट है उस क्वालिटी का हम जो है ग्रेन इंडस्ट्री में दें ताकि प्रोडक्टिविटी भी हो, हमारा किसान भी खुश रहे, हमारी इंडस्ट्री भी खुश रहे। तो इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। सर वेरी वेल पुट, इट्स सच ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट विद अ रोड मैप, और आपने करके दिखाया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्शन ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड, एंड वंस यू पुट अ एक्शन ऑन ग्राउंड इट बिकम्स मोटिवेशन फॉर एवरीवन एल्स. नाउ let me take the same thought process you have presented and take it to Arumal now. Arumal, you were the one who was skeptical about whether India will be able to meet its demand or not. I understand the potential is whenever there is an international trade, it's the multinationals who always want a long distance trade flow. We had Patleji who said ki yes, industry will be able to meet its requirement. बट चाहे इंडिया अपना प्रोडक्शन मीट कर पाए चाहे नहीं कर पाए, चाहे इंपोर्ट हो चाहे ये डोमेस्टिक से हो, इट इज गोइंग टू थ्रो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, नंबर वन. नंबर टू, व्हेन इट कम्स टू रिस्क मैनेजमेंट, एंड नंबर थ्री, एज अ यूजर आपका आने वाले समय में फॉर श्योर वॉलेटिलिटी तो बढ़ने वाली है मेज प्राइसेस में.
So how as a budding trader, as farmer, because जो बड़े farmer हैं उनका तो risk सबसे ज़्यादा है. How should they plan ahead when there are so many variables at work in maize trading? Right. Okay, so let me try to extend from what Mr. Shuklaji was talking about, and then I'll start off from there. See, when we look at the Western nations, I mean, it is good to see that the yields are very high, more than 10 metric ton per hectare. And in India, it is very good to see that in trials, in concentrated programs, similar yields are possible. And I think we have basically shown that, and that's the example that you have seen. But I think what we have to understand, there is a big difference between an average yield and a what you call a pilot yield, right? I mean, the real question is, how can a country which is as big as India, with 3 crops of Kharif, Rabi and summer, can this average yield be maintained over the 3 crops? And if a solution can be found to that, I think the solution to the production is basically met. The problem is there. I mean, how can we find this 10 metric ton average yield in Kharif, Rabi, as well as in the spring season? A big challenge, and it's not very easy as we, like it seems on paper, and that is where this challenge of probably the demand outstripping the supply is basically going to happen. In short term, we are also seeing the demand, shifting of crops. I mean, this season, the Kharif season, we are hearing about talks about soybean shifting to maize. I mean, as Shuklaji rightly pointed out, the overall area in India is constant. Yield is one way of solving the problem, but the other way of solving the problem is substitution. And is substitution sustainable? Because at some point of time, while it is good for maize, after 6 months, the Solvent Extractors Association and SOPA is going to call a similar conference like this and going to discuss about how soybean area is going to get improved. Similarly, the Indian Pulses and Grains Association is going to call another conference and say how the pulses area is going to get improved. And wheat guys are going to call another conference and say how the wheat is going to get increased. So there is going to be big competition. And so this substitution also, while it is short term, it is not really, I would say, over the next 10 years, I don't think that's the solution, because it will come at the cost of losing some of the crop. I mean, that is what I feel. And so this has to come in a more sustainable way. Yields, of course, there are a lot of research which is happening. The Indian Institute of Maize Research and the other agricultural universities are working on it. I mean, a lot of developments are happening. The seed companies are working on it. Of course, we are constrained from using GMO, and even if GMO comes, I mean, whether the India's agroclimatical condition, whether it is going to be same as what is there in the Western nations, it is not the same. Whether the same success can be replicated here, it is again a problem. I don't know. So yes, as Sumit rightly pointed out, there are a lot of variables, and I would say at this point of time, the beauty is that there is no outright solution to it. I mean, and that is where the role of all the stakeholders and including the traders come into the play. And where the traders can actually help is securing the supply chains of the various industry players and backstopping them and all those things. And if the solution cannot be found in India, we can find the solutions elsewhere in the world. Again, coming to Sumit, your question about the risk management, it is very difficult. I mean, at this point of time, normally in other Western nations like US, risk management happens through an active futures contract. Now the futures contract is practically non-existent, and even when it was really existent, I think the maize futures contracts were practically illiquid. So I don't think the NCDX futures is an outright solution to that. I mean, again, there is an ecosystem that need to develop over a period of time about how this hedging mechanism in the country can be developed. Again, risk management is not only about hedging. It is not only about securing the supplies. It's also about policy consistency. I mean, this year itself, sometime in middle of January, we saw a sudden change in the policy where there was rice allocated to ethanol for making ethanol. So at that point of time, it was 2.5 million metric ton, and
that saw the maize prices crashing from, I think, at middle of January. I think maize prices were trading at pretty high levels, and even imports were happening. And once that policy shift happened to broken rice, we saw the maize farmers actually losing, maize prices actually coming down. And again, the policy of allocating additional rice to ethanol is continuing, of another 2.5 million tons, and probably that policy is going to continue. Again, from the maize industry's point of view, from the maize farmers' point of view, from the maize traders' point of view, again, the policy consistency is important. I mean, you cannot tell the farmers to grow maize and again at the middle of the season, at the start of the Rabi season, again change the policy saying that, okay, now we are going to reduce the dependence on maize and increase the dependence on rice. I mean, that gives a bad signal. So again, from the risk management point of view, I would say that policy consistency is very important. And it works, so a lot of things has to work together to make sure that a consistent policy around the trade is there. So thanks a lot, Sumit. Thank you, Aramul. Very well put. It cannot go in isolation completely. And now I'll go back to our audience. Let me ask one question to you. According to you, which is the highest maize growing state in India? Just make a guess. Madhya Pradesh. MP. And question is, what is the highest maize consuming segment in India? सबसे ज़्यादा maize किस चीज़? Poultry. Poultry. And one thing is absolute maize consumption of around 19 to 20 million tons in maize. Second thing is the growth rate. आज से 2 साल पहले इंडिया में लगभग 1.5 से 2 मिलियन टन मक्का केवल एथेनॉल सेगमेंट में जाता था, जो ऑन थियोरेटिकल बेसिस ऑन 450 मिलियन मेट्रिक लीटर्स ऑफ ethanol basis, it is around 18 million tons on theoretical basis. Okay, that's a grain requirement in India. Out of that, around 13 to 13.5 million ton is required in ethanol. And so, keeping this thing in mind, and I will leave the floor open for Mr. Ravi and Mr. Patle after that to contribute from the poultry and ethanol sector point of view. Okay, कि the question to you is कि last 5 साल में कैसे how poultry has changed, how demand and supply situation of maize from poultry point of view has changed. And to you, sir, the question is, when there is a debate of food and fuel, जब भी खाने और ethanol की बात आएगी, who will win? And number 2, what is according to you is a roadmap कि हम आगे जाके इसमें policy आपको कैसे लगता है? Do you think India can continuously blend ethanol and India can continuously use maize in ethanol? These are the 2 follow-up questions. And the answer to the question on the highest maize producing state, now it changes every year, but last year was MP. So, yes, please. Yeah. Thanks, Mr. Sumit, again. So, you have brought in the important question of food versus fuel debate. Let me start with the journey of this ethanol blending program. I had given a very brief glimpse in my previous address. The ethanol blending program predominantly was dependent on sugary feedstock, which I had stated earlier. And we all know that the sugary feedstock is predominantly available in 3 major sugarcane growing states: Uttar Pradesh, Maharashtra, and Karnataka. Whereas the demand of the automobile manufacturers was that we cannot make automobiles only state specific. अगर बनाना है तो गाड़ी हमें देश भर के लिए एक स्टैंडर्ड गाड़ी बनाना है. तो अगर 20% अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग होता है यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, वो पूरा ऑल इंडिया भी वही परसेंटेज अवेलेबल होनी चाहिए. कंसिस्टेंसी वो मांग रहे हैं, वो सही है उनके तरफ से तो सही है. तो जब हमने देखा कि 5-6 साल पहले सिर्फ ये 3 स्टेट हमें एथेनॉल सरप्लस दे रही थी, तो हमें इसको मूव करना पड़ रहा था करीब
1500 2000 किलोमीटर तक भी हम लोगों ने इसको मूव किया है। यूपी से हमने नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को मूव किया है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक से डाउन साउथ भी हमने मूव किया है। तो पहला हमने सोचा कि बिफोर फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट, कैन वी एड्रेस वन प्रॉब्लम, should we burn fuel to carry fuel? What is the point in transporting, burning fuel to transport in such large distances? तो इसको सुधारने के लिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि अगर डिस्टिलेशन कैपेसिटीज़ जो हैं मेरे डिमांड सेंटर्स के पास में आए, यानी हर स्टेट में मेरा डिमांड है पेट्रोल का और एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, अगर हर स्टेट में जितना डिमांड है उसके आसपास अगर डिस्टिलेशन यानी डिस्टिलरीज अगर बनाया जाए, तो उसमें हमने देखा कि गन्ने से तो नहीं हो सकता था, तो इसीलिए ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज को हमने प्रमोट किया। हमने लॉन्ग टर्म ऑफ टेक अग्रीमेंट साइन किए ताकि कैपेक्स इन्वेस्टमेंट और ग्रेन डिस्टिलेशन कैपेसिटी 10 साल के लिए हमने उनके साथ में हमने साइन किया कि भाई हम आपका एथेनॉल जो भी बनेगा हम लेंगे। तभी जाके ये ग्रेन डिस्टिलेशन कैपेसिटीज आए, और आज जो हम 600-700 करोड़ लीटर की बात, जो 5 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ 10 करोड़ था, और अभी करीब 700-800 करोड़ लीटर का डिस्टिलेशन कैपेसिटीज सिर्फ ग्रेन से बनाने का हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया, ऐसे ऑयल कंपनीज ने अग्रीमेंट साइन करके। तो एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व करने का प्रयास किया, वो है ईंधन क्यों जलाएं ईंधन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अभी कमिंग टू फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट, जब हम ये डिस्टिलेशन कैपेसिटीज बढ़ा रहे थे तो ये डाउट तो हमेशा रहा है कि भाई ये ग्रेन चावल से आएगा या मक्के से आएगा, बट ये अच्छी बात रही। ऑफ कोर्स माय फ्रेंड मिस्टर अरोमल उन्होंने अपना व्यू व्यक्त किया, लेकिन हमने देखा फ्रॉम एथेनॉल पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट questioning what you have said, I mean you are absolutely right in your perspective, लेकिन हमने ये देखा कि जब हमने एथेनॉल मक्के से प्रमोट करना शुरू किया 2-3 साल से, तो हमने देखा कि अवेलेबिलिटी एटलीस्ट एथेनॉल इंडस्ट्री के लिए आ गई। और दूसरी बात ये भी रही कि जैसे शुक्ला जी ने कहा, बहुत सारे हमारे डिस्टिलर्स अभी काम करना शुरू कर दिए इन डेवलपिंग कैचमेंट एरिया, बहुत सारे सीड प्रोड्यूसर्स भी उनके साथ दिए और बाकी हमारे डिस्टिलर्स के साथ उनको साथ दिए। क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ दिस डिमांड क्रिएशन, efficiencies and effectiveness has started going up, चाहे वो यील्ड उत्पादन यानी मक्के के उत्पादन में हो, सीड क्वालिटी हो, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, एडवांटा से भी मैं देख रहा हूँ है प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस बढ़ गए। दूसरी बात ये भी बढ़ी कि अभी हमारे डिस्टिलरीज ये भी देखना शुरू किए कि स्टार्च कंटेंट कैसे बढ़ाया जाए ताकि यील्ड फ्रॉम, तो उनका प्रोसेसेस एंजाइम्स के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन शॉर्ट टर्म लग रहा होगा सुमित जी कि ये फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट है। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके देखेंगे, अभी क्या हो रहा है, हर स्टेक होल्डर अपना काम करना शुरू कर दिया है। जैसे प्रीवियस एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिस्टर हनुमान जाट जो अभी इनाग्रल में बात करके गए, हेडिंग द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, उन्होंने कहा वो राउंड टेबल में, भाई 2-3 साल पहले तक तो हमारा यही सोच था कि मक्का जो है फीड के लिए हम उत्पादन करें। 3 साल या 2 साल पहले ही तो अभी हमने उनको कहा गया है कि भाई एथेनॉल के लिए भी चाहिए। तो अभी एथेनॉल बनाने के लिए अगर वो प्रोटीन व्हाट यू कॉल स्टार्च कंटेंट बढ़ाना है, एक्सट्रैक्टेबल स्टार्च जैसे आपने कहा, या कॉर्न ऑयल एक्सट्रैक्शन, आई मीन सो इसके ऊपर अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, सब लोग साथ में आएंगे और ज़रूर हाँ एक
बहुत दिन नहीं, छोटे अवसर में हम ये देखेंगे कि मक्के का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और सब इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेगा। चलिए मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैं गोदरेज एग्रीवेट से हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम मक्का खरीदते भी हैं एनिमल फीड बनाने के लिए, और एग्री इनपुट सॉल्यूशंस किसान को सप्लाई भी करते हैं, बिकॉज हम एग्री इनपुट कंपनीज भी हैं। तो हम सीड भी बेचते हैं, एग्रो इनपुट केमिकल्स भी बेचते हैं, बायोस्टिमुलेंट बेचते हैं, और मक्का किसान से खरीदते भी हैं। सो वी आर लाइक वन ऑफ द कंपनी हु अंडरस्टैंड द वैल्यू चेन वेरी वेल फ्रॉम एंड टू एंड, फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग टू प्रोक्योरमेंट देन एनिमल फीड प्रोडक्शन। तो कुछ चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि वाई देर इज़ ए रिप्लेसमेंट। सो देर वॉज वन क्वेश्चन, वन पॉइंट फ्रॉम यू सर, कि देर विल बी सम चैलेंज कि कुछ और क्रॉप का एरिया कम हो रहा होगा, और बाकी सारे फोरम में वो भी डिस्कशन होगा कि सोयाबीन का कैसे बढ़ाया जाए। तो व्हाट इज़ द रीज़न कि सोयाबीन कम क्यों हुआ और मक्का बढ़ा क्यों? इसका कारण ये है, एंड दैट इज स्पेसिफिकली हैपनिंग एमपी में। जो दिखा है, मैं भी एमपी से ही रहने वाला हूँ, तो आई अंडरस्टैंड ऑन ग्राउंड कि वो हो रहा है एमपी में, क्योंकि वहाँ पर सोयाबीन का प्रोडक्शन काफ़ी कम है। सिर्फ 4 से 5 क्विंटल एक एकड़ का उत्पादन आ रहा है। लेकिन जब आप मक्के को देखते हैं तो मक्का का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, बायोफ्यूल मिशन के कारण और एमएसपी बढ़ाने के कारण किसानों को अच्छे पैसे मक्के में मिल रहे हैं, तो किसानों ने वो शिफ्ट किया है। तो हमें ये डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि किसान की प्रोडक्टिविटी और उनका इनकम कैसे बढ़ा जाए। अगर वो मक्के से बढ़ता है तो डेफिनेटली हमें मक्के पर ध्यान देना चाहिए। और सोयाबीन का डिस्कशन में भी सम टाइम कभी और भी कर सकते हैं कि सोयाबीन में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए सोयाबीन में, और किसानों का इनकम कैसे बढ़ाया जाए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि डेफिनेटली मक्के का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। अगर हम 2029 से 30 की बात करें तो कम से कम 65 मिलियन मेट्रिक टन हमें मक्के का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ये उत्पादन किस तरीके से अचीव किया जा सकता है? तो जिस तरीके से मैंने बताया कि 12 मिलियन हेक्टेयर करंट एरिया है। अगर इस एरिया को, जो हम देख रहे हैं कि रिसेंटली 4.5 CAGR से ग्रो कर रहा है पिछले 5 साल में, एंड वी आर होपफुल कि ये इसी तरीके से अगले 5-6 साल भी ग्रो करता रहेगा। तो ये 14 मिलियन हेक्टेयर का एरिया अचीव हो जाएगा बाय 29-30। दैट्स वन। सेकेंड, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 70% मक्के का एरिया खरीफ में आता है और 30% मक्के का एरिया रबी और समर में आता है। अगर उत्पादन की बात करें तो 59% उत्पादन खरीफ से है, मतलब खरीफ का प्रोडक्टिविटी इज लेस कंपेयर टू रबी एंड समर। सो रिक्वायरमेंट ये है कि हम खरीफ में प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। रबी ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, और साल दर साल हमने देखा है। तो बड़ी समस्या ये है कि खरीफ जो 70% एरिया है, उस एरिया में प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ाई जा सके। किसानों का जो सबसे बड़ा समस्या होता है खरीफ में, बारिश का होता है। कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, बड़ा लॉन्ग ड्राई स्पेल होता है। तो बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम किसानों को होती है वीड्स की, खरपतवारों की सबसे बड़ी समस्या होती है। और दूसरी समस्या होती है फॉल आर्मीवॉर्म इंसेक्ट की। अगर हम सिर्फ 2 ही समस्या को पकड़े, वीड्स जो खरपतवार है और जो फॉल आर्मीवॉर्म इंसेक्ट है, ये 2 प्रॉब्लम किसान का 50 से 60% उत्पादन कम करने की क्षमता रखता है, अगर ये ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए तो ऑलरेडी एज ए एग्री इनपुट कंपनी और इंडस्ट्री और बहुत सारे नए सॉल्यूशन किसानों को दिए गए हैं, जो किसानों को उत्पादन बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर ये 2 समस्याओं का समाधान किया जाए और हाई यील्डिंग वेराइटीज़ और भी डेवलप किया जाए, हाई इंटेंसिव कल्टीवेशन, प्लांट पॉपुलेशन को ऑप्टिमाइज़ किया जाए, और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात की जाए, बायोस्टिमुलेंट का ज़्यादा उपयोग किया जाए, तो ये जो प्रोडक्टिविटी है, अगर हम इसको अगले 5 सालों में 3% CAGR से बढ़ा सके एरिया, डेफिनेटली मैं होपफुल हूँ कि 4% CAGR से बढ़ रहा है, वो कंटिन्यूसली ग्रो होता ही रहेगा। तो बाय 29-30 जो हमारा करंट प्रोडक्शन 42 मिलियन मेट्रिक टन है, ये बढ़ के आराम से 60 मिलियन मेट्रिक टन हो पाएगा। तो हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ डिमांड है हमारे इंटरनल प्रोडक्शन से कंप्लीट हो सकता है। और जिस तरीके से सर ने भी बताया, जो इथेनॉल का डिमांड है वो बढ़ रहा है। और अगर मैं E30 की बात करूँ फ्यूचर में, तो शायद 18 1800 करोड़ लीटर का इथेनॉल लगेगा उस डिमांड को पूरा करने के लिए।
तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जैसे राइस का एडिशनल एलोकेशन किया है, 5.2 मिलियन मेट्रिक टन राइस को एलोकेट किया है वो इथेनॉल के डिमांड को बढ़ाने फुलफिल करने के लिए। और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, हम काफ़ी ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करते हैं, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में वो एलोकेशन शायद और बढ़े और हम 60 मिलियन मेट्रिक टन मेज को भी प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ये शायद ये डिमांड सप्लाई जो गैप है, शायद फ्यूल वर्सेस फूड का डिबेट, आई थिंक वी विल बी एबल टू हैंडल वेरी वेल। थैंक यू। Very well put. Thank you, Ben Patle ji. Now, what I'm going to do, I'm going to ask 3 questions to every panelist, and idea will be that we give the most diverse view to our audience. Okay, and I will request to limit our answers to 1 minute each to those questions so that we can cover as many thoughts as possible. Arumal, are you happy with the policy consistency? No, I am not. I think there is a lot of roller coaster which is happening on the policy consistency. The especially from the Maize, since it's the Maize conference, and especially from the Maize stakeholders' point of view, while the shift that was, I mean, the allocation of rice that we have seen, that has basically killed the potential price gain that the maize farmers and the potential maize farmers would have got this season. That is what my personal bias is. Okay, and similarly, there are a lot of ifs and buts which is happening on the import side. I mean, there are a lot of regulations which are there. So again, needs basically looking at into a deeper thing. If you have to give 3 suggestions to government to make it incentivizing for farmers, for industry, and for trade, what will be those suggestions? Okay. First suggestion would, of course, be to basically look at how we can increase the maize production within the country and how we can be self-sufficient. And I think there is a lot of research that has to happen on increasing the maize yields. I mean, basically that's the only thing that I can see as the solution which is there. But even after doing that, my personal bias is that that will not be enough, and India would be deficit of corn for 10 years down the line, or probably as early as 5 years down the line, and probably as early as today. I mean, even as we speak, there are boats which are lying at Tuticorin port, importing corn, right? So again, from the industry's point of view, I would say there also has to be more consistency or more openness about being prepared for the future. That is how we can ease the import program if it is required. I mean, if the self-sufficiency in maize doesn't happen domestically. I would say at this point of time, the imports are mainly restricted to non-GMO corn, and I would let me put it this way, that probably only 2 countries can meet the India's phytosanitary requirements, which is Ukraine as well as Myanmar. From the long-term point of view, we cannot be dependent on these 2 countries, so this has to get more opened up. So can we allow EU non-GMO corn? I mean, at this point of time, there is a tolerance of 0.9%, because of which probably the traders are not willing to bring, they are willing to bring in Ukraine, but not the other non-GMO corn from EU. Probably we can look into that. Again, let me put it this way, even after that, 5 years down the line, if Ukraine and Bangladesh and Myanmar and domestic corn cannot solve this 40 million problem, then at that point of time, we have to be more open into other possibilities, which can include even opening up. It is a very sensitive topic, but at some point of time, GMO imports should be looked into. I see the Grain Ethanol Manufacturers Association consistently lobbying for it. Of course, I don't think that's the solution for the next 2 years, but in the 5 to 10 year range, probably without that, I think my personal bias is that India would, that point of time, become short of corn, if that is not allowed. Thanks. So let me take the same thoughts to Shuklaji, and let me ask the question: do you think India's extension sector is working well in maize farming? Number 1. Number 2, do you think industry, which is a beneficiary of maize production, has contributed back in terms of upskilling the farmer, upskilling the farming industry?
And if yes, if you can cite further examples apart from what India Glycols have done. Good question. First, I would like to draw your attention about the all the stakeholder responsible for the maize development program. Certainly doing excellent, but this is not sufficient as far my point of view. We have to analyze the gaps, which gaps still prevails to cope up these all the supply chain. The one of the important thing, this gentleman was telling me that the most maize crop in the Kharif season, which everybody knows that is that monsoon is active, and main the source of aflatoxin and DDGS because of the handling of the maize, and main the moisture. So I think central government should extensive feed the dryer requirement to the industries or the major big farmers, so they can protect their seed after the production. This is the highly important. Otherwise, whatever you will produce, you can't keep for the 30 days or 40 days, whole the maize will be expired. This is generally happening in everywhere. So industry is suffering a lot, first thing. Second thing, the crop or maize quality variety needs to be improved, because in the most eastern part and the western part of the country, especially April, May and June, majority of lands are open because of two reasons. One is the the irrigation, problem of irrigation, and second, the quality of seed which can be mature in 90 to 80 days. So these are the requirements through which we can increase our maize productive capacity. And third one, see, ultimately mass, automation, how we can do that? Mechanization, mass mechanization, we can do that. How we are going to cultivate our farmers, this is the important. These three things, as far as my point of view, it is required, so that industry would be comfortable and farmer will be comfortable. Thank you. Naveen ji, question to you. Poultry industry has done great job, okay, but poultry industry has only started paying farmer after ethanol has come into picture, okay. And how do you see this price equation, okay, going forward for industry, number one? Number two, what should be done from industry, from poultry sector to enhance productivity in the country? And number three, what is the support you need from government to make this industry more incentivizing? So in the recent year only, before last year or just 1.5 years back, we were net exporter, and right now we are net importer of corn. So earlier this issue of corn prices are going up, we never faced. But because of the corn going for the ethanol production, industry is definitely facing this issue, a high price corn, and that is definitely impacting the profitability and increasing the price of the protein what we are producing right now. So few of the definitely demands that our feed industry takes up with the government is allowing the import of corn, non-GMO import of non-GMO corn import, a little bit liberalize the policies. And second thing, in the short term, that some of the GM corn, if can that be imported and diverted towards the ethanol production, which will not be used for the animal feed or poultry feed production. So this is the few demands that we have put forward with the government, and yet to, I think industry and the government are working together to work on these two spheres. But at the same time, we wanted to be self-sufficient. We wanted to grow and produce our own maize requirements. So in that regard, our productivity improvement is utmost required. We have seen in different presentation, our productivities are even less than half compared to majority of the countries, those global, even non-GMO countries like China, like
Argentina. So these are Ukraine. So they are non-GMO. Even their productivity is more than double compared to India. So there is a lot of scope that we industry and government can work together in the mission mode and bring all the advanced or improved hybrids, increase the seed replacement ratio from 70 to 100% in all maize growing geographies, bring the innovative and effective agri input solutions for the weed and pest management, disease management and nutrition management. And one very important thing is the irrigation, improve the irrigation facilities, maybe drip irrigation, sprinkler irrigation. That definitely will help in increasing the productivity. So that's all I can say. Yeah, thank you. Thank you, Navinji. Now my last question to you, sir, is we have spoken about all other segments. How do you see next 5 years and key states when it comes to ethanol? Food and fuel, if it's not a debate, let's say going forward, then uh, do you see this segment growing and additional segments adding into it, for example, diesel or SAF, and what is the impact of that? And then we will leave the house open to the audience to ask questions. Thank you. Thank you very much. सो फर्स्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया का जो पेट्रोल कंजम्पशन है, 5 स्टेट ऐसे हैं, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात, ऐसे 5 स्टेट का अगर मैं पेट्रोल कंजम्पशन लेता हूँ, ये करीबन 50% ऑफ द कंट्रीज़ रिक्वायरमेंट ऑफ पेट्रोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी सबसे ज़्यादा एथनॉल का रिक्वायरमेंट इन 5 स्टेटों में है। हालांकि 3 स्टेट यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक शुगर केन में भी, गन्ने में भी अच्छे हैं, बट बाकी जो स्टेट्स हैं, पर्टिकुलरली तमिलनाडु बहुत बड़ा पेट्रोल कंज्यूमिंग स्टेट है। वहाँ पे गुजरात में रिक्वायरमेंट ऑफ एथनॉल बहुत ज़्यादा है। पहले मैंने आपको कहा था कि हम लोगों ने ईंधन को दूर दूर भेजने के बजाय वहीं पे अगर उत्पादन करें, बट अभी ये रिक्वायरमेंट आ रही है कि हम फीड को भी आसपास में ही अगर ग्रो करें, जैसे कि मैंने कहा ये स्टेट्स में इफ द फोकस इज देयर ऑन दैट, इट विल हेल्प, बिकॉज अल्टीमेटली what is the energy cost which the country is going to pay? That is very critical. Its competitiveness with the rest of the world is going to depend upon the energy cost. So energy cost has to be kept low. In fact, that was one of the reason, Mr. Aromal, that we found that it was becoming very extremely difficult to get ethanol from maize due to the substantial run-up in the prices of maize, that the introduction of the FCI rice, that was only just to act as a sort of moderate the prices it was introduced. Anyway, I'll talk to you about that separately. So first requirement is ये 5 स्टेट में हमारा एथनॉल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, सीजनल अवेलेबिलिटी भी क्रिटिकल है, क्योंकि ये गन्ने प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं, गन्ना जो है वहाँ से हमें एथनॉल मैक्सिमम मिलता है बिटवीन नवंबर टू मई। नवंबर महीने से मई महीने तक हमें गन्ने से ज़्यादा मिलता है। उसके बाद में यानी मई एंड से अगर अक्टूबर तक देखेंगे, जो रिमेनिंग 6 महीना है, हमें ग्रेन के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट्स हैं प्लस वहाँ भी एक्सपर्ट्स हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर ये बाकी जो 6 महीना है वो टाइम में अगर अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन विच इज़ बेसिकली मेज, अगर हो सकता है तो और भी अच्छा रहेगा। और जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ पे अगर एक इकोसिस्टम बने, जैसे शुक्ला जी ने पहले कहा कि डिस्लर और एक कमांड एरिया जैसा अगर हो तो वो हेल्प करेगा। तो सुमित जी ने सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था कि पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग के अलावा और भी कोई स्कोप है क्या? बिल्कुल स्कोप है। आज तक हमने डीजल ब्लेंडिंग में बहुत तरक्की नहीं की है,
क्योंकि आज जो डीजल ब्लेंडिंग के लिए हम लोग बायोडीजल लेते हैं, वो उसका फीड स्टॉक बेसिकली पाम ऑयल का बाई प्रोडक्ट से बनता है, पाम स्टेरिन, जिसका अवेलेबिलिटी बहुत कम है एंड प्लस इट इज़ वो इम्पोर्ट भी है। अभी हम लोग ट्रायल्स ये कर रहे हैं कि अगर एथेनॉल को हम कन्वर्ट करें आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कन्वर्ट करके उसे हम डीजल में अगर ब्लेंडिंग करें तो उसके लिए एक ARAI के साथ ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में एक बड़ा लेवल पे ट्रायल शुरू होने वाला है और उसका रिजल्ट के बेसिस पे अगर तो ये एथेनॉल को कन्वर्ट करके आइसोब्यूटेनॉल अल्कोहल बनाएंगे और ये सक्सेस हो जाएगा तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल विल बी, जैसे अभी 1100 चाहिए तो और एक 1100 ऐड होने का संभावना है। तीसरी बात, आपने SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में बात की है। 2027 से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने मैंडेट दी है कि ATF दैट इज हवाई जहाज का जो ईंधन है उसमें पहले 1%, फिर 2% और 2030 तक 3%, 5% और आगे बढ़कर वो 30-40% तक भी जाएगा बाई 2040। और सस्टेनेबल एविएशन ये SAF बनाने के लिए 2 रूट ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला रूट है कि यूज्ड कुकिंग ऑयल से, लेकिन यूज्ड कुकिंग ऑयल अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो और कोई चारा नहीं है। एथेनॉल के ऊपर टेक्नोलॉजी है एथेनॉल से SAF बनाने वाला। ये आगे बढ़कर जब कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम वगैरह भी आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये वायबल भी हो जाएगा। सो देयर इज़ अ बिग डिमांड इन फ्यूचर फॉर एथेनॉल एंड ऑब्वियसली अगर ये आएगा तो मेज का तो ज़रूर इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। थैंक यू। Thank you very much, sir. Now we are leaving the house open for the questions from the audience. We'll take 3 questions. Yes, sir. She's coming. Well, thank you very much. The point raised by our honorable. Sir, one by one, we are asking the question here, then we'll come to you. We'll come to you after that. Sorry. Yeah. That most of the question have been also answered by HS Jat. It's working, sir. Most of the question have been answered by HS Jat. Yes, mechanization is the answer. Catchment area where you can increase the productivity. Thirdly, the ethanol industry can switch April to onwards maize, which is coming from spring. Sir, I'm sorry interrupting you. If you can ask the question. Question is that these things are answerable. Whatever the panelists have said. One said that 70% area Kharif maize. Yes, but it's uncertain. We have 2 areas, Rabi and spring. Their area is increasing every year and chances of getting 60 ton is not a problem. Sure. Thank you very much. Thank you. Yeah, please. Optimization can help. Now, are we adopting precision farming in the space of maize cultivation? I'm referring to maize stakeholders as an industry. How much they have adopted precision farming as on date, and what is the potential to further enhance it? Because that's how we can optimize the resources and optimize the productivity. At the same time, there's another thing which needs to be looked upon. One question, please. We have taken your question on the precision farming. It's part, which is technological intervention of post-harvest management, which is very crucial in this aspect. What's your view on that? Thank you. See, right now we are
as a Indians, we have at a learning stage in maize farming. So whatever the mechanization, whatever the system we knows, we try to translate to the farmers. And for that, the mass advertisement, mass know-how transfer is required. And as my perspective, the industry would be the major source to translate these to the farmers, which is not rightly happening in largely. So we should do that. And industry is focusing how soon we can translate all these to the farmers. Sure. Do you have any other question or yeah, please? Yeah. So, yeah, so while we were discussing on the policies, we all agree is most of the commodities are perishable in nature, barring soya bean and all, which can stored for 4 or 5 years. So somebody in the value chain, whether it is the farmer or the trader or a processor, has to store commodities. Invariably, in last 1.5 to 2 years, because of some of the interventions which the government tries to do, has added a lot of uncertainty in the pricing market. For example, the prices of the commodities are higher when there is a harvest, and then it goes low during the off season. Soya bean was at 48 at the time of this. Maize was also high. What it is doing is it is creating an atmosphere where people will stop storing. And then how do you ensure the supply of maize? Because anybody who will in the entire supply chain store will come at a cost. There will be carryover cost for the capital, there will be storage cost. So who's going to bear that cost later on? It should not happen that in our endeavor to ensure farmer gets higher price and the consumer get at a lower price, the storage structure will collapse. I will leave the answer to Aromal, but let me put this way. We are 5,000-year-old civilization. People have been storing commodities since ages. It's a cycle. Commodities moves in cycle. We had benign rainfall in last 2 years. Prices have gone down. We'll have shortfalls, we'll have increased demand, and cycle will turn. Nobody is going out of business. Farmer is not going to suffer. Consumer is going to survive. Yeah. No, that's about risk management. So Aromal, if you want to just, and then we'll go to ma'am to you. You can invite the farmers to give their views. Right. Anandji, you are very correct that accessibility to storage infrastructure is required. I mean, that is one of the key elements in the supply chain. But personally, I would say that there are two major issues. One is availability, and second is affordability. First, let me start from affordability. Again, the warehouse service providers like you have to find a solution to that. How can a Bihar farmer afford a lock-in of 11 months for maize in Bihar? I mean, we have to solve that problem for the farmers. Number two, availability. I mean, even as an MNC, I was not able to get a warehouse in UP when the season was going on. So these problems are there. I think the warehouse service providers, the warehouse infrastructure providers have to work together with the other industry stakeholders to find a solution. So I am pretty sure a solution will be there. Thanks a lot. Over to you, ma'am. It's clear that understanding demand dynamics and embracing grain alternatives are key to securing India's food and industrial future. I would like to request all the panelists to kindly remain seated. We will now begin the farmer voice segment. अब हम उन प्रेरणादायक किसानों का स्वागत करेंगे जिन्हें आज माननीय कृषि मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है. आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी. अब मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती सविता योगेश काकड़े जी को, जो महाराष्ट्र की एक प्रगतिशील और तकनीक प्रेमी महिला किसान हैं. इन्होंने अपने गांव में मक्का की फसल में लगभग 45 क्विंटल प्रति एकड़ की सर्वाधिक उपज प्राप्त कर एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की है. मैं महाराष्ट्र से हूँ, सविता योगेश काकड़े. मेरे तरफ 10 एकड़ खेती है.
मैं 8 एकड़ मक्का, 1 एकड़ कपास, 1 एकड़ मिर्ची लगाती हूँ। मुझे मक्का से मुनाफा है। मैं पाइनोर से ज़्यादा उत्पादन निकालती हूँ, इसलिए मक्का लगाती हूँ। धन्यवाद। कर्नाटक से श्री अमृत यादव जी एक प्रगतिशील मक्का किसान हैं। उन्नत खेती के तरीकों को अपनाकर इन्होंने प्रति एकड़ 50 कुंटल मक्का उत्पादन कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। आदरणीय मंच, सभी उपस्थित कृषि विज्ञानियों और उद्योगपतियों और मेरे प्यारे किसान बंधुओं, तब सबको मेरा प्रणाम। मैं अमृत महादेव यादव, गुड़संगी गांव, विजयपुर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट से आया हूं। मैं कई साल से कृषि कर रहा हूं। उसके अनुसार मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं पहले मक्का बोने से पहले मुझको पीएम किसान हेल्थ कार्ड मिला और उसके 7 महीने मेरा पानी का जांच करवाई। उससे मुझको मेरे खेती में कौन कौन सा पोषक तत्व का कमी है उसका मालूम पड़ गया। उसके अनुसार मैं संतुलित खाद का उपयोग करने का मुझे एक अवसर मिल गया। उसके बाद मैंने मक्का का बोने से 10-15 दिन के पहले मैंने थोड़ा पौष्टिक अंश का थोड़ा खाद डालता हूँ। उसके बाद मैंने मक्का को बोने से वक्त सही तरीके से 8 से 9 इंच का बीज से बीज दूरी रखता हूँ और 22 से 24 पंक्ति से पंक्ति दूरी रखता हूँ और कुल 1 एकड़ में 28,000 से 30,000 बीज का मैं उसको रखता हूँ। उसके बाद समय पर मुझको निराई और गुड़ाई करने के से अनुसार मुझे खेती में ज़्यादा उत्पादन आता है और 40 दिन होने के बाद मैंने थोड़ा यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट और माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करता हूँ और उसके बाद कीट और रोग का नियंत्रण के लिए जैविक और रासायनिक का दोनों का भी संतुलित उपयोग करता हूँ। इससे मुझको खर्चा में थोड़ा कमी हो जाए। और कटाई के बाद मैंने मक्का को सुखाने के लिए अच्छा तरीके से सुखाना है, क्योंकि मक्का को भंडारण करते वक्त उसको नुकसान ना हो जाए, इसलिए उसका भी थोड़ा अच्छा तरीके से सुखाना भी मैं करता हूँ। उसके बाद मेरे आजू बाजू में मेरे एरिया में 1 एकड़ में 30 से 35 क्विंटल तक मक्का पा रहे हैं, लेकिन मुझे पिछले साल इस सारे विधान में लेके काम किया, इससे मुझे 50 क्विंटल का उत्पादन आया है। इससे मक्का मेरे लिए एक पीक नहीं है, वो मेरे लिए आदाय का एक साधन बन गया है। इस करते वक्त इस वक्त मुझे बात रखने की अवसर दिए हुए इस मंच को और सभी कृषि विज्ञानियों को सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए, और एक बात, जब हम इस दुनिया में आए हम रोए जग हंसे, ऐसी करनी करते चलो हम इस दुनिया से चले, हम हंसे जग रोए। इसका तात्पर्य इतना है, कब कब हम इस दुनिया में माँ के गोद में पैदा लेते हैं वहाँ हम रोते रहते हैं, सभी लोग हंसते रहते हैं, लेकिन जीवित काल में ऐसा काम करना चाहिए, हम ऐसा एक अचीवमेंट करना चाहिए, हम इस दुनिया से चले जाएं तब वक्त हम हंसना चाहिए, जग पीछे रोता चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। इस बात रखते हुए जय जवान, जय किसान, जय फिक्की, जय भारत। महाराष्ट्र से हमारे साथ है श्री रुकमानगत गुण। इन्होंने DHM 117 किस्म के साथ गन्ना मक्का अंतर फसल में ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन तकनीकों को अपनाकर खेती में नवचार किया है।
नमस्कार। माननीय मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, यहाँ उपस्थित सभी किसान भाई बहनों और भी जहाँ लोग हैं उनसे मेरा प्रणाम। मेरा नाम रुक्मांगत भारत गुंड है। मैं महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के शिवनी गांव से हूँ। आज मैं यहाँ अपना खेती का अनुभव आपके साथ साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। मुझे रबी 2024 में ICAR IIMR से डेमो मिला था, जिसमें मुझे 1 एकड़ के लिए 1 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिश्रण के साथ हाइब्रिड मक्का DHM 117 किस्म की बीज मिली। मैंने अपने खेत में मक्का और गन्ने की अंतरपीक प्रणाली से फसल बोई, इंटरक्रॉपिंग। मैंने परंपरागत खेती से हटकर ड्रिप सिंचाई, फर्टिगेशन और एकीकृत कीट प्रबंधन IPM जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया। समय समय पर मैंने IIMR माँ फुले कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। क्षेत्र का दौरा भी मिला उनसे। इसी पद्धति से मेरी पानी और खाद की खपत कम हुई और उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। सीमांत इनपुट के बावजूद भी मुझे 26 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन प्राप्त किया। मक्के की उपज मैंने 2450 रुपये प्रति क्विंटल बेच दी व्यापारियों को। इससे मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, जिससे मेरे गन्ने की फसल की भी लागत पूरी हो गई। अब मैं नवंबर 2025 में गन्ने की कटाई की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिससे मुझे 70 से 75 टन प्रति एकड़ उत्पाद की उम्मीद है। मैं ICAR IIMR से और यहाँ के सभी मंच पर उपस्थित मान्यवर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने को दिया। और मैं चाहता हूँ कि तकनीकी रूप से सक्षम किसान ही आत्मनिर्भर भारत का आधार है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आप सभी किसानों का धन्यवाद जिन्होंने अपनी सफलता की कहानियाँ साझा की। ये कहानियाँ निश्चित ही अन्य किसानों को के लिए प्रेरणा बनेगी। Now I request the panelists and farmers to come together for a group photograph, please. I would like to thank all the panelists for sharing their insightful thoughts. I request everyone to join us for lunch in the lounge hall. हमें बहुत खुशी है कि हम पूर्वी भारत के Requesting FICCI team to escort all the guests in the room. Welcome back, everyone. We have just had a good lunch, and I know that's usually when the post-lunch नींद का दौर starts to kick in. लेकिन आप निश्चिंत रहें, सत्र नींद भगाने वाला नहीं, जगाने वाला है. With the brilliant minds we have on stage today, there is going to be no dull moment. Welcome to the session 2, Innovation in Crop Protection, Advancing Sustainable Practices for Future Harvest. To guide us in this vital conversation, please welcome our moderator, Mr. Sanjay Vupuluri, National Head, Food and Agribusiness Strategic Advisory and Research, FASAR, Yes Bank. Mr. Vupuluri brings over 25 years of rich experience spanning diverse fields. He leads Yes Bank's FASAR unit, which is known for delivering knowledge-driven solutions across the food and agriculture value chain.
Welcome, sir. I'm honored to introduce our esteemed panel, Mr. Sachin Kumar, Director Sales Seeds South Asia, Corteva Agri-Science. With 22 plus years in agri-sales, Mr. Kumar leads Corteva seed business in South Asia. A GB Pant alumnus, he is known for his strategic market approach, channel strength, and impactful leadership. Ms. Vaishali Chopra, Public Affairs and Communications, Yara, India. I request everyone to keep clapping. A public policy and agri-advocacy expert, Ms. Chopra brings rich experience from Bayer, Monsanto, Rabobank, and UPL. Mr. Anand Chandra, co-founder and executive director, Arya AG. Co-founder of India's largest digital grain platform, Mr. Chandra is a Manage and Cornell alumnus with team expertise in agri-finance and post-Harvard value chains. Welcome, sir. Mr. Karumanchi Prasad, CMD PSPL. He has revolutionized traditional farming by pioneering agricultural entrepreneurship through the establishment of his organization. Welcome, sir. Mr. Barjinder Jeet Singh, Head Crop Solution Product Marketing, CNH Industrial India Private Limited. With over 30 years in agricultural mechanization, Mr. Singh leads product marketing at CNH Industrial India, specializing in mechanization solutions for Indian agriculture. Mr. Jaspreet Singh, Progressive Farmer, Punjab. A progressive dairy farmer from Punjab, he applied technical innovation to improve milk yields and advocates for advanced maize silage practices. Thank you to all our panelists and panelists. Please, over to you, sir. Thank you, Neha, and very good afternoon, ladies and gentlemen. And welcome to this second technical session where we will focus on the input side. So in the morning, we heard a lot about demand. There's a lot of diverse, demand pull happening, one from the poultry sector, a lot of ethanol play. So in this session, we will focus on the supply side and what's happening in terms of improving productivity on the supply side. On behalf of FICCI and Yes Bank, I extend a very warm welcome to our distinguished speakers, panel members. The members here have very diverse industry experience. From the farmer representation, we have Mr. Jaspreet Singh ji. Sorry sir, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, but कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है मैं हिंदी में भी बात करूँ. But basically, Jaspreet ji is a dairy farmer, one of a very progressive dairy farmer who was awarded for his excellent work in his community in the morning today. And he is recognized for the innovation he brought in silage making so that dairy fodder security is well protected. Welcome, sir. Thank you for being here. We also have from the farm input industry, Mr. Sachin Kumar, Director Sales, Corteva. Ms. Vaishali Chopra, Head of Public Affairs, Yara, Crop Nutrients Company. And Mr. Barjinder Singh ji from CNH, that is the Holy Land Tractor. It's a multinational farm machinery company which does a lot of work in maize. And representing the agripreneurs, the entrepreneurs, we have Mr. Prasad K, founder and chairman and managing director of Prasad Seeds. Prasad ji was basically an agricultural graduate, if I'm correct, and he started off, working in various fields, and he developed his own company, and today Prasad Seeds is India's largest outsourced seed processing partner, handling more than 30% of seed produced in India. The material flows through Prasad Seeds. Welcome, sir. Thank you for being here. And we have Mr. Anand Chandra, co-founder and executive director of Arya Ag. So Arya Ag is India's largest digital grains commerce platform, new age, new tech, ag tech company, one of the largest ag tech companies in India. So very diverse, group of people, and probably we expect the minister from UP to come in between. So we start off with this session now. So basically in this session, we'll go through 2 rounds of query. The first set of queries, we'll try to focus on trying to get your view on the challenges and trends that exist in your specific areas. And we'll also try to understand various innovations and initiatives that you have taken. And second round, we'll focus on understanding what type of policy initiatives and what type of industry collaborations that can happen between farmers,
government, industry, and all stakeholders involved. So I'll start with the seeds because seeds is the most discussed topic now. Sachin, my first question is to you. We have heard in the morning, we have farmers who have been awarded for the quality of produce they produce, the quantity of produce they have produced. But one of the key challenges that we face is productivity, low productivity. So from a seed industry perspective, how do you think we can address this issue of, how are you addressing productivity? And what are the technological innovations and farmer interventions that seed companies are taking to take productivity upward? Yeah, thank you, Sanjay, for your question. In fact, since morning we have been talking about a lot to improve the productivity, but we forgot to kind of appreciate the kind of a progress what we have made in the last 5 years itself. If we talk about that, like in the case of area increase in the corn, almost 4% increase is there, 6% increase into the production. But yes, the productivity is not matching to that expectations because it is only 2.7%. So that is where the gap is coming. Means we are now standing at almost 12 million hectare of the corn and with the 42 million ton of the production. Basically that is the gap we have to really understand where the challenges has been coming, that the low productivity, why it is the low productivity. And it is not a fair comparison to have a low productivity of India with the other global suppliers. Means if you talk about, we are the 5th largest producer of the corn in the world. First is US, definitely we have been talking about 11 ton per hectare. Then China, Argentina and Brazil. These are the 4 countries ahead than us. But the growing environment there, the technology intervention there is altogether different than where we are right now. So if I come directly onto the productivity front, what are the major challenges? I will be splitting it into the 2 parts. First thing is the structural challenges what we have into our country. We do have the Kharif production system, which is almost 70% acreages covering. Out of that as well, 70% is rain-fed. Means we do have the 70% acreages under Kharif, then in itself 70% is rain-fed, and the land holding of 90% farmer is less than 1 hectare. So that is the biggest structural issue with us. But you cannot complain about it because you have to live with it and you have to kind of start evaluating yourself onto these areas. So these all Kharif related production system challenges, like we've been totally dependent on the monsoon. So a lot of climatic challenges we are facing, we are hearing a lot. We have been started talking about that. There is a late monsoon or early monsoon. Sometime it is in a very heavy rain, sometime it is scanty rain. Some areas been totally drenched, some areas totally low into the rainfall. Along with that, it is increasing the pest and disease pressure. Means if you talk about the production system into the Rabi environment or the spring environment, it is lesser pest and diseases in comparison to Kharif area. So that is the major challenge with us, and we have to kind of find out some technological solutions for that. So first challenge is that we have talked about. Second challenge, I will say that other than the structural challenges, it is moreover, if you can say, is behavioral, or you can say it is in a cyclical kind of a nature. We do have the very kind of a low adoption rate of the advanced agronomical practices. Either it is because of the awareness regions, or it is, we can say it is because of the kind of an affordability into certain areas, if they can do it, because the customized solutions for the farmers is not available. Inside this also, we do have almost 65 to 70% hybridization today in the countries that we talk about. In despite of other countries, like if you talk about the US, it is almost 100% hybridization. If you talk about Brazil, it is 85% hybridization. So moreover, we cannot compare it with that. So now we have to started working upon these 2-3 challenges what we do have into hand, and started thinking what we can do about it. Okay, now we can think about like, okay, structural challenges are there. Okay, you have to live with that. Kharif production system is there, the disease pest will be there, but what we can do with them? We have to think something about the technological intervention. Like in the case of the seed, there are some very strong kind of genetics that we are bringing in.
There are some kind of a precision breeding technique, some advanced breeding technique like the assistant marker breeding technique, something like the single haploid system to bring the faster hybrids into the system so we can have the better hybrid as earliest as possible. So these all intervention or the kind of a breeding level or the kind of an advancement at the seed technological level, they are basically bringing the new climate resilient hybrids where they can be better able to tolerate the drought situation, very high rainfall situation, or you can say the pest and disease tolerance. So these all technologies are kind of helping us to bring the better product than before. So that's why means you might be seeing that we had certain progresses onto the productivity front. So that is one thing that we as a seed companies we are working on. We are also working on some seed treatment innovations. So we had kind of applying multiple ways of treating the seed where we can protect it into the initial stages. We can also kind of give them the micronutrient treatment, some kind of like microbial treatment. So that is basically helping them to give the good early vigor. So they can be having a better plant stand into the field. They will be having the higher vigor. So these all things basically helping the kind of farmer to kind of get a better genetics into their hand, having the higher potential to deliver the better yield. But the problem is where? Problem is in the adoption. So now what we are talking about the adoption in the country, in the seed companies is like we are talking about the growth is in the acreage has been happening. So this market is getting attractive for everybody in the seed industries. So people are kind of deploying the lot of resources. So we are working deeper and wider into our acreages conversion, reaching out to the deeper hinterlands of the villages or the rural areas. So we can basically help them to kind of adopt the better high yielding and the high kind of better agronomical practices along with that. Along with that, some of the initiatives, like if we talk about many companies also working on those, like the spokesperson farmer. We have talked about in the morning, there should be one spokesperson farmer in the village who can be kind of do the advocacy on behalf of the kind of a good high yielding hybrid seeds. He can be kind of one kind of a person who will be kind of an innovator farmer in the village who can let the other people know these are the latest agronomical advances or the kind of a practices has been coming. So these you should be adopting. I have adopted it. Then you should be also doing about these things. Third thing, we are a country with the millions of the farmers, and the farmer do not believe that easily which product or the which habit has to believe on. So he needs some kind of an intervention to demonstrate in front of them. So a lot of kind of harvest days, kind of demonstrations is been getting planned these days. Fourth, one very the kind of the big initiative that I think we have been talking about is we are opening the Center of Agronomy Excellence. So almost many of the targeted geographies which are having the low productivity, we are building those agronomy excellence center where we are bringing the farmer to train them onto the latest innovations, how the best balanced nutrition can be used, how the best mechanization practices can be done, how the best water efficient management can be done. So these all things bringing together. And the fifth at the last, that how you can basically use the digital kind of you can say that kranti we are talking about a lot. ये digital के pace में हम लोग क्या कर सकते हैं? So we are working with that, how we can bring those success stories of those farmers to the larger space, and the people should be utilizing those all understanding knowledge of the hybrids or the agronomical interventions to get the better yield out of this. So these are the few of the kind of just I try to capture the glimpses onto that what the seed industry has been working on. There might be some more different initiatives been working on. Like I had not talked about the Pioneer 360 program. So this is the one program where we are talking about from harvesting, from sowing till the harvesting. Means it is like our job as a seed company does not finish by only selling the seed. It will finish only unless he reap the best yield out of our product. So we are hand holding those farmers, and those farmers become the kind of an innovator to the other farmers and tell them that these are my experience and you should be using it. Thank so you. This is what
Thank you, Sachin. I think 5 very important points. And also we are seeing all the farmers who have progressed well in this specific area. My next question is to Ms. Vaishali Chopra from Yara India. Ma'am, Yara does a lot of work in crop nutrition, and we've been talking a lot about seed, we've been talking about genetics, but I think one area that we are missing, of course, a couple of farmers did mention the use of magnesium and zinc and the need for micronutrients. How do you see the overall ecosystem for micronutrients growing in the maize space? What are the areas of development? What are the areas you're working on, which is very different from the standard, macronutrient structure of urea, DAP, and potash? Thanks, Sanjay. Glad that you asked this, because this is exactly what was on my mind sitting in this hall since morning, that we have not been talking about nutrition. So maybe towards the end मैं एक बार सारा कुछ हिंदी में भी बोलूँगी, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बोला कि हम लोग हिंदी में भी जानना चाहते हैं. But I think I feel, and that's something which is also proven, that if you're talking about nutrition, so that could be efficient use of nutrition could be one single largest lever which could actually solve your problems of productivity, sustainability, everything together. So that's something which is very undervalued. We've been talking about increasing and maximizing production and productivity, and right use and mix of nutrition alone. We've seen in our demo plots that it helps in increasing the productivity by 15 to 20%. So if you put together everything, say seed, agrochemicals, and the rest of the agronomical practice, that's what we were discussing, about 50% तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा increased yield, and then you have everything at the top of it. So now coming to the hurdles, I think some of the systemic hurdles in nutrition specifically are the imbalanced use of nutrition. And that's not something which is by choice, but it is because of the policies we have. We have overuse of urea and lower use of very important micronutrients, as you suggested, but also potash and like sulfur, which is very important if you talk about maize, boron, zinc, again. So these have a role to play in increasing productivity, but also the quality when you're talking about starch industry. So you need to have that kind of a maize which helps you extract that kind of starch. So everything put together, it is something which helps in increased productivity and a better quality. Second, I think, would be the knowledge gap. So till now, if you look at those right time, right place, right method of application and right source, so those are the things which somehow, because of maybe the extension machinery or because of what we have been following since long, we don't follow it. So there would be farmers who are using all fertilizers at one point in time and thinking कि सब हो गया है, हमने सब कुछ डाल दिया, but it actually is not helping. So those are the things, if we work on these to start with, the rest of the complicated things I think can follow, and it will actually help overall. Now coming to what are the technologies which are available, which can be used, there are smart nutrition which is there. We don't think about nutrition in that particular angle, but it would help if we take nutrition seriously as we do in human health. We apply urea. So in lot of our demonstration fields, we have seen that urea is being applied double the quantity which is required. And if you reduce it to half and use, say, something which is innovative, which is urea is ammonical nitrogen. If you use nitrate nitrogen, it is more readily available to the plant, and it is something which actually helps in the right nutrition, the right nitrogen which the plant needs. So that helps. Apart from that, there are a lot of fortified fertilizers with micronutrients which immediately have an impact of the quality and the productivity. As I said, so about 15 to 20% is something which you see just by applying the right nutrition. तो इसमें यही है कि अगर हम लोग राइट टाइम पे राइट न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, और उसका जो मेथड है जो प्लांट अपटेक कर रहा है, हम ये पहले मिट्टी की जांच करके डाल रहे हैं. हमको ये पता है कि हम सालों से
यूरिया डीएपी डालना है, और मैंने कुछ अभी अपने फ्रेंड से बात भी की यहाँ पे कि हम क्या डालते हैं, तो हम वही डालते हैं, यूरिया डीएपी आता है, हम वो डाल देते हैं, बाकी तो फिर सब बाकी ठीक है। तो अगर उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल टेक्नोलॉजिकली एडवांस न्यूट्रिशन आया है, जो डालने से हमें पहले ये देखना है कि मिट्टी में कमी किस चीज़ की है। अगर आपका प्लांट है उसने पहले कितना एब्जॉर्ब किया, तो उसका अपटेक कितना हुआ, उतनी कमी मिट्टी में हो गई है। उस हिसाब से अगर हम अपना उसमें न्यूट्रिशन डालेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और राइट मेथड और राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनका अपटेक बहुत जल्दी हो जाता है। यूरिया लीच भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल टारगेटेड एप्लीकेशन होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो उन सब चीज़ों का यूज़ करना, और क्योंकि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि ये तो सबसे चीप है, इसको डाल लेते हैं, अब न्यूट्रिशन तो ठीक है, बाकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हमारा न्यूट्रिशन ठीक हो तो बहुत सारी बीमारियां या जो कीट जो लगते हैं वो भी कम आएगा, क्योंकि हमारा प्लांट इतना रोबस्ट होगा, इतना स्ट्रांग होगा। तो हमने ये भी देखा है कि जहाँ जहाँ पे न्यूट्रिशन का केयर करते हैं आप, तो अपना प्लांट का जो नॉर्मल दिक्कतें आती हैं, जैसे उसमें कीड़ा लगना या फिर डिजीज़ पेस्ट अटैक होना, वो भी कम होता है अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक हो। तो उन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। Thank you, Aishwarya ji. I think in terms of nutrition itself, my understanding is you were saying that if we can reduce the urea use and increase micronutrient use at the same cost, then it's better for the farmer. So a lot of times this would not come at the same cost, because please be aware that urea is about 80% subsidized. So the cost, what happens is farmer would choose what is cheap, because that is something which comes cheap. But if we look at, we also do a cost benefit analysis every time we do a demo farm, means demonstration, and we see that if you're spending 1 rupee, you're getting 9 rupees. So 1:9 is the cost benefit ratio. And farmer who sees this, that he's actually, when he's spending a penny extra, he's earning 9 rupees extra, he is very willing to do it next time. Thank you very much. My next question is to Mr. Barjinder Singh ji. Barjinder Singh ji is a representative of CNH, the Leyland Tractor. Singh ji, what is your view on how mechanization is playing a role in maize cultivation, and what is the adoption rate, and what needs to be done to improve yields in maize using mechanization? थैंक यू संजय जी, गुड आफ्टरनून। तो मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोलने की कोशिश करूँगा। तो पहले क्यों मैकेनाइजेशन क्यों होना चाहिए, ये थोड़ा सा हम सोच लें कि क्यों होना चाहिए, वाई देयर शुड बी मैकेनाइजेशन। वो आई थिंक सभी जानते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करना और टाइमली ऑपरेशन करना। तो ये जो है हमारे चीज़ें मिसिंग हैं, इसीलिए मैकेनाइजेशन होने चाहिए। कोई किसी को मतलब और कोई शौक नहीं कि क्यों होना चाहिए। तो दिस इज़ बेसिक पर्पस। तो अभी हमारी मैकेनाइजेशन कितनी है, हाउ मच इज़ द मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन। तो जो डाटा है वो कहता है कि 40 to 45% हमारी टोटल एग्री मैकेनाइजेशन है। 40 to 45% जब कहते हैं तो वो किस में है, दैट इज़ बेसिकली मोस्टली ट्रैक्टर्स, बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री है ट्रैक्टर की अराउंड 10 लाख की, 9.5 to 10 लाख। सो दैट इज़ बेसिक मैकेनाइजेशन व्हाट वी डिफाइन। एक्चुअली ये मैकेनाइजेशन नहीं है, ये ट्रैक्टराइजेशन ही है बेसिकली। तो एक्चुअल मैकेनाइजेशन क्या होता है कि सब क्रॉप्स के डिफरेंट ऑपरेशंस मैकेनाइज हो जाएं। डिफरेंट क्रॉप्स शुड गेट मैकेनाइज टोटली फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग टू पोस्ट हार्वेस्टिंग। So that is not there. So how much is the mechanization at the moment? At the moment, let me tell you, wheat harvesting is around 40 to 50%. Similarly is paddy, and maize is just 5 to 15% varying at that rate. Sowing also, there is a sowing being done with planters, seeders, different type of equipment there, but there is a lot of hand sowing also. So mechanized, if you say with a seed drill, yes, there is a seed drill which is sowing the maize, but what is best is planters, where the distance of between the seeds and plant to plant and row to row can be maintained. So that is how much, that is again 5 to 10%, not more than that. So there are lot of say we are behind the mechanization than the other developed countries. So what we are doing here is, from sowing to harvesting and post harvesting, we have developed different equipment. Number one is
pneumatic planter, which will give you 10 to 15% additional yield without putting anything extra. Just with the action of this pneumatic planters, we can have better yield with equal depth of sowing, maintaining plant to plant distance, and then uniform germination. So this is the pneumatic planter where we can have better yield and productivity. Second is if we talk about mechanization is missing in harvesting also. So what are the equipments for grain harvesting? We have the combine harvester with maize headers, different type of 5, 6, 7 rows. Those are easily available now in India, but still the mechanization is missing because of affordability and many other reasons. So this is upcoming means this maize mechanization in harvesting, and we have now in the country 5, 6, 7 row maize headers with the combines, and which can means take it further like wheat and paddy. So the third is the grain harvesting directly. The forage harvesting, and there are fodder harvesters which can harvest for 10 animals up to 1000 animals dairy. So there are small harvester which with the tractor 45 HP tractor can be used for 10 animals dairy. Up to 1000 means self-propelled harvesters of 500 600 horsepower. They have their own engine and they can harvest, chop, and put the material into a silo bin or dump yard where it can be ensiled, and we can make silage out of it. So all these type of equipment are available. Apart from that, we have the equipment for the straw baling also. There are different type of balers, small balers, round balers, and those can be used for making bales, and those bales can further be used for CBG, for power generation, and even for feeding. तो बेल गाठे बनाने वाले इक्विपमेंट भी अवेलेबल है अभी, जिसमें स्क्वायर बेल गाठ या गोल गाठ जो कि 200-250 किलो की होती है वो बनाई जा सकती है. So there are different equipments from sowing to post harvesting. Thank you, Bajin Singh ji. My next question is to our farmer representative Jasprit Singh ji. Jasprit Singh ji, आप primarily एक डेयरी फार्मर है, करीब 80 से 100 एनिमल्स का डेयरी फार्म है. तो ये आप करीब 30 से 40 एकड़ में मेज कल्टिवेट करते हैं साइलेज के लिए. तो आपकी जर्नी, कैन यू टेक अस थ्रू योर जर्नी? आप कैसे इस व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड फॉर योर डेयरी फार्म? आपका साइलेज मेकिंग में कैसे आया है आप, एंड व्हाट इज द फार्मर इकोसिस्टम अराउंड दिस? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद. डेयरी फार्म में मैंने 2012 से शुरू किया था. इससे पहले हम 1, 2, 4, 5 पशु रखते थे. तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना बिजनेस के रूप में लिया जाए, और हमने अच्छी गायें, उसकी नस्ल सुधारी, इंपोर्ट किया सीमन, अच्छी गायें आई, उसका दूध प्रोडक्शन बढ़ा. पर हमारे लिए चैलेंज था कि उनको अच्छी खुराक कैसे दी जाए. अच्छा दूध तो दे रही थी, लेकिन हमको खुराक कैसे दी जाए. हमने उसका सलूशन जो लगा वो था साइलेज. और साइलेज में हमें चाहिए था कि कौन सी सीड का साइलेज दे जाए, अच्छा साइलेज कैसे मिले, कौन सा सीड हम यूज़ करें. तो हमने अच्छी कंपनी के साइले अपना सीड लिए और साइलेज तैयार किया, और उसमें हमें अच्छा स्टार्च मिला, अच्छा जो प्रोटीन है वो मिला. तो यही हमारी जर्नी है. तो जसप्रीत जी, आपका दूध नेस्ले को सप्लाई करते हैं, तो जब से ये साइलेज इंट्रोड्यूस किया और उसके पहले का क्या डिफरेंस है? एंड आप जो साइलेज मैनेजमेंट करते हैं, आपके फार्म मैनेज करते हैं, उसमें आपका प्रैक्टिसेस क्या है? फ्रॉम सीड, फर्टिलाइज़र, फार्म मशीनरी, एंड एक फार्मर कोऑपरेटिव कुछ फॉर्म किए हुए हैं क्या? 10-15 लोग मिलके कर रहे हैं क्या? कैसा डेवलप हो रहा है वो इकोसिस्टम? देखिए, जब साइलेज की हमने क्वालिटी को सुधार लिया, तो जो हमारे कैटल हैं, पशु हैं, उनके दूध देने की समर्था है वो बढ़ गई. उससे हमारी जो आमदन है वो भी अच्छा उसमें बढ़ोतरी हुई, और डे बाय डे हमने इसमें प्रोग्रेस किया. तो हम अकेले इसमें हैं, कोई ग्रुप नहीं हमारे साथ काम कर रहा.
और इसके अलावा जो नेस्ले के हैं, नेस्ले हमेशा क्वालिटी पे डिपेंड करता है। वो क्वालिटी कैसे कभी भी वो नहीं कर सकता, समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि नेस्ले है जो बेबी प्रोडक्ट बनाता है, ना कि दूध, और वो हमें मांगता है कि हमको क्वालिटी का दूध चाहिए, और क्वालिटी के दूध के लिए हमें क्वालिटी का साइलेज देना पड़ेगा गाय को। अगर क्वालिटी का साइलेज देंगे तो तभी क्वालिटी का दूध पड़ेगा। अगर हम ख़राब साइलेज देंगे तो उसमें फंगस होगा, जो हमारे दूध में फंगस आएगा, और जो हमारे जो बिजनेस है वो डाउनफॉल आएगा। इसीलिए हमने नेस्ले से टाई अप भी किया, भी हम आपको अच्छी क्वालिटी का दूध देंगे, आप हमें उसका पूरा मूल्य दीजिए। Thank you very much, Jaspreet. That is the importance of quality when we take care of our farms. और मेरे ख्याल से going forward सब लोग ये पूछेंगे कि अभी तो साइलेज के लिए पूछ रहे हैं, कल इथेनॉल वाले पूछेंगे मेरा DDGS अच्छा होना चाहिए, एफ्लोटॉक्सिन नहीं होना चाहिए, तो फार्मर्स प्लीज गिव मी maize that doesn't have aflatoxins. So we have talked about the input side, we've talked about fertilizers, seeds, farm machinery, a farmer's perspective. We also have with us two very enterprising entrepreneurs. One, Prasad Garu of Prasad Seeds. Prasad Garu, you founded Prasad Seeds almost 30 years back. You started as an agricultural graduate, and you're India's leading outsourced seed processor partner. Could you take us through your journey? You've now from India, you've gone to Philippines, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, many African countries. So how do you see maize crop? How has it developed in India, and what has been your journey? Prasad ji, to you. Yeah, Sanjay sir, thank you. Sanjay sir, I need to have a small correction. Basically, I am not agricultural graduate. I'm a farmer. Just today in the session, there are many people who are well learned and well placed, technical and lot of knowledge. Just today in this session, I'm very happy to join here today. I would like to share my journey a little bit. As a farmer, I started my career as a farmer way back 1978 and started producing seeds to a national seed company. That's where I started my journey. And thereafter, I used to work with many Indian companies who want to have seed production. As a farmer, I used to coordinate between the farmer and the company. That's where my journey started. And I established first seed processing plant in 1982. That's how my journey was. In this journey, what today very important thing, how the industry has grown, it was seen my 46 years of experience. And particularly today the topic is on maize. We can discuss about on the maize. So maize, conventional varieties long back 90% or 100% is only varietal maize when we started early 78 and 80. Thereafter some Indian companies, Indian Research Institute used to produce some varietal corn, and also subsequently some hybrids has come. But once after multinational companies started joining in this maize journey in the Indian maize cultivation, they brought good hybrids, how the journey has continued. Where my association, they came here and then they, like egg and chicken, whether they need to take production first or infrastructure first. So where there is a good combination, I started creating infrastructure for them, and they used to spend a lot of money in the research and brought very good hybrids, all the multinational companies. Now today Corteva is here, like Bayer, Advanta, Syngenta, many companies are there. So now I associated where there were good synergies, where it helped the farming community and the industry also. Because the companies, multinational companies, they focused on the research and branding. The intermediate kind of work, someone who can do right kind of job. That's where I feel that role. And now, with this journey, almost all now, 2005 from 5,000 tons. Before that, there is hundreds of tons, but 5,000 tons was the number in 2005 to now. We are supplying about 80,000 tons of seed, almost 35% of the total country production we are handling. Supporting to these multinational companies. This is one kind of journey. In this journey, there are a lot of improvements in seed production. Companies put a lot of efforts in the seed research
and also innovative kind of steps in the corn cob drying and conditioning and treatments, different kind of treatments is help the farmers. Okay, this is all the journey so far. Now our people want to double the corn production. Yes, corn consumption is going up year on year. Corn consumption is going on, and now almost all now our people are talking about 40 million tons, and it need to go 80, 100 tons, 120,000 tons, 120 million tons. Okay. Now, yes, we are confident we can do that. How we can do that? It is only now with the journey of my experience as a farmer and as a coordinating between farmers and the companies, and also as an industrialist investment in the industry. Now, new technologies are required to improve the production. Now, farm mechanization. As Brijendraji said, farm mechanization, yes, there is a big gap now in the farm mechanization. And digitalization, Mr. Anand, who is here, and also they are working a lot. And of course, food nutrition, they are working. Now, to bring all the people onto one platform, what the technology he got, and Brijendraji, what technology he got, and the Koteva, and all the research companies, what they are doing, we need to bring onto one platform to provide services to the farmers. This is what exactly I am trying to do now. Now, this journey, farm mechanization, now we started so far developed the seed production, creating the infrastructure for seed processing. Not only in India, now we expanded the Philippines, Indonesia, Vietnam, and Bangladesh. There also we could able to contribute much for the corn production globally. Corn production and corn requirement is going day by day. Okay. When it comes to Indian perspective, now the next step of my journey, I am now focusing on the mechanization and the digitalization, where now everybody is talking from the morning that how we can meet our demand for the fuel and food. Yes, there is a solution. If we all need to work together, yes, absolutely, it's not difficult for us to improve the production from 3.6 tons per hectare average yield to take it to 8 to 9 tons of average yield. So because they are putting a lot of efforts, the seed research companies, and also farm mechanization is happening, and the digitalization is happening, and also other research for the nutrition. All these things together, if we can work, and now we need to consolidate the farms. This is what my journey which I started now. Now consolidating the farmers, making the farmers to understand what are the benefits if they can come together and do a combined kind of farming. This is what I am working now. This is Sanjay Saab. Thank This you. is my journey. Thank you very much, sir. That's a very inspiring journey from a farmer to an entrepreneur. My understanding is almost the amount of seed that flows through Prasad Seeds is about covers about 2.5 lakh acres in the country. So, and of course, he's come with a beautiful vision of trying to consolidate and utilize digitization. And talking about digitization, we have with us today Mr. Anand Chandra, again a founder member of a company called Arya Ag. Arya Ag is one of India's largest digital platform. Anand, could you take us through your journey of what's happening in the agri space, specifically with reference to maize, and more so with post-harvest, handling? What is your experience? What are the innovations that are happening, and what's happening in the space? No, thank you, Sanjay sir. So I will not be going through the journey of the organization because that's not what I am here to speak about. I will be more focusing on the challenge related to maize and other commodities. What Mr. Prasad Garu just now mentioned was a very valid point. The main problem for India, where we keep on talking in several forums, and I have seen for last 20 odd years, is increasing productivity, nutrition, mechanization. Why is it still not happening? Yeah. The question is, why is it still not happening in even the infrastructure creation? The reason I believe is not happening is that the lands have got fragmented. That grandfather had 10 acres, got divided into two. It became 5 acre, 5 became 2.5. Next generation will have to work on 1.25. So land fragmentation means that the number of farmers we are working have gone up drastically. Unit economics is changing. With smaller the farm getting, the difficult is to get productivity out of it or even mechanize.
So what Prasad Garu is working on, consolidation, is the need of the hour. There is no other option as a country we are left with. Now coming to some of the policies which the government is trying to today implement, government is working right now on a, I would say, a very thin edge or on a knife edge right now. They are trying to ensure that the farmer gets better income, but the consumer get low price. Now that's a very vicious cycle which we have got into, because if today farmer gets a higher price at the time of harvest and the prices goes down, then who will store the commodity? Because commodities needs to be stored and it has to be made available to the starch guys, to the feed mills, to the consumers. Then who will store? Because it comes at a cost. It comes at a cost that there is a storage cost, there is a working capital cost or the finance cost. Who will store? Now government will have to, I am not saying that government should not support the farmers. Farming worldwide needs support. It works on subsidies, it works on the, but the moment you take the trade out of the agri ecosystem, it will collapse. We are heading towards it. I don't know why people are not talking in the forum. Most of the soya processors in the country are struggling. Most of the poultry guys are struggling because price appreciations have been taken out of the market. Maize was higher during soya bean was higher, government bought it and sold it low. See, everything will boil down to money. Somebody will have to bridge in that gap. If government feels that the price at which it is available to the consumer has to be low, then government has to bear the cost. Indirectly, it will come to us only via GST or income tax because government doesn't have any money. So either you let the price work on a free trade or you let the industry work on it. Something which government have to really think on a, because most of the commodities which we are not also part outside maize, soya is struggling, chili is struggling, paddy is struggling, basmati is struggling. Every commodity you take, it's mostly at an all-time low. We have seen low prices, but we have not seen low prices across all commodities at one given point in time. That is where the challenge is. So coming to Sanjay, storage will happen only when the person who is storing will see a price appreciation. If the prices will not appreciate, who will store? Then the storage will again go back to the farm gates, which means the post-harvest losses will increase. So that's a vicious circle which I am talking about, because if you see the genesis of storage and the warehouse receipt finance, the objective or the genesis of this product is that you store when the prices is low, sell when the prices are high. Now the reverse is happening in the industry, because government is buying at a higher price and then selling when the prices are low. Who will bear this cost? So the trade, I think, which people are not talking about, most of the processors are struggling right now, because we in the industry, we work with them. Soya processors, most of them are struggling. Cattle feed manufacturers are struggling. Soya meal is struggling. Mustard meal is struggling. Paddy processors are big time struggling. So how will you ensure? So my suggestion is, whether it is maize or any other commodity, government will have to start looking at end to end, because in agri what happens is, the uncertainty of policies which have been created, like one day which Aromal in his previous session was mentioning, that prices of maize went up, then government said, okay, we will replace for ethanol maize by paddy or rice, broken rice. Now rice went up, you tried to, so it's like you're trying to fix up a tire tube of a truck with, fixing a puncture here, then the next hole comes up. You bridge it there, then another hole pops up. So this needs a new tire. Our agri thing needs a new tire tube to work on. We've been working on an old policy thought processes, looking at piecemeal by piecemeal. It has to be looked at a holistic structures. Farming needs to be supported. There is no two way about it. And as Prasad Garu mentioned, consolidation is the way forward. Technology, we keep on talking about precision agriculture, we keep on talking about drone. As long as technology is not affordable, adoption will be slow. Mechanization is a classic example which we have been talking about, because if farmer is not able to afford that cost, then adoption will automatically be slow. If technology adds value, we have seen a classic case of UPI, how fast the adoption was. Even a vegetable vendor or a pan wala started using it. They don't want cash now. So that's, I would say, is a... Thank you, Anand. In fact, you moved the discussion into policy area, so we will take the next round into policy area. But before we go there,
there is a lot of public digital good that is being built in the agricultural sector. काफ़ी farmers के पास government जा रहा है, agri-stack बना रहे हैं. And what we want to understand from a technology platform perspective rather than from a warehousing perspective, what is the role that technology can play to improve efficiencies? Have you seen such examples in your journey over the last 5 years? And how can those be replicated in collaboration, in partnership? What can government do, or other areas where different people can collaborate? So Sanjay, I will take an example of what we did at Arya. While we started commodity finance, commodity-based lending I started at a private level in 2003-2004. ICICI was the leading bank, and our entire promoting team was a part of ICICI Bank when we started this product. We were of the premise that people are not ready to pay you higher prices. So most of the banks today work at a 9-10% range. But when we started on our own and we got our own NBFC license, which is in 2017, NBFCs cannot lend at lower rates because we borrow funds from bank and then we have to add our cost and the markup to survive. Trust me, now our average lending rates is 12.8%, which is almost 300-350 basis point more than what bank gets, plus another 70 basis point of processing charges. The reason why we have been able to do is because at the speed of execution. So today, if a farmer or a depositor walks into our warehouse, our systems are so much enabled that by the time the stock gets unloaded, I can sanction him a loan. And by the time he reaches home, he has a message that this much loan is available. If you want to take it, just click of a button, you get the loan credited into your account. So that's the role of technology. See, we have not adopted technology to disrupt it. We have adopted technology to enable it. So enablement of technology is also a good adoption, and trust, our 99.5% disbursements are all online. No paperwork, no signing of hard copies, nothing. It's all digitalized. So that's the role of technology. And the other point which I am trying to put across, if technology is affordable, people are also ready to pay premium, because if they go to bank make them run 4 times to get a loan. Now with them reaching our warehouse, they get it loan, so they are paying us a premium. So today, why does Apple command premium other than Android? It's a classic example because the value add people believe to acquire from it. Thank you, Anand. I think that's, of course, one area where there's going to be a lot of change going forward. You've implemented it from the financial perspective. There's a lot of action going on by various state governments, whether it's UP, whether it's Tamil Nadu, Andhra Pradesh, where digital transformation with the farmer registry, crop registry, and is going to change the way the services are going to be provided to farmers. So moving to the next round, where I'll try to focus more on the collaborations and policy initiatives that can be taken up. Back to you, Sachin. Corteva works a lot in collaboration with a number of industry players, and you also work with different other type of players. So could you just give us some examples of the type of work you do in collaboration with others, and also what policy initiatives need to be taken, or what are the government initiatives that you're utilizing to reach out to farmers or bring work together to improve the overall scenario in the maize ecosystem? Thanks, Sanjay, for the question. In fact, first that we've been discussing about the low productivity. So it is kind of like in a multi-dimensional problem. It is not sitting into the kind of in a coat of only seed. It is just not a seed problem. It is a problem for everyone, because all the value chain partners are there to kind of deliver that kind of a productivity which is possible from the seed. Seed potential cannot be harnessed until unless it is going to give the balanced nutrition. Until unless we do have the right plant population into the field, right harvestable population into the field, there should not be kind of a good productivity until unless we do have the good water management practices, micro irrigation facilities, or there are many more are there. Means if you can say that these are the direct one, there are some of the indirect one, like the post harvest infrastructure, which can give the better kind of a realization to the farmer, and he can save on to the 5 to 10% losses what he is doing right now into the field. So these all have to come together. Then only what we build as a seed, okay, we say that okay, this seed can give you this particular level of yield.
it is possible only when all the kind of things works together in a right appropriate kind of what you say is the amount, or you can say that everything is required at the optimum level. So to resolve these multidimensional challenges, we have to started thinking about some collaboration initiatives, and that we have thought for a long time back. We have started working on this. Like before I come to those initiatives, like Bajinder ji is talking about some of the mechanization initiatives they have been taking and they are bringing in. I have been talking outside also. There are some mechanization things have been coming for the planting solution, for the harvesting solutions. But the biggest challenge with our country is our small landholder farmers. We have to have those customizable solutions for those farmers who can afford them. Because once he purchases some machinery, he cannot use it for the full year because he is growing multiple crops. He is growing other crops also. So unless we do have that kind of a customizable solution for the farmer, it is not going to work it out. Otherwise, we may have to think about some of the kind of a digital platform like Anandji is talking about. I was talking outside. We can have some platform like a digital platform like a Ola or Uber, where there should be agriculture implements are available that can be aggregated at a place, and whoever the farmer is requiring those implements, that can be taken on to a rental basis to those farmers. So then only when we will be working in a collective manner, then we will be only able to do it. So likewise the banking thing. तो banking means यदि मैं आज बहुत सारे गांव में हम विजिट करते हैं, मिलने जाते हैं किसानों के अंदर में, किसान को पता है कि ये चीज़ अच्छा है, ये वाला बीज अच्छा है, मेरे को खरीदना है, उसको मालूम है कि ये वाला खाद अच्छा है, मेरे को चाहिए, मेरे को खरीदना है. पर क्या कहता है वो? कहता है कि साहब मेरे पास में मौके पे पैसा नहीं होता. When he say that he doesn't have the money at that time when he requires it. So this is the biggest challenge that we have to really bridge, because he says that, okay, I want to purchase this seed for the 10 acres, but I do have this much money right now available for the only purchasing the 6 acre. Then he has to purchase some low value adding other seed, which is basically dragging down the productivity. So these thing all has to come together, work together to give them the solution. Okay, some kind of a micro loan, some kind of a collaboration with the kind of a seed companies, with the banking partners. So these micro loans is available for these value delivery agri input products, and that can be used for this purpose only. So this kind of a multiple solution we have to kind of sit together like in a workshop method. What are those solutions you can offer, he can offer, the mechanization partner can offer. So then we will be serving a single dimensional problem. Now I come to the kind of some solutions what we have thought. I will be not sharing the way long in the past. A very recent example in the UP itself, we had worked with the IGL in the kind of in association with the IIMR, and this is a kind of coming out a very good initiative. We had worked into Gorakhpur, Sant Kabir Nagar, Kushinagar. In these 3-4 districts, we have decided that okay, why not we think about growing the spring corn or the rabi corn in the places of the wheat, and we had offered some solutions. We came together, CNH come together, Yara Fertilizer come together, and we had told them, okay, this is the best agronomical practices, this is the seed available, then you should be utilizing it. Then farmer, we have kind of a thought of, okay, who will be interested? Some farmer came forward in the initially, there will be always challenge to kind of change the crop rotation of the farmer. Some farmer came forward and they said, okay, sir, we will be ready to invest into this. We have convinced them, we have given them the full complete solution from sowing till the harvesting. Now those farmers are saying to us, we have harvested almost 8 tons per hectare kind of a yield. Some farmer even has been claiming, means like those have kind of put that balanced nutrition what has been recommended. They have been claiming 10 to 11 ton per hectare level of yield. But yes, you may counter it because that is into the rabi production system. There not be that much, but even though if we try it into the kharif production system, we can easily touch somewhere 5 to 6 ton per hectare easily. That can be done.
So these are the some initiative where the Yara came and they told about the balanced nutrition and the availability of the fertilizer at the right time. CNH came, they come with the harvesting solution, they come with the planting solution. So then those planting solution is basically what making the changes. Right now, 80% farmer or the 70% farmer in the field are either or dependent on the local machinery which is not able to kind of put the right distance between the seed, जो सही distance पे बीजों को नहीं लगा पाती है, या फिर लेबर के ऊपर में डिपेंडेंट होना पड़ता है जो कहता है कि अच्छा यहाँ पे मेरे को तो दिन का दिहाड़ी जितना मिलना था उतना ही मिलेगा, पर मैं अपना काम जितना जल्दी ख़त्म करके आगे निकल जाऊँ उतना में मेरा फ़ायदा है. तो प्लांटिंग सोल्यूशन में क्या चाहिए कि हमारे को वो एक आइडियल पॉपुलेशन फील्ड के अंदर में मेंटेन करे, और वो हार्वेस्टेबल पॉपुलेशन कितनी लेता है. हमने लगाया 30,000 पर मिलने जब हम काटने के टाइम पे गए तब मिल रहा है खेत के अंदर 25,000 या 24,000. तो वो एक बड़ा ड्रैग होता है जो कि आपको बोल सकता है कि 10 से 15%, 20% अपॉर्चुनिटी तो यील्ड इंक्रीज की यहीं पर ही है. तो दीज आर द वन ऑफ द सोल्यूशन मीन्स व्हेन वी ऑल 4 company 3 company came together and Vidurji is sitting here. So Vidurji has been part of that initiative also, where we had brought the drones from them, and the nutrients and the crop protection chemical has been sprayed by the drones, and that is a kind of a talk of a town. Everybody has been talking about, and that is, we are not saying that you have to own the drone. There are the people, there are the companies who are coming forward, but now we have to create a platform to the farmer. If these things are available somewhere, you can also have it. Then we have to kind of work as a bridge between them. But before that, we have to have a long debate, discussion, and the workshop, not sitting here, but into the kind of on the state level. Because in our country, every state is like a country. There are different agronomical practices. We are working in 9 agroclimatic zones. Everybody have a different requirement, water situation, water availability, fertility index of the state, everything is very, very different than the others. Requirement is very different than the others. So we have to sit kind of at a state level, sit for the solution. Okay, Odisha required this. Okay, just by that kind of a virtue of like Odisha coming here, the word came. In Odisha, 70% business has been with those are the channel partners. Where are kind of selling the things which they want to sell because they make a bigger margins onto that. And they are also making the buyback arrangement from the farmer. So selling at the higher price, getting at the lower price, and there is no banking system. Kind of a very structural banking system is in place in the rural hinterland. I am not talking about everywhere, but in some of the district I have observed it. So those things has to somewhere we have to conclude. Then only we will make some progress onto that and unlocking the potential of the maize for getting the productivity at the level of 10 ton per hectare. Thank you, Sachinji. I think you mentioned that you coordinate with IIMR, with many fertilizer and farm machinery companies. Bajinderji, you mentioned in terms of the type of collaborations that you are doing, and one thing that Sachinji is talking about is how do we get drones and other mechanizations into the system. So what is your experience in terms of this collaborative approach to improve the overall scenario, and what are your policy recommendations with specific reference to farm mechanization? What would you recommend, or what is required from the government side? राइट सर. सो थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा. जब हमने प्लांटिंग मैकेनाइजेशन शुरू किया, दैट वाज 2010 इनफैक्ट, फर्स्ट फार्मर को दिया. मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. तो उसके पास गए, मोगा में था, तो उसको हमने डेमो दिया, उसको दिया एंड 3-4 अदर फार्मर्स. तो पहले 3 में से हम दे के आए. उसने 15 एकड़ में ये किया, 5 एकड़ में उसने मैनुअल लगवाया. उस एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो भी कि पता नहीं खराबी हो जाए, ये क्या हो जाए. वो हम भूल गए उसको करके, क्योंकि सीज़न निकल गया, 25 दिन का सीज़न था. व्हेन ही केम बैक डायरेक्टली टू अवर प्लांट, ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग, और वो कहता जी मेरी तो 15% यील्ड बढ़ गई, 3 क्विंटल यील्ड बढ़ गई, 3.5 क्विंटल इसका. उसने पूरा एवरेज निकाल के लाया, हमारे पास कागज पे हाथ पे लिखा हुआ. तो दिस वाज द इम्पैक्ट. तो ये पहला साल था. एंड सेकंड ईयर समहाउ पायनियर एट दैट टाइम जो था, पायनियर ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया था न्यू हॉलैंड के साथ, CNH के साथ, एंड वी स्टार्टेड कि हमने 10 प्लांटर को, फार्मर्स, अच्छे फार्मर्स को सब्सिडी देनी है
थ्रू बोथ ऑफ आवर कंपनीज 25% ईच। तो ये पहले साल हमने दिया था, मतलब सेकंड ईयर इनफैक्ट, तब तक एक प्लांटर या 2 प्लांटर इधर उधर बिके थे। तो इन्होंने 10 प्लांटर का जालंधर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया हमारे साथ, एंड दैट आई वुड से कि 10 प्लांटर से अभी वो एरिया 90% या 80-90% कवर्ड है विद मैकेनिकल दिस न्यूमेटिक प्लांटर। वो 10 प्लांटर ने एक सीड लगाया, तो वो एक कोलैबोरेशन हुई। उन्होंने ईच वन डिड सम 700 to 800 एकर्स, तो वो पूरा एरिया में फैल गया। लोगों ने देखा कि क्या उसका बेनिफिट है, वाटर का बेनिफिट है, इरिगेशन का बेनिफिट है, देन आपका ओवरऑल जो सोइंग है वो 300 रुपये में हो जाती है बेसिकली, अगर प्लांटर समबॉडी इज ओनिंग अप। अदरवाइज इट्स 1500 रुपीज़ पर एकड़, 1500 पर एकड़ से 300 रुपये में सीधा हो जाती, कवर हो जाती है। तो वो बेनिफिट से ही वो पूरे ऑलमोस्ट वो 2 डिस्ट्रिक्ट जलंधर और होशियारपुर कवर हो गए, और देन नाउ इट्स गोइंग एवरीवेयर इन पंजाब। तो एवरी ईयर सम 300-400 प्लांटर्स आर गेटिंग सोल्ड। सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरा क्या गवर्नमेंट से चाहिए, गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड किया। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ शुगर केन। शुगर केन में हम मैकेनाइजर हार्वेस्टर काफ़ी महंगा होता है, 1 करोड़ का। तो महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया था, तो दे व्हाट दे डिड कि गवर्नमेंट ने, इट वाज वे बैक इन 2009, तो उन्होंने एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज व्हाट दे डिड कि उन्होंने रिकमेंड किया कि इस पे ड्यूटी कम कर दो, और टैक्स उस टाइम ये होता था CST 2% टैक्स कर दिया गया था, अदरवाइज आई थिंक इट वाज सम 5% और सो, और ड्यूटीज 2.5% कर दिया, अदरवाइज 10% था। तो 2 चीज़ें ये की, देन दे गेव पर्टिकुलर सब्सिडी इन महाराष्ट्र। तो वो इक्विपमेंट जो है उसने अभी, जो पहले 0 से स्टार्ट हुआ था, नाउ इट्स अराउंड 2000 हार्वेस्टर्स इन महाराष्ट्र कवरिंग मैनी शुगर मिल्स, एंड वो जो एक सस्टेन होना था शुगर केन, क्योंकि इट वाज गोइंग डाउन एट दैट टाइम, तो एकदम फिर फ्लरिश हो गया। तो दिस वाज द इम्पैक्ट आई थिंक विद द पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, विच मेड दीज रिकमेंडेशंस। तो थैंक यू बच्चन जी। एक सर और कहूँगा इसमें ना, मेज में कैसे हाउ टू गो फॉरवर्ड, तो उसमें सर इट कुड बी के मशीनरी बैंक्स क्रिएट करते हैं। मशीनरी बैंक्स कौन क्रिएट करेगा? मे बी कोलैबोरेशन ऑफ इंडस्ट्री, सीड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मीन्स फार्म मशीनरी इंडस्ट्री, सीड इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ एक मशीनरी बैंक। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज तैयार हो जाए तो वो जो मशीनरी बैंक्स आगे हायर को दे सकते हैं, equipment on hiring basis can be given to farmers. So something like that can be thought of or can be done. Sorry, I understand the minister is almost on his way here, but yeah, तो ये collaboration जो आप बात कर रहे हैं, and you know government incentive that is being given in the sugarcane, it could be replicated in this. I think there are certain schemes, Agri Infrastructure Development Fund scheme, which is for silage making, or AIF, Agri Infrastructure Fund, are all for farmers. My next question is to you, Jaspreet ji. आपको, you have been working, building your silage activity and a dairy activity over the last 10-15 years. So what is your experience with government and with private sector? How have they collaborated with you? Private sector और government ने आपके साथ कैसे collaborate किया? आपको क्या फ़ायदा हुआ या क्या करना चाहिए इन लोगों को ताकि farmers can benefit better in Punjab? सबसे पहले तो सर मैं बताना चाहता हूँ, प्राइवेट सेक्टर जैसे कि कंपनियाँ बड़ी, सबसे पहले तो उन्होंने हमें गाइड किया सीड बारे, खाद बारे, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਨਦੀਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਉਹ 30 ਤੋਂ 40% ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲ 'ਚ ਨਦੀਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਟ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਉਪਜਾਊ ਘਟਾ ਦੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਗਾ, ਕੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਣੇ ਹੈਗੇ,
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਲੇਜ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਉਗਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਫਿਕਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਂਭੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਵਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਉਹ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ। Sure, thank you very much. Now we move to the entrepreneurs on stage. Prasad Garu, what are the initiatives you talked about, the activities that you do across a large area and location? What are the initiatives that Prasad Seed takes to boost the overall agri ecosystem, and how can government support, or how can you partner with government to improve the overall seed ecosystem in the country? Sir, as I mentioned, farm mechanization, digitalization, artificial intelligence, drone technology, all these people are working in different verticals. Now, those are all things somewhere we need to bring on one platform. Somebody needs to start Uberizing that, making available to the small farmers. That is the need of the hour, what I feel. So technologies are there. Still, each one is working on their verticals. Instead of that, if all people can come together, who are all these technologies, can bring in, and somebody can do it, Uberize it. It's available in each and every center. There are multiple centers where now how the seed distribution is happening. Similar way, that kind of center need to be developed. We need to develop the agri entrepreneurs in the rural area, where they can take it as a profession and they can provide services to the farmers. And also, while doing this process, very important thing to need to take it up, farmers consolidation. We need to see how farmers can come together without having any inhibitions, that insecurity of their land or anything, that we need to see how we can secure the farmers so they will be getting better income than what they are doing on their own. At this phase, if we can able to do that, definitely it is going to be a big boom in agriculture. That is going to be a big solution. Future now, if you can see, in many of the states, what I have seen, farmers who have their own lands, they are not doing. They are giving it on lease to the farmers. That is mostly 60-70%, at least in Andhra Pradesh I can say, more than 70% of the farmers, they are not doing on their own. Only 30% of the farmers, they are doing on their own. Balance 70%, they are giving it on lease. So now somewhere it can be consolidated. That's going to be good in the interest of the farmers and increase the productivity. This technology is definitely going to be a big solution. As Brijendra said about mechanization, precision plantation, and monitoring of the crop time to time, and required, instead of using more fertilizer and even the land preparation, all these things can be do in a systematic way. That is only the future. It helps the farming community and the growth of the industry, and also the solution for how the gap, the demand and supply can be fulfilled. In this process, Prasad Agtech has taken a step to start this innovation center. We are working with multiple people to bring everybody onto one platform. So what can governments do in this area to help promote, support, participate? Yeah, now government, what I have seen in Turkey,
if there is a cropping pattern, they are monitoring. Taki, they will be in certain village, they can go only particular crop. So they cannot go other crop. That way, if there is, of course, it is not easy in Indian conditions, but we need to motivate the farmers to come along, which will be in the interest of the farmers. Now, to some extent, government also can take a step, because there are number of agricultural departmental employees. They can also support this kind of innovation, so that they can also meet the farmers, they can support the farmers to do this kind of consolidation. Thank you, Prasad Garu. Of course, the final question to you, Anand, with your concluding remarks. What do you have talked about basically the challenges that we have in the supply chain. Is there any other thing you would like to put forward in terms of what are the areas of collaboration and improvement? So not on the collaboration, I think the bigger challenge which country is witnessing is a center versus state. If that can be sorted out, we'll have a lot of solutions. And what Prasad Garu has said, I have been actually, Prasad sir, mentioning this as a forum, since this it needs to be subsidized. The farming needs to be subsidized. And with India having 16 agroclimatic zones and we can produce whatever commodity we want to, why not we control the production like as an industrial unit? I want to produce only this much tons of, like you said, Turkey is doing it. Now today, if Google can today give us the data as to how much is the traffic from here to the airport, why not have tech developed where I control that I want to produce only this much metric ton of soybean based on the international demand and supply. Automatically the price depreciation which we see at the time of harvest is controlled, because we as a country have a herd mentality. 1 year we will see tuar prices are high, so everybody next year will sow tuar, and we will see a price drop because the production goes up. So it's high time that as a country we start controlling the production, because see what we do is we get carried away by the Western world. When Western world or the European countries, I would say, they will talk about climate smart, climate resilience, but they want India to export more. They are using our water to meet their food needs. While I am exporting 1 kg of rice, I am technically exporting 2,500 liters of water. That's the amount of water which goes into producing 1 kilo of rice. So it is high time we start controlling what we want to produce. Tech has come to those level. That's a bigger thing which I would say a private-public partnership can come in to control what you want to produce. Because once you control the production, you will automatically control larger things in the world. Thank you, Anand. That's a very forward-looking or very diverse thought process. But thank you, respected panel members, for sharing your valuable and deep insights. Very different, but very important probably. Now I open the session for queries from the audience. In case there are any questions, we'll be able to take a few questions. As the panel has discussed that there is an emergence of service provider space and inputs where local entrepreneurs can come in. Do you think that as we had BPOs, ITAS, or maybe data center as an industry today, will have a service providers industry in the agro space, in the organized platform, branded companies targeting that space? What's your view? Thank you. Prasad, sir, to you. This is what just our thought to make the rural entrepreneurs, how they can become entrepreneurs. Now, whatever the thoughts we have, if one village where he stays in the village with a limited education, he can become an entrepreneur to provide this agricultural services. This is how we started a model. Now, the entrepreneur and the government and the industrial people, they can come together, support to the rural entrepreneurs to buy the equipment and provide services to the farming community. So that is how we are trying to develop the entrepreneurs in the rural area. Sorry. Okay. Please, sir. Yeah. So is it clear, or you have anything else to ask, please? No, that's the point. What I'm saying that as ITES, BPO as an industry had emerged 2 decades back, what you were saying, what I was actually trying to highlight was that will this emerge as an highlighted service provider industry, specially focused on agro? Because India has
a very crucial and very important, sector, which is agri sector. And to cater to that sector, there is a specialized service provider, which is an integrated thing, starting from seed to financing to drone. And in the first session, I had highlighted that precision farming. All these interventions would be taken care. And that's why a branded, maybe, a corporate type of structure is required with the help of local entrepreneur, which you referred. Thank you. So I'll answer it. The challenge for these kind of service providers to survive in this country is we mix business with welfare. Every time has been looked as a sector where more of an welfare than business. Trust me, I think 20 years back when I first attended the forum, we were talking about building agri infrastructures. We did not go a long way into that. We may still feel very happy that we have come a long way and give a pat on our back, but we still lack it. So privatization and all will evolve, so we just hold on. We have we'll hold on for some time. We have the minister here. We are honored to have the august presence of Honorable Minister of Agriculture, Education and Research, Government of Uttar Pradesh, Shri Surya Pratap Shahi ji. Welcome, sir. So on behalf of all of us, I extend a very warm welcome and hearty greetings to our guest of honor, Shri Surya Pratap Shahi ji, Honorable Minister of Agriculture, Agricultural Education and Research, Government of Uttar Pradesh. Thank you, sir. Thank you for joining in. So just concluding our session, we have been discussing about the options of building robustness across the supply chain. And we thank you all for your participation. Thank you, ladies and gentlemen. On behalf of FICCI, I once again thank all of you, for all the panel members here, for your excellent contribution. And I now pass on the session to FICCI to moderate. I request all the panelists to get down. We'll start with our session 4 with Sir's welcome address. We can have a group photograph before that. हमें बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि इस सत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं श्री सूर्य प्रताप शाही, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश.
We're starting with our session 3 on genetics to grains, scientific breakthroughs in maize yield enhancement. To lead the session, I would like to welcome Dr. Siraj Hussain, former Secretary of Agriculture and Food Processing Industries, Government of India. He brings deep policy insight and leadership in Indian agriculture and food processing sectors. Welcome, sir. Our expert panel today includes Dr. B.P. Singh. He is a seasoned advisor at IFC with extensive expertise in agriculture development and technology commercialization. I'm welcoming all this panelists on the stage. Dr. S.L. Jat, a gold medalist agronomist at ICR, Indian Institute of Maize Research. He leads cutting-edge research in maize crop science. Dr. Ram Sirohi heads product management for corn at Bayer Crop Science in South Asia, driving innovations tailored to regional agricultural needs. Welcome, sir. Dr. Ram Sirohi. Dr. Venkatesh Selvarangam as Corn Epic Evaluation Zone Lead at Corteva. Dr. Venkatesh champions research that enhances maize adaptability and yields. Dr. Satyadev V. leads field crop research at Advanta India, focusing on maize breeding and agronomy to improve farmer outcomes. Dr. Satyadev. And Dr. V. Sadha Sivam, head of corn breeding at Syngenta India. He is an expert in developing high yield and climate resilient maize hybrids. I welcome all the panelists. Now I would like to welcome Mr. Subruto Geet, Co-Chairman FICCI Committee on Agriculture and President South Asia Corteva Agri-Science on dais. और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे अतिथि माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, Honorable Minister of Agriculture, Education and Research, Government of Uttar Pradesh को सम्मानित करें ग्रीन सर्टिफिकेट से. Ladies and gentlemen, the Green Certificate is a unique FICCI initiative wherein a grove of 10 trees will be planted in the name of eminent dignitary at the Somgo Sikkim. एक बार पुनः हम सभी की ओर से माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत. I would now like to invite Mr. Subruto Geet to give his welcome to Minister Sir. नमस्कार, गुड आफ्टरनून. मैं फिक्की की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा श्री सूर्य प्रताप शाही जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. माननीय मंत्री जी, फिक्की की तरफ से आपका 11वीं मेज समिट में हार्दिक स्वागत है. आपके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और मक्का उत्पादन में प्रदेश ने जो भूमिका निभाई है वो आपके प्रयासों और किसानों की मेहनत का परिणाम है. उत्तर प्रदेश ने संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिकों और किसानों को जोड़ने का जो प्रशंसनीय कार्य किया है उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं. और हम ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक मक्का उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ जो रैपिड मेज डेवलपमेंट योजना शुरू की है वो सराहनीय है. उत्तर प्रदेश इस योजना के तहत स्प्रिंग कॉर्न को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है जो सही में प्रशंसनीय है. सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश को लेके और मक्का को लेके क्या दृष्टिकोण रखते हैं, उस बारे में आपके जो विचार हैं इस ग्रुप के साथ शेयर करें. धन्यवाद. फिक्की के द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय
मक्के की इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ उपस्थित भारत सरकार के पूर्व कृषि सचिव श्री सुराज हुसैन साहब, उत्तर प्रदेश के अवकाश प्राप्त निदेशक श्री वीपी सिंह, आईसीआर के मक्का संस्थान के निदेशक श्री एसएल जाट साहब, फिक्की के सभी यहाँ अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी मक्के पर आधारित उद्यम चलाए जाने वाले उद्यमी मित्र, वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसानगण, मैं सबसे पहले फिक्की को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक दिवसीय मक्के के इस सेमिनार का आयोजन किया है और संभवतः यह 11वां उनका संस्करण है। इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूं और मुझे आपने आने का अवसर दिया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के फेज 2 के भीतर हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन के लिए वैकल्पिक फसल के रूप में मक्के का चयन किया और इसलिए राज्य के भीतर उत्तर प्रदेश त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हमने एक 5 साल के लिए नीति तैयार की और जिसके लिए बजट का एलोकेशन तय करके मक्के के खेती के विस्तार की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है इस साल कि जायद के मौसम में लगभग 5,40,000 हेक्टेयर के भीतर मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और बलिया, पूर्वी जिले के बलिया आदि जनपदों के भीतर 24 जनपदों में मक्के की खेती का व्यापक विस्तार हुआ है। और मैंने अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जब इस बात की जानकारी दी कि 3 साल से हमारी जो योजना चल रही है उसके परिणाम क्या हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें। हम लोग 5 तारीख को अयोध्या में थे और मैंने अयोध्या के भीतर ही उनसे अनुरोध किया कि मैं चाहता हूं कि आप मक्के के फसल को क्रॉप को देखिए। शायद ये पहला अवसर रहा होगा जब कोई मुख्यमंत्री किसान के लगाई गई फसल को देखने के लिए जाए। और मैंने 5 तारीख को उनको अनुरोध किया, मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि आप कब चाहते हैं, मैंने कहा कि जब आप समय दे दें। उन्होंने कहा कि क्या आप 8 तारीख को ये आयोजन कर सकते हैं। और मैंने उनको कहा कि हाँ बिल्कुल, जब भी आप तारीख दे देते हैं, समय देते हैं, हम करेंगे। उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विकसित कृषि का अभियान चला रखा था। तो मैंने उसका एक पार्ट ये भी बनाया कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा एरियल सर्वे 5 जनपदों का मैंने उनको एरियल सर्वे करवाया और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने मक्के के लिए लगभग 4 घंटे का समय दिया। 1.5 घंटे में 5 जिलों का उन्होंने एरियल सर्वे किया। पहले कार्यक्रम उन्होंने हमसे उनसे जो बात हुई थी 5 तारीख की शाम को, तो उसमें ये बात हुआ कि कानपुर के बिल्हौर ब्लॉक के भीतर हम काम उनको उतारेंगे। लेकिन उन्होंने 5 तारीख की रात को 10 बजे मुझसे कहा कि अभी प्रधानमंत्री जी कानपुर गए थे, इस नाते हम चाहते हैं कि किसी दूसरे जगह आप कार्यक्रम कराएं। और मैंने उनका कार्यक्रम औरैया के भीतर उनका कार्यक्रम कराया। आप समझ सकते हैं 24 घंटे के भीतर उन 5 जनपदों से मक्के के किसानों को हमने, जिनका एरियल सर्वे किया था, सबके 500 प्रतिनिधियों को वहां पर बुला करके रखा था और अत्यंत प्रभावी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने अपने आंखों से मक्के का जो क्लस्टर हम कहते हैं उस तरीके का उत्तर प्रदेश के भीतर क्लस्टर तैयार हुआ है। मैं सन 2000 में जब अमेरिका के भीतर गया था तो
उस समय मैंने मक्के की खेती इस प्रकार की देखी थी जो आज उत्तर प्रदेश के भीतर हो रही है। यदि प्रयास किया जाए तो संभव है। हाँ, एक दिन के भीतर नहीं संभव होता है, लेकिन वो एक दिन जरूर होता है। और आज उत्तर प्रदेश मक्के के उत्पादन के दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण राज्य की श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ है। हमारे राज्य के भीतर तीनों ही मौसम के भीतर, खरीफ में भी मक्का लग रही है, रबी के भीतर भी लग रहा है, रबी में थोड़ा कम लगता है, और जायद के भीतर तो मैं अनेक वर्षों से, जब से कृषि मंत्री हुआ था, मैं ये आग्रह करता था कि भाई उत्तर प्रदेश के गरीबी को यदि खत्म करना है और आर्थिक रूप से समृद्ध करना है उत्तर प्रदेश को, किसान को खुशहाल बनाना है, तो हमको जायद की खेती की ओर आगे बढ़ना होगा। और मुझे खुशी है कि इस साल जायद की क्रॉप में 5,40,000 हेक्टेयर के भीतर, ये सैटेलाइट सर्वे की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, मैनुअल नहीं, सैटेलाइट सर्वे भी कराई उसकी, और सैटेलाइट सर्वे के भीतर ये जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वो 5,40,000 हेक्टेयर के आए हैं। और इसलिए मैंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि उसको आप न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर आप उसके खरीद की भी व्यवस्था करिए। मैंने ये अनुरोध भारत सरकार से किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा के भीतर ये किसानों को आश्वस्त किया कि हम एमएसपी पर खरीद करेंगे, और राज्य सरकार के पहल पर पहली बार जायद के लिए भी भारत सरकार ने क्रॉप खरीदने का निर्णय किया, वो उत्तर प्रदेश में मक्के की खेती को। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक रणनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर मक्का की खेती के विस्तार की दृष्टि से हम लोगों ने ये एक छोटा सा प्रयास किया है। मक्के की खेती का उत्पादन भी अच्छा है, और शुरुआत होने के नाते अभी बीमारियां उसके भीतर नहीं रही हैं। अच्छे बीजों की आवश्यकता है। यहाँ पर अनेक कंपनियों के अभी कोटेवा और कई लोगों के स्टॉल मैंने आते समय देखा। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, और आज भारत सरकार से भी मैंने अनुरोध किया है, आईसीआर में भी मैंने इस बात को कहा है कि एक अच्छा उत्कृष्ट बीज किसान को मिले, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ट्रूथफुल सीड के नाम पर बाजार के भीतर बहुत बड़ी मात्रा में अनाप शनाप बीज आकर के बिक रहे हैं, उसके ऊपर हमें आपत्ति है। और मैं 2 मई को जब आया था दिल्ली, तो उस समय भी मैंने ये आग्रह किया था कि इसके लिए कोई कठोर कानून बनना चाहिए, और सीड के लिए आज बेहतर सीड किसान को मिल सके, इस नाते उत्कृष्ट सीड मिले, इसके लिए हमको कानून में संशोधन भी किया जाना चाहिए। और कीमतों के भीतर भी जो अंतराल है, कठिनाई क्या है कि हम जिनको इन पैनल करते हैं वो जो सब्सिडी पर जो बीज उपलब्ध कराते हैं उसकी कीमत वो बाजार में रहती नहीं है, और हमें ज़्यादा रेट पर वो दिया करते हैं, और बाजार में जो वो डालते हैं उसकी एमआरपी बहुत ज़्यादा रहती है और कम कीमतों पर वो देते हैं। अब मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चाहती ये है कि हम जो है वो रीजनेबल कीमतों के ऊपर ही हम सीड को उपलब्ध कराएं। यहाँ पर कई सीड निर्माता लोग भी हैं, तो उनको तकलीफ होगा मेरी इस बात को सुनकर के, और मैं चाहूँगा कि फिक्की को भी इस मामले में जो है वो, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो हमारा 24% की हिस्सेदारी है। हमारी जीएसडीवीए जो है वो 7.5 लाख करोड़ रुपए की चल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो इसलिए राज्य, हमारे उत्तर प्रदेश के भीतर तो मैं इसे बहुत गंभीर रूप से ले रहा हूं। तो इस नाते मैं चाहूँगा कि आपका इसके लिए सहयोग मिलना चाहिए, जिससे कि इस कठिनाई का समाधान किया जा सके। चूँकि आज यहाँ पर जो मुझे जानकारी मिली है कि आप लोगों में आदरणीय शायद हमारे कृषि किसान कल्याण मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी फर्स्ट सेशन के भीतर इनाग्रेशन करने वाले थे, जरूर आए होंगे ऐसा मैं समझता हूँ।
आए थे। हमारे जाट साहब यहाँ पर बैठे हैं जो ISCR का रिप्रेजेंट भी करते हैं और ख़ासतौर पर मक्का के लिए करते हैं। पॉलिसी भी बनाते हैं, रिसर्च भी करते हैं। यहाँ एग्री बिजनेस से संबंधित अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर उपलब्ध हैं और चूंकि मंत्री जी आए थे तो स्वाभाविक रूप से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश एक बड़ा कृषि क्षेत्र है, इस नाते उसके प्रतिनिधि के नाते मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रीढ़ है और उसमें विभिन्न प्रकार की फसलें अब धीरे धीरे उभर रही हैं, जिसमें आप हाईलाइट मक्का को भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि मक्का का उपयोग बहुत ज़्यादा है। मक्के का अभी तक जरूरत चारा पशु आहार बनने में होता था। अब उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि 1.5 दर्जन के करीब इथेनॉल की बेस डिस्टिलरी आ गई हैं जो काम कर रही हैं। संभवतः खेतान साहब भी फिक्की के मेंबर भी हैं, है ना लोहित खेतान? तो उन लोगों ने भी सीतापुर के भीतर इस काम को शुरू किया है। IGL ने गोरखपुर में किया है और मुझे IGL ने, और जब उनके डिस्टिलर्स एसोसिएशन के साथ आज से 2 साल पहले मैं मिला था तो उन लोगों ने कहा था कि जो भारत सरकार MSP तय करेगी उसके अनुरूप हम किसान से खरीद लेंगे। मैं चाहूँगा कि वो पहल आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। किसान जब फले फूलेगा तभी जो आकर के इंडस्ट्री भी फल फूल सकती है और इसलिए उसको आपका सहयोग उसको मिले, ये मैं चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इन वर्षों के भीतर हमने स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न पर भी हमने अपनी जो पॉलिसी बनाई है उसके भीतर भी जगह दिया है। 150 रुपया केजी और 15,000 रुपया कुंटल हमने जो है वो अनुदान उसके भीतर रखी है, जो अपनी नीति बनाई है। उसके लिए किसानों को जानकारी मिल सके, इसके लिए प्रदर्शनी, गोष्ठी और विभिन्न जो भी उपाय हो सकते हैं उनके करने के लिए भी हमने उसके भीतर धनराशि रखी है। मक्के के इस्तेमाल के लिए जो हमारे कृषि यंत्र आ सकते हैं उसके लिए भी हमने उसके भीतर व्यवस्था कर रखी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसमें आप सब हमारा सहयोग करेंगे। मैं इसीलिए आपको आज समय निकाला कि जिसकी वजह से यह हम आपके बीच में ये बात कह सकें। पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं और गन्ना ये 3 मुख्य क्रॉप के रूप में आ गई और जिसकी वजह से और जो उत्पादन होते थे, जो जमीन की गुणवत्ता को बनाए रखते, लगातार एक ही प्रकार की खेती करने के नाते मिट्टी सॉलिड हो गई और उसका उत्पादन घटता जा रहा है या ठहर गया है। मक्के के खेती से हमारी जमीन उपजाऊ होगी और इसीलिए हमने राज्य के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य दलहन योजना लाई कि हम दलहन का विस्तार कर सकें और राज्य तिलहन योजना भी लाए कि जिससे तिलहन के क्षेत्र का विस्तार कर सकें। भारत सरकार से अलग हट करके राज्य सरकार बड़े पैमाने पर किसान भाइयों को, हम पिछले 3.5 साल के भीतर 45 लाख किसानों को हमने निःशुल्क मिनी किट दिया है राज्य के संसाधनों से और उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारा तिलहन के उत्पादन में हम लोगों ने 2 कुंटल प्रति हेक्टेयर की वृद्धि की है। दलहन के उत्पादन में भी 2 कुंटल हमारा बढ़ा है। हमारी चावल की उत्पादकता और गेहूं की उत्पादकता भी बढ़ी है और मक्के का जो हमारी उत्पादकता रही है वो मक्के की उत्पादकता राज्य स्तर से नीचे रही है, लगभग
34 कुंटल प्रति हेक्टेयर की रही। मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार जो है वो 40 कुंटल से ऊपर की जाने वाली है। तो ये प्रयास जो लक्षित हम लोगों ने प्रयास किए हैं उसके कारण ये संभव हो सका है। हमने 4 सालों के लिए 168 करोड़ रुपए का प्राविधान किया था। राज्य के भीतर पोल्ट्री सीड, स्टार्च, एथनॉल, पशु कुक्कुट आहार, मक्के से दवाएं भी बनाई जा सकती हैं, उनके मक्के के इसके फाइबर भी तैयार किया जा सकता है। हमारे राज्य के भीतर गन्ने के बेस से आज प्लेट और कप भी बनाए जा रहे हैं और खाने का थाली भी बनाई जा रही है। मैंने उस यूनिट को कहा है कि क्या मक्के पर भी हम आप इस प्रकार का काम कर सकते हैं। तो यदि वो रिसर्च कर रहे हैं, R&D डिपार्टमेंट उनका काम कर रहा है, यदि करता है तो यह प्लास्टिक का भी एक अच्छा विकल्प के रूप में हम खड़ा कर सकते हैं। तो यह एक इंटीग्रेटेड प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार इस दृष्टि से कर रही है और उसमें मैं चाहूँगा कि आप सबका सहयोग, सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर विराजमान हैं, तो आपका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा और हम सब मिल करके मक्के को एक कारगर रूप में दे सकते हैं। हमने पिछले वर्षों के भीतर उनको सैलेज के लिए भी जो यंत्र लगाए जाने के लिए किसानों को उस पर भी हमने अनुदान की व्यवस्था करी है। और कुछ स्थानों पर मैं इटावा का प्रभारी मंत्री था, मैं देखता था कि 500 रुपये कुंटल बाजरे का जो रेजिड्यू था, वो उसका डंठल, वो राजस्थान के किसान आकर के खरीद करके लेके जाते थे चारा के लिए। मक्के का भी सैलेज तैयार किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से हम लोगों ये चाहते हैं कि मक्के का विस्तार हो। आने वाले दिनों में हम उसको और बढ़ाने वाले हैं। मैं जल्दी ही एथनॉल वाले डिस्टिलर्स के साथ भी बैठने वाला हूं और बैठ करके और उनके साथ आगे की रणनीति क्या होगी उसको तय करने वाला हूं। अगले महीने शायद ये संभव हो सकेगा। मैं ये समझता हूं कि आप सब के द्वारा ये पूरा एक मक्के की चेन, उसका पूरा वैल्यू एडिशन तक और इस्तेमाल के विविध रास्ते और साथ साथ में अच्छी वैरायटी के बीज उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से आप सब पहल करेंगे। और इसी प्रकार किसानों के साथ भी सीधा संवाद होगा। हमें उनको सरल तरीकों को बताना होगा। अभी मैं जाट साहब से कह रहा था कि हमारी एक समस्या आई इस समय, जो अभी जायद की मक्का लगी है उसके लिए, जो मई महीने में कट गए उनका तो मॉइस्चर काफ़ी कम हो गया, उन्होंने सर्विस रोड पर सुखा लिया। अब जो उसके बाद कटे हैं उनके भीतर मॉइस्चर अधिक है, तो अब उनको कीमत मिलने में कठिनाइयां हैं। और अभी मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा तो उन्होंने कहा कि भाई 7 लाख रुपया मिनिमम जो है उसके ड्रायर की कीमत होगी। तो एक किसान के लिए तो खरीदना जाना तो बड़ा कठिन काम है। अच्छा ड्रायर 14-15 लाख रुपए के हैं। एक FPO को भी दें तो बहुत बड़ा हिस्सेदारी हमारी बढ़ती है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा सरल उपाय उस मक्के के थ्रेशिंग के लिए और मक्के के सुखाई के लिए यदि आप सब निकालते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और मैं समझूंगा कि आज फिक्की के इस कॉन्फ्रेंस में आने का कोई उपलब्धि हमको हासिल हुई। मैं चाहूँगा कि इस प्रकार का आप सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आपने मुझे आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। जितने भी प्रतिभागी हैं उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं सबका अपनी ओर से स्वागत अभिनंदन करते हुए और उन किसान भाइयों का जिन्होंने इसमें अपनी सफलता हासिल किया है, वो प्रगतिशील किसान के रूप में उभरे हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर, मैं उन सबको विशेष रूप से अपनी ओर से बधाई देता हूं कि आपके प्रयासों से ही भारत विकसित भारत के रूप में खड़ा होने वाला है। विकसित भारत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विकसित कृषि अभियान चला और पहली बार ऐसा अवसर मिला कि हमारे वैज्ञानिक
ICR के दिल्ली से उतर करके किसान के खेतों तक गए, कृषि विज्ञान केंद्रों के हमारे वैज्ञानिक विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक गए, और अब रवि अभियान के भीतर भी उसकी पुनरावृत्ति, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यदि मैं मानता हूँ, जहाँ पर बीज है, दवाइयाँ हैं, वहीं पर उसका विस्तार प्रसार का कार्यक्रम। तो वो प्रसार के आप एक बहुत बड़े माध्यम हैं। जब आप अपने खेतों पर अच्छा करते हैं, एक रिसेट में मैं गया था तो देखा मैं कि एक ही मक्के के भीतर 4-5 बालियाँ उभरी हुई हैं। अभी जो मैंने अपने उत्तर प्रदेश के भीतर देखा, उसमें 1 से 2 पर ही जाकर के ठहर गई हैं। तो 2 से 4 कैसे कर सकते हैं, ये डॉक्टर साहब देखेंगे। और इसीलिए मैंने एक रिसर्च से अनुरोध किया है कि मैं उत्तर प्रदेश में चाहता हूं कि आप अपना एक रिसर्च सेंटर स्थापित करें। और कल शाम को हिमांशु पाठक जी का आगमन हमारे आवास पर है। तो मैंने ये तय किया है, अभी हम लोगों ने इस 8 साल के भीतर हमारे 2 संस्थान उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। एक इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत सरकार ने उसकी सहमति दे दिया, कैबिनेट से डिसीजन हो गया, 110 करोड़ रुपए का एलोकेशन हो गया। तो हम धान के क्षेत्र में और आलू के क्षेत्र में तो एक उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 75 साल के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान उत्तर प्रदेश की ओर आया। और तीसरा, अब हम इक्रिसेट के साथ लगे हुए हैं कि इक्रिसेट का एक रिसर्च सेंटर उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, तो मक्के के खेती के दृष्टि से भी हमें विस्तार किए जाने में सरलता और सुलभता हो जाएगी। इसके लिए प्रयास हमने किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार की उनकी यात्रा में वो फाइनल हो जाने वाला है। मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया। हम लगभग 50 एकड़ जमीन उनको मादा कृषि विश्वविद्यालय के कैंपस में ही देने जा रहे हैं, जहां पर वो अपने इस रिसर्च को शुरू कर सकेंगे। तो आप सबका उसके लिए भी सहयोग मिलेगा, ये निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी का। उनकी इस गरिमामय उपस्थिति ने हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। आइए हम सभी मिलकर करतल ध्वनि के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मंत्री महोदय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं माननीय मंत्री जी, सभी पैनलिस्ट और किसानों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया सामूहिक फोटो के लिए एक साथ आएं।
Requesting everyone to please be seated. We're starting our session 3. Our panelists are already on dais. Requesting everyone to please be seated. With that, now we begin session 3 on genetics to grains, scientific breakthroughs in maize yield enhancement. Now, I would like to invite Mr. Siraj to deliver his presentation, followed by moderation of the panel. Okay, so thank you, friends. I would like to welcome the esteemed panelists who are sitting on the dais. They are all very well-known scientists. So I will just take 5 to 7 minutes in introducing why we are discussing this subject. It is a very important subject. It is a subject of science, high science, genetics to grains. So we know that National Food Security Mission launched by the Government of India has devoted a lot of attention to maize in recent years, due to which the productivity of maize has gone up. As you know, maize has uses in several other industries like poultry industry, feed industry, etc. And for a variety of reasons, some of which are not quite understood correctly, we are also now using maize for ethanol. As a result of which, we are now forced to import maize, and last 2 years we have been importing maize. So you can see that the yield of maize has gone up, but it has not gone up to a very high level. You can see that from 2.5 tons per hectare in 2013, it has now risen to about 3.4 hectares, 3.5 hectares. So there has been an increase, but not to the level to which we would have wanted. And you can see that the yield is very high in other countries. So for example, America में आप देखिए 10.8 hectare. China is about twice of us, 6.3 hectares, and so on. Our yield is only 3.4 hectares, which means there is a lot of scope for scientists, some of whom are represented here on this panel, to come up with seeds which will deliver high yield of maize. Now, hybrid maize has been a game changer, and in recent years we have seen its success in various states, especially in Bihar. Bayer, Syngenta and ICAR are major players. We can see that there is a lot of difference in the yield of maize in Kharif and Rabi. Kharif yield is lower, Rabi yield, especially in Bihar, is much higher. So there is a lot of scope. And this is a very important slide which I would like you to see. In West Bengal, the yield of maize is about 7 tons per hectare. Tamil Nadu, though the area is not very large, 7 hectares. Andhra Pradesh, 6 tons per hectare. Telangana, 5.2 tons per hectare. And Bihar, despite some very high yielding districts, it is 3.8 hectares, which means there is a lot of scope of science. Now, genetic improvement, I will not take much time here because this is the subject which we will be discussing in this panel. We have achieved success in case of rice. ICAR has released 2 varieties by using CRISPR technology for rice, and I do not know whether same technology can be used for maize, but this is where we are at the moment. And in case of biofortification also, genetic improvement in Africa has improved the variety of maize, and these are non-GM varieties. आप लोग अखबार में पढ़ रहे होंगे आजकल GM को लेकर देश में काफ़ी चर्चा है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि हम उनसे जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का ख़रीदें, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन ख़रीदें. हमारे देश में इसको लेकर किसी हद तक चिंता है. तो इस एक छोटे से तारुफ के बाद मैं शुरू करना चाहूँगा. सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर एस एल जाट, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च में, कि वो ज़रा ये बताएंगे कि मेज जेनेटिक्स में क्या रिसेंटली पोटेंशियल है, क्या इसमें अचीवमेंट हुए हैं, और क्या ये पॉसिबल है कि जो आर्मी वॉर्म की शक्ल में इसमें पेस्ट लगता है तो उसको जेनेटिक्स के ज़रिए क्या हम हल कर सकते हैं. ओवर टू यू डॉक्टर जाट. Thank you, sir. If we see the progress made in the maize genetics over the past few years, especially after 2000, is tremendous.
and after the emphasis of 2005, we totally switched on the single cross hybrid. And in that process, we have procured the various germplasm, and many times, often it is being asked that dent corn is good for this purpose and not the flint. So I must tell you that dent, as all of us who are sitting on this dais knows, rest of the people, that dent corn is a corn which is being grown in the USA, and it has a it grows better in the cooler climatic conditions. And if we take that here, it will not survive in the, especially in rainy season. There will be more pest and diseases, and the productivity will also be low. So what we did in the over the period of time, we made the semi dent, semi flint. Okay, so we made the dent by flint crosses, flint which is Indian corn you can say, and its grain is having more storability as compared to the dent corn. So we made the dent, semi dent, semi flint and flint type of the hybrids which are available in the market, and then we did the survey of the whatever available hybrids at present in the market. We are having 9% hybrids there are dent. Then the semi dents are around 30%, semi flint it is 35%, mostly semi flint. And if you see the season wise, most of the dent hybrids are dominated in the spring season, which is if you see the its early generations coincide with the whatever climate we are having in the USA. Okay, so dent corn is doing good. So all kind of hybrids are available, and we have analyzed the hybrid starch content also. In that perspective, we cannot say always the dent is better. Sometimes flints are also coming better. So storability as well as the, for this point of view, we can say there is difference, and definitely we can explore the potential whatever in the morning our director also said that we are having differences between dent and flint corn. So we are improving these hybrids, and after invasion of the fall armyworm in 2018, it poses serious challenges for the maize cultivation, and from 2019 onwards farmers started going on their field. And I would say, as my personal experience, the productivity of the maize has increased by invasion of fall armyworm, because farmers started going out there, because it's a 90 days crop or 80 days crop. Farmers were often ignored, they were not going in the field, but now they start going, and they are now making intervention of the post emergent herbicide. So coinciding with the fall armyworm, the use of the post emergent herbicides has also increased in the maize cultivation in the. So what we did, we have ingrained our fall armyworm resistance in our breeding program, and now all the genotypes are being tested. It's fairly agreed that without genetically modified, no genotypes are resistant. We are having some resistant genotype, but they are very poor yielder. So we are just ignoring them, but we are improving slowly. So most of the genotypes whatever we are releasing, they are now moderately resistant to moderately resistant kind of genotypes. But we are certainly looking for the fall armyworm resistant genotype. All the whatever we are sitting over the private or public sector, we are doing so. If you see the CRISPR technology, genome edited technology, we are targeting in the national system around 4 to 5 types of traits, and one trait is increasing the number of rows, kernel rows, and those kernel rows definitely will contribute towards the yield. Then another traits where we are decreasing the lignin content, so it will increase the quality of the silage. It will also increase the ethanol recovery from the hybrids. And one is on the bandit leaf and sheath blight, which is also very serious disease. On that also we are targeting our traits. So we are also working on genome edited, and we are fortunate to have one technology which were not available. Based on the mature seed, we are able to go for the transformation, and along with that, one more technology is there which we are just making more use of now in the public sector. Previously, private sector was also having one or two companies, but now most of the companies who are having DSIR or who are having their research facility over here, they are using double haploid technology, where we are going for increasing the fastening of our development of the hybrid. So this is on the one side, but at the same time we are just going for the diversification of our seed production side.
and we got a good success in the West Bengal. Our pioneer in this, Dr. Sanidas, is sitting over here. So sir have initiated, and now it is matured, and we are producing a sufficient quantity, sizable quantity, which we can say yes, 25,000 quintals of the seeds that are being produced in West Bengal. So this is first time happening. We can cross 10,000 quintals of the seeds, which is sizable quantity. Now we have also got initially success in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh itself for going for hybrid seed production. So these kind of the initiatives certainly will help to go for better genetics of the grains to help the farmers to improve their productivity. Thank you very much. In fact, Dr. Saab is here. I'm really happy. In fact, West Bengal is one of the few states where seed distribution through procurement of seeds from private companies is quite streamlined, and that is why you saw in the slide which I showed that the productivity in West Bengal is about the highest. So we have on the panel Dr. Venkatesh Selvarangam. He is from Kotiva. As you know, in mustard, Kotiva has been a great success, and they have been working with mustard farmers in Rajasthan, due to which the yield has gone up. So Dr. Selvarangam, do you think the rainy season maize yield can be enhanced in India to boost the production? And what is Kotiva going to contribute in this respect? Yes, sir. Yeah, thank you sir for the pertinent question. आज सुबह से हम लोग देख रहे थे, कई स्पीकर्स ने ये कहा था कि खरीफ मक्के में जो यील्ड है इसकी मात्रा रबी या फिर जैद मक्के के मुकाबले में कम है. तो डॉक्टर साहब का क्वेश्चन ये है कि क्या हम खरीफ मक्के में यील्ड की स्तर को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि नहीं. सो डेफिनेटली खरीफ मक्का को समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बारिश तो खूब होती है लेकिन कुछ जगहों पे बारिश नहीं होती है, और मक्का जहाँ पे हम लोग ग्रो करते हैं वहाँ पर ऐसे होता है कि 7 मिलियन हेक्टेयर में सारे देश में खरीफ में मक्के की खेती होती है. उसमें 70%, प्रीवियस स्पीकर्स ने भी कहा था, 70% जो है वर्षाधार है. इसका मतलब है कि बारिश हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, या तो डिलेड ऑनसेट ऑफ मानसून रहता है या फिर बड़े बड़े गैप्स आते हैं विद इन द मानसून पीरियड. नॉर्मली जून से लेकर के सितंबर तक होता है खरीफ के मक्का, और उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 110 से 115 दिन के बीच में होती है. तो इसमें हम लोगों को पहले ये देखना है कि जो जेनेटिक्स के माध्यम से हमको 60% तक हम लोग जो है इस यील्ड गैप को एड्रेस कर सकते हैं. ये कैसे कर सकते हैं? सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स एक माध्यम है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो हेटेरोसिस को एक्सप्लॉइट करता है एक बड़ा माध्यम है. एंड जो इंडिया में जैसे लोगों ने कहा कि खरीफ में अराउंड 75 to 80% ओनली इज हाइब्रिडाइज्ड, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टिल अंडर OPVs. सो as the OPV conversion to hybrids will occur, the yield also will increase because the hybrids will give higher yields compared to the varieties. This is one thing. Second thing is, apart from the 60% contribution of genetics, there is a contribution of 20 to 30% with regard to the management. Management can be in terms of the optimum plant population per unit area. Say for example, हम लोग जब खरीफ की मक्के की खेती करते हैं तो जनरली 22 से 23,000 पर एकड़ प्लांट का मात्रा होता है, जो नंबर होता है. लेकिन अगर इसको हम लोग इवन 20% तक इंक्रीज़ कर दें और 26 से 28,000 प्लांट्स पर एकड़ कर दें तो हमारा यील्ड जो 15-16 क्विंटल पर प्रति एकड़ होता है वो आराम से 20-22 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ाया जा सकता है. तो इसी मात्रा में जो 70% खरीफ मक्का का एरिया जो रेनफेड है उसमें पॉपुलेशन ऑप्टिमाइजेशन से हमारा यील्ड जो है 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ हम बढ़ा सकते हैं. उससे आप देखिए कि जो 70% ऑफ 7 मिलियन हेक्टेयर्स का मतलब है ऑलमोस्ट 5 मिलियन हेक्टेयर्स. तो इस 5 मिलियन हेक्टेयर्स में अगर प्रति एकड़ में अगर हम 4 से 6 क्विंटल का यील्ड बढ़ाएंगे जस्ट बाई फॉलोइंग प्रॉपर स्पेसिंग एंड ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, तो कितना बड़ा यील्ड हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है. क्योंकि हम देख रहे हैं कि 45 million tons से we want to go to up to 75-80 million tons in the next 5 to 6 years because the demand and supply situation are very incongruous. So towards this end, what I am thinking, optimum population, timely operations. That means the timely planting, selecting the right duration of hybrid to plant. क्योंकि हमारे यहाँ खरीफ मक्का में हम लोग
जो शीत जब अर्ली मेच्योरिटी होता है, दैट मीन्स 90 डेज में जो मेच्योर होता है, 100 दिन में जो मेच्योर होता है और 110 दिन में जो मेच्योर होता है, 3 किस्म के वैराइटीज़ होते हैं। हमारे बारिश का पैटर्न के हिसाब से जो फिट होता है उसको राइट जेनेटिक फिट हमको लेना है, हाइब्रिड ही लेना है। एंड थर्ड थिंग इज़ मैनेजमेंट अच्छा करना है, टाइमली प्लांटिंग करना है, टाइमली विंडो में प्लांटिंग करना है, टाइमली वीडिंग करना है, और अगर हो सके तो हर्बिसाइड यूज़ करना चाहिए, because kharif mein weeding is a very troublesome activity. One is availability of labor is decreasing, and then when the rains come, the soil becomes very unmanageable and weeding becomes tough. So if we are using herbicides, we can use it. Second thing is nutrition management. जो खाद हम देते हैं किस मात्रा में दे रहे हैं, ये तो बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, क्या हम सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। मध्य प्रदेश खास करके सोयाबीन से सारा एरिया जो है, much of area is converted to corn. But the point is, in soybean, in pulses, people don't apply basal dose of phosphorus and potassium. And the same practice harbors into the kharif maize also. So with just a minimal dose of 120, 60, 40, what we say of P and K application, I think the yields can be increased easily by 3 to 4 quintals per acre. This is one key intervention what we can say. Other thing is, जब बारिश होता है, खाद का मैनेजमेंट जो सॉलिड फर्टिलाइजर से होता है वो कम होता जाता है। उसके टाइम में हम लोग अगर फोलियर न्यूट्रिशन स्प्रेस लेंगे या इरिगेशन के माध्यम से फर्टिगेशन देंगे तो काफ़ी हद तक ये जो फर्टिलाइज़र का जो यूटिलाइजेशन यूज एफिशिएंसी है ये हम इंक्रीज कर सकते हैं। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस टू थिंग्स, देयर इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्लाइमेट. वी हैव सीन early onset of monsoon, late onset of monsoon, big gaps in the monsoon period, and then farmer may have critical irrigation to give, may not have irrigation, just rain fed, he plants and then harvests. So in this sense, what I'm saying is climate resilience in the hybrids has to be built up. This is through one technology which Pioneer is giving is the Aquamax technology. By this Aquamax technology, what is happening is हर बूंद के पानी से ज़्यादा ग्रेन हम ले सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स है जो रिस्पॉन्ड करता है, और खास करके जो फ्लावरिंग के बाद और रेन फिलिंग टाइम में जो मॉइस्चर स्ट्रेस होता है, इस टाइम में अगर हम लोग हाइजे हाइब्रिड निकालें जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं कि कम मॉइस्चर में भी अच्छी तरह से टर्मिनल ग्रेन फिल दे करके मेच्योर हो, तो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है. दिस कॉल्ड Aquamax टेक्नोलॉजी, व्हाट पायनियर इज ऑलरेडी डन इन ट्रॉपिकल वर्ल्ड एज वेल, नॉट ओनली यूएस में तो है ही, ब्राज़ील में भी किया हुआ है. ब्राज़ील में हम देख रहे हैं रफली 16 मिलियन हेक्टेयर है, 64 मिलियन टन्स इज द प्रोडक्शन, 4-4.5 टन्स पर हेक्टेयर इज द एवरेज यील्ड. सो हम भी ट्रॉपिक्स में हैं, हम भी जो है 3.5 से 4.5 टन्स तक अपना उपज बढ़ा सकते हैं. तो किस माध्यम से, बाय यूजिंग द climate resilient crops and also crops like the Aquamax technology what we can have in our place. आज के दौर में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इन्फ्यूजन है, और जो जर्मप्लाज्म है उसको अगर हम मार्कर लेवल सिलेक्शन से अगर एडवांस करेंगे और हायर यील्डिंग क्रॉप्स विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर हम डेवलप करेंगे, खास करके रेनफेड एरियाज में हमको मीडियम मेच्योरिटी हाइब्रिड्स पे फोकस करने का ज़रूरत है. इट इज़ नॉट दैट हर हाइब्रिड हर जगह में कर लेगा. जहाँ पर पानी की मात्रा कम अवेलेबिलिटी में हो, मीडियम मेच्योरिटी हाइब्रिड्स हैव टू बी गॉन, एंड देन वेयर द वाटर अवेलेबिलिटी इज नॉट लिमिटेड, वी कैन गो इन फॉर फुल मेच्योरिटी हाइब्रिड्स विच विल गिव हायर यील्ड. सो इन ऑल दीज फ्रंट्स आई थिंक वी कैन गो फॉर एनहांसिंग द मेज यील्ड्स. थैंक यू सो मच. तो डॉक्टर साहब से ये तो बिल्कुल वाजे हो गया कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट अपनी जगह है, हमें उसमें कोशिश करती रहनी चाहिए, लेकिन जो किसानों तक अच्छी प्रैक्टिसेस पहुंचाना है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है यील्ड बढ़ाने के लिए. मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो किसान भाई हैं, आगे आके वक्त रहेगा तो हम ज़रा आपसे भी सुनना चाहेंगे कि डीडी किसान आप तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, आप उसका कुछ फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं. मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा ये डिस्कशन हो जाए, हम साइंटिस्ट की बात सुन लें, फिर ज़रा हम आपकी भी बात सुनना चाहेंगे. अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सत्यदेव वी से, जो एडवांटा इंडिया में साइंटिस्ट हैं, कि एडवांटा में क्या बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स इस्तेमाल करके कोई नई वैरायटीज़ लाई जा रही हैं, और क्या ऐसी ट्रेड्स हैं जिनको प्रायोरिटी दी जा रही है एडवांटा में. क्योंकि हमने देखा कि मेज़ में जो प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है तकरीबन 1 टन का, जैसा कि मैंने दिखाया था पिछले 10-15 साल में, तो उसमें हाइब्रिड्स का बहुत बड़ा रोल रहा है. तो डॉक्टर सत्यदेव हमें समझाएं कृपया करके कि आगे चल के क्या एडवांटा की तरफ से हम उम्मीद कर सकते हैं.
Thank you, sir. Thank you very much. In Advanta is a long history company. Germplasm, tropical germplasm is more than 50 years research experience. It is there, developed through 50 years of research. So what we do in Advanta is a tropical germplasm. We are having very good germplasm, and we also, along with conventional breeding, we also use a lot of biotechnological tools that are available now. One is like Dr. Jat Saab has already mentioned that double haploids, everybody is using it now. All the seed companies, my colleagues, in their breeding programs, they are using it. But if you look at it in the last 10-15 years, the DH efficiency also, lot of process improvements have been done, and now like in we are higher percentage of double haploids are used, so that we develop more and more new inbreds used for making new hybrids mostly. And also the technology wise also we have moved from if you look at it in early 90s it was all double cross hybrids. Now we have moved to modified single cross hybrids in the early 2000s, and now if you look at it, majority of the hybrids which yield better higher yields, which can give more productivity are single cross hybrids. So to develop single cross hybrids, you need to churn out lot of hybrids continuously year after year. You have to test thousands of hybrids. So for that, DH is one tool that we are using on the biotechnological side. Another is of course genome based selection. That is what in maize is a technology crop. Lot of genetic improvements and genetic studies have happened in most of the germplasms. Similarly, in our germplasm also we are focusing on that genome based selection. So that will also give us an edge, so that we can bring in more and more high productivity hybrids in lesser time. Instead of taking say 9 years, 10 years to develop a high productivity hybrid, we can bring it in a shorter duration. So that is another technology. The third one is as Venkatesh also has mentioned, that marker resisted selections for specific traits. So when we do any breeding program, it is very important that we need to look at the farmer needs, what farmers need, and what are their pain points in a particular season, whether it is Kharif, Rabi or spring season. So we characterize first all those profiles for the farmer needs. Then based on that we target the traits where the markers are available. If the markers are available, then it is very easy to use that technology, so that we bring in that trait from the germplasm at germplasm level to our inbred advanced improved lines. So that is one thing. Like that we can focus on several biotic and biotic stress traits, like any disease trait that we look at it, northern leaf blight or the corn, any other leaf diseases. So we are focusing on that. So those are the traits which we focus. And then the third thing is of course the CRISPR technology. At this moment of time, yes, it is still, we have a tool in our hand, but how we use it, how precisely we use it, and what are based on the IP availability and all, we are looking into that, because it is not clear on the IP side yet. But still, as far as maize is concerned, definitely this tool can be used to target specific traits for development of high producing hybrids. So these are the things which we are looking at it in Advanta. Thank you. थैंक यू सो मच. तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे एडवेंटा जैसी बड़ी कंपनीज कोई नए क्रिस्पार टेक्नोलॉजी यूज़ करके या और जेनेटिक टूल्स यूज़ करके अच्छे सीड्स लाएंगे, जिससे कि और भी उत्पादकता बढ़ सके. अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राम सिरोही से. डॉक्टर राम सिरोही, बायर सबसे बड़ी कंपनी है, आप जानते हैं. बायर ने तो तमाम चीज़ों में, बहुत सारी क्रॉप्स में इतना साइंटिफिक रिसर्च करके ऐसे सीड्स दिए हैं जिनसे उत्पादकता बहुत बड़ी है. तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि
एक तो फार्मर्स अच्छी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके यील्ड बढ़ा सकते हैं जैसा कि बताया गया। इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट और फार्मर्स की प्रैक्टिस के अलावा हो? क्या चीज़ आपके माइंड में ऐसी है जिससे कि यील्ड बढ़ाई जा सकती हो? Thank you, sir. Thank you for that nice introduction. And so, सर कह रहे थे कि बायर रिसर्च में बहुत सारा पैसा खर्च करती है। तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि एक साल में हर साल हम लोग 2 बिलियन यूरो जो कि 19,000 करोड़ रुपया रिसर्च में R&D में स्पेंड करती है, और सिर्फ पैदावार बढ़ाने के लिए कि कैसे हम किसानों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बड़ी खुशी हुई इस विषय पर चर्चा करते हुए, क्योंकि हमारी जो पैदावार है वो एक पेन पॉइंट है। अगर हम बात करें कि हमारी पैदावार आज मैं डॉक्टर जाट से लंच के ड्यूरिंग डिस्कशन कर रहा था कि 3.5 टन्स पर हेक्टेयर है, और हमारी जो करंट प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर का 37.5 मिलियन मीट्रिक टन है, और हमारी रिक्वायरमेंट 70 मिलियन मीट्रिक टन अगर हम 2030 तक तो देखते हैं। तो लगभग हमें डबल करना है। उसको डबल करने के लिए हमें निश्चित तौर से कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो अपने आप में एक तरह से क्रांतिकारी हो, और उनमें जैसे कि R&D के थ्रू पैदावार बढ़ाने के लिए हम लोग जो ब्रीडिंग के थ्रू और जो नई टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू रिसर्च कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। जैसा कि सर ने बोला कि उसके अलावा और क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारी पैदावार बढ़ो। सर एक तो हम ये कर रहे हैं कि हम जो भी हाइब्रिड टेस्ट करते हैं उसको उस पर्टिकुलर स्टेट में जाके उस फार्मर के फील्ड पे जाके उसके साथ पार्टनरशिप करके डेवलप कर रहे हैं। सो इट्स लाइक अ ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ अ हाइब्रिड। तो उसका डेटा लेके एंड फिर हम उसको यूनिवर्सिटी में टेस्ट करके और अप्रूवल के लिए यूज़ करते हैं। तो आई थिंक वो एक बड़ा मेजर फैक्टर है। दूसरा, हम बहुत अर्ली स्टेज से ही हमारे जो पार्टनर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर, चाहे वो IIMR हो, जैसे अभी न्यू कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो हम लोग बहुत अर्ली ऑन उनके साथ पार्टनर कर रहे हैं, सो दैट हम साथ में मिलके उसको पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान की क्या क्या नीड है। और बीइंग बायर हम लोग सिर्फ मक्का के बीज में नहीं है, हम मक्का की पूरी जो फसल है उसमें जो जो उसकी इनपुट रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट है, जैसे आप अभी जायद फसल की बात मंत्री जी कर रहे थे, सूट फ्लाई एक बहुत बड़ा इशू है, तो सीड ट्रीटमेंट हम लोग उसको शुरुआत से प्रदान करते हैं, उसके जो कि प्लांट स्टैंड इंश्योर करती है। उसके बाद चाहे उसमें जैसे 2018 के बाद फाल आर्मी वार्म का एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, तो हम लोग उसके लिए भी हमारे जो इंसेक्टिसाइड है वो रजिस्ट्रेशन में चालू है, हम लोग वाइको की रजिस्ट्रेशन के लिए लगाया हुआ है। उसके बाद वीड कंट्रोल में लॉडिस एक बहुत ही मतलब अपने आप में एक जाना पहचाना खरपतवार नियंत्रण के लिए बायर का है। और इसके अलावा फंजीसाइड, चाहे वो नेटिव हो या जो दूसरे फंजीसाइड हो, वो सारे पूरी जो फसल प्रक्रिया है उसमें सारी में प्रदान करते हैं। एक और बड़ा अच्छा पॉइंट सर, रिस्पेक्ट स्पेसिफिकली टू व्हाट यू आस्क कि इसके अलावा और क्या कर रहे हैं। हमारा एक फार्म राइज प्लेटफॉर्म है सर, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस पे हम किसान को जानकारी देते हैं। क्लोज टू 1 मिलियन फार्मर हमसे जुड़े हुए हैं मक्का के, सिर्फ मक्का की बात कर रहा हूँ मैं। 1 मिलियन सर, 10 लाख, हाँ। तो वो जानकारी हम सीधी उन तक पहुंच सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अभी कुछ टाइम से देखा होगा कि डिजिटल का एडोप्शन किसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे आपने किसान दूरदर्शन के बारे में भी पूछा, तो किसान सीधा जुड़ता है अभी धीरे धीरे, हालांकि ये स्लो है, लेकिन क्योंकि जो हम हमारा एक अच्छी बात यह है कि बीइंग फोकस्ड ऑन मेज रिसर्च, मक्का में ही जानकारी करने के कारण हम लोग बहुत सारे किसानों से फार्मर मीटिंग, जो किसान गोष्ठी होती है गांव में, उनके थ्रू जुड़ते हैं और फिजिकली जुड़ते हैं। तो हमारा जो फिजिकल टीम है वो जुड़ती है। उसके बाद से, क्योंकि आप हर दिन तो गांव में रह नहीं सकते, तो आप उनके साथ अपना डिजिटल कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं ताकि वो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार ऑन बोर्ड हो जाए। उसके बाद उनकी जो भी ज़रूरत है आप वो डिजिटल उसके थ्रू उसको पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो कैचमेंट एरियाज़ में जो डेवलपमेंट है, उनमें ना सिर्फ IIMR बल्कि कुछ एक जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर भी हैं, जैसे ग्लोबल स्पिरिट से मिस्टर अरोड़ा यहाँ पे शायद होंगे, उनके थ्रू हम लोग वेस्ट बंगाल में 5,000 एकड़ फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो ज्योग्राफीज़ है वहाँ जहाँ पे भी, जैसे नेस्ले के साथ मिलके हम जो साइलेज एरिया डेवलपमेंट है उसमें काम कर रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी हमें से फॉर एग्जांपल लगता है कि यहाँ पे ये पार्टनर के ऑन बोर्डिंग से
किसान की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहाँ पे हम बड़े खुले दिल से उनके साथ एक पार्टनरशिप करके और किसान की पैदावार बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत सारी नई चीज़ें देखिए आपने बताई बायर की तरफ से, और बायर के केमिकल्स तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। सो नाउ वी हैव डॉक्टर सदाशिवम। डॉक्टर साहब, वॉट एवर वी हैव नॉट कवर्ड, you may like to, there is no question for you. Okay, so you can talk about anything you want. Okay, so we spoke about all the technological interventions, farm practices, and other than that, one more. Say something about your company first. Okay, so I work in Syngenta. Syngenta is a chemical plus seed company, you know, and it is very good in the rainy market. So whatever we discussed till now, we discussed about technology, we discussed about intervention. Other than that, few more things. One important thing what is very very important for success of a hybrid maize is the producibility of the hybrids, right? So I just want to emphasize on the producibility of the hybrid, because that is the one which is going to be win-win for the farmer as well as the producer, right? Here when the farmer it comes, it's the production farmer as well as the commercial farmer, because finally everyone has to be successful. So as a breeder, as a technology company, as whoever develops the hybrid, we need to work on producibility of the hybrid. And as a breeder, it's not easy, because your hybrid has to perform somewhere, but your production happens in a different environment. So you have to make sure both works very good, and then finally you get a very stable hybrid for the commercial purpose. That's one important point I just want to mention. थैंक यू वेरी मच। तो अब साहब जो यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे उनकी बात तो सुन ली, अब किसान लोग ज़रा बताएं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दो तीन चीज़ें के बारे में आप बताइए। एक तो हम यहाँ दिल्ली में बैठ के, हमारे IAS में बड़े बड़े IIT के इंजीनियर आते हैं तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बातचीत होती है, एग्री स्टैक बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि हर किसान का ज़मीन का भी आधार बन जाएगा। तो ये फील्ड में क्या है, मक्के के किसान बताएं जो मक्का उगा रहे हैं, कि ये कुछ है ग्राउंड लेवल पे, एग्री स्टैक वगैरह की जो बात होती है, आप जानते हैं? मैं सर बिहार प्रांत के कोसी सीमांचल एरिया से आता हूँ। हेलो हेलो, मैं सर बिहार प्रांत के कोसी सीमांचल एरिया से आता हूँ, जो कि अभी मक्का का पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा हब है, और उसमें जितने भी ये प्राइवेट कंपनी हैं जिनको मैं भी सुन रहा था, सभी लोगों का कुछ न कुछ योगदान है। और जिस वक्त हम खेती शुरू किए थे तो 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ हम लोगों को आता था, तो सोचते थे कि बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन अभी के समय में सर हम लोग 50 से कहते 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ ले रहे हैं सर उत्पादन। कोसी सीमांचल की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर कि प्राकृतिक मार हम लोगों को झेलना पड़ता है, बंगाल की खाड़ी बहुत नज़दीक है वहाँ से। उसके बाद कुछ ड्रॉबैक है हम लोगों के साथ, सॉइल टेस्ट नहीं है, आपको सो क्या कहते हैं वाटर टेस्ट नहीं होता है। ये जो प्रधानमंत्री सो कहते इंश्योरेंस जो निकला है, सो क्या बीमा योजना, ये सिर्फ कागज पर है, सरजमीन पर नहीं है सर। तो ये सब मार हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। एक शर्त है, इससे पूर्व वो बतला रहे थे जो 47 तक में हम लोगों को फसल का उत्पादन डबल करना, और उत्पादन बढ़ने का सर कारण है, उत्पादन बढ़ने का कारण है कि उच्चतम गुणवत्ता वाला बीज हम लोगों को इन लोगों के इधर की तरफ से मुहैया कराया जाता है। प्राइवेट कंपनी के सो क्या कहते हैं ये हों सो साइंटिस्ट हों या गवर्नमेंट साइंटिस्ट हों, साल में एक बार हम लोगों को मक्का का ट्रेनिंग दिया जाता है कि कितना बेसल में खाद डालना है, कौन सा हर्बिसाइड इस्तेमाल करना है, कब इसमें सो क्या कहते हैं इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना है, कितने समय पे पानी देना है, सिंचाई देना है। तो ये सब कारण और किसान का मेहनत, और सबसे बड़ी बात कि उच्चतम गुणवत्ता बीज का। बहुत अच्छी बात है। तो ये लोग आके ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको? जी जी, तो बहुत अच्छा है, दे रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र भी कुछ करता है? कृषि विज्ञान केंद्र में वही तो कह रहे हैं सर, वही तो हम लोग क्या कहते हैं पिछड़ रहे हैं।
कोई सॉइल टेस्ट हमारे पास नहीं है, नहीं है। अच्छा। वाटर टेस्ट नहीं है। ठीक है, समझ गए। हम अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं। नहीं, चलिए समझ गए। आपने बिहार का बता दिया, कटिहार आप तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अच्छा, हमारे पास कर्नाटक के भी किसान है ना? हाँ, कर्नाटक के भी। कुछ बताइए साहब, आपके यहाँ भी क्या है? मक्का तो आपसे शुरुआत हुई थी, पहले तो आप ही के यहाँ होता था, और आंध्र प्रदेश में हम प्रोक्योर करते थे FCI में। बिहार तो अभी आया है पिछले 10 साल में। नहीं सर, हमारा सबसे तो खेती तो अच्छा होता है सर, और बारिश भी, क्योंकि इंडिया में कर्नाटका ऐसा है, कोई भी घटना हो कर्नाटका सेफ रहता है, क्योंकि उधर पहाड़ भीड़ का वैसा बिहार जैसा ऐसा कोई भी कुछ नहीं है, वो अच्छा जैसा है। और पहला अभी एकड़ 25 से 30 क्विंटल काटता था, अभी तो मैंने बता दिया तभी सेमिनार के वक्त में, वो सभी इधर से अभी भी हमारे तरफ 40 से क्विंटल तक वो मक्का पिक रहे। अभी वो अडवांटा कंपनी का मैं पिछले साल बोला था ना, वो एक एकड़ में मैं 50 क्विंटल का उत्पादन किया था, क्योंकि उधर हमको कोई भी करने पहले हमको सीड्स का क्या है, कौन सा सीड्स लेना है वही भी हम तय करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कंपनी मार्केट में बहुत सारा कंपनियां आते हैं। वो किसान लोगों को क्या होता है, थोड़ा पैसे का मतलब होता है, सो कौन सा तो सस्ते में का चीज़ लेता है, उससे भी थोड़ा मतलब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, ये मक्का में भी कोई फेक सीड की प्रॉब्लम है? आप है सर, है बताएं सर। हाँ, या एक्चुअली जो ब्रांडेड हम कहते हैं जी, कि जो एस्टैब्लिश्ड कंपनी विथ रजिस्टर्ड trademark बेचता है, whether it can be Pioneer, it can be Bayer, it can be Advanta, these all bring the seed after research, and also they certify the seed, what we call as the truthfully labeled seed, कि हमारे बीज में ये जर्मिनेशन परसेंटेज है, और ये जो है मॉइस्चर है, और ये सारे इसका जो सीड ट्रीटमेंट किससे किया गया है, इस सब का जो है गुणवत्ता का प्रमाण जो है बैग पे ही छपा होता है। लेकिन ऐसे भी कुछ प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में जो कि जैसे कॉटन में F2 सीड को बेचा जाता है और किसानों के साथ धोखा किया जाता है, इसी तरह मक्के में भी जो है people are mixing the grain with the seed and then selling to the farmers, whereby the quality is going down, germination percentage is unknown, and also when any complaint is given against that particular dealer, there is no proper follow-up mechanism to prove that it has been purchased from XYZ company. They are fly-by-night operators. It is that. एक अच्छा इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने सोचा सर, एवरी पैकेट हैज़ अ यूनिक QR कोड। आप स्कैन करते ही यू विल गेट अ मैसेज कि ये ऑथेंटिक है, कि सो आई थिंक दैट इज सर्विंग अ वेरी बिग पर्पस, बिकॉज वो सबका सर क्या कहते हैं डुप्लीकेट बन जाता है। किसान लोग, हम किसान हैं सर, हम किसान हैं, आप कितना भी कुछ कर दीजिए, आपके पैकेट पर क्या है हम सब जानते हैं। नहीं, आपकी बात बाहर सही से भी हम, हाँ नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है जुड़े कि हुए हैं, जो और सबसे ज्यादा अभी जो धूम मचाए हुए हैं हम लोगों के यहाँ, ये 35-26 और 35-32 जो किसान को सर का पूछना है कि कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, तो क्या तरीके से किसान को जैसे वो नहीं हो पा रहा है। आप लोगों का रेपर कहाँ उपलब्ध हो जाता है उन लोगों को? खेत में फैक्ट्री लगता है, वहां पर उसमें बीज पैक होता है, और 80% किसान जाहिल है, उसको दे दिया जाता है। वो बेचारा कुछ नहीं समझ रहा है, जो क्या देखता है जहाँ चलो भाई ये बायर का है तो ये पायनियर का है, हमको अच्छा सीड मिल गया। ये तो जो बड़ी कंपनियां हैं उसका बीज तो ऐसे नहीं कोई पैक करेगा ना, रेपर मिल जाता है सर, रेपर मिल जाता है। हाँ जी, रेपर मिल जाता है। चलिए पंजाब से सुनिए। हाँ जी सर, मैं अपने किसान भाई से थोड़ा, मैं जसप्रीत सिंह फ्रॉम पंजाब, मैं डेयरी फार्म, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म हूँ, जिला बठिंडा से सर। हाँ, मेरे पास 80 गायें हैं, मैं नेस्ले को दूध सप्लाई करता हूँ। जो डॉक्टर साहब ने बोला था कि नेस्ले से भी हमारा टाई अप है, तो मैं अपने किसान भाई से थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि जो बड़ी कंपनी है ना, उनकी जो पैकिंग अब बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर ये बात होनी चाहिए कि कंपनी अपने फार्म को उसको गाइड करे भी, हाँ आप बीज लेते समय ये पैकिंग का ध्यान रखें, जे कंडीशन है इसको देखें, इस पर बार कोड लगा है, इस पर टेप लगा हुआ है, या कुछ भी है जो जिसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। पर मुझे नहीं लगता कि जो बड़ी कंपनी है उसमें बीज नकली हो सकता है। सर इनके विचार से मैं सहमत हूँ, वो है, लेकिन 70% किसान जाहिल है, जिसको कोई जानकारी नहीं है जिसमें क्या रहता है नहीं रहता है। सुनिए, ये तो हम अब
इसलिए नहीं मानेंगे, उसका जानकारी फायदा वो लोग उठाता है। अरे सुनिए, तो अब तो हर एक के पास फोन है, इतना टीवी पे आ रहा है, डीडी किसान चल रहा फिर है, भी सर जगह पर जानकारी की जाइएगा तो बहुत पीछे है। वो कह रहे हैं अवेयरनेस की वो वजह कह रहे से हैं 10 कुछ लाख किसान पे सीधे पहुंचते हैं। अच्छा सुनिए, मेरा आपसे सवाल है, डेयरी आपके पास 80 गाय हैं, यस सर, तो इनकम टैक्स में आप आ रहे हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि डेयरी एग्जेम्प्टेड नहीं है ना। नहीं सर, वैसे तो सरकार ने अभी जो डेयरी पे है, जो गाय कैटल फीड है, उसको टैक्स से रखा हुआ है, छोड़ दी रखा है, पर हम भी कुछ ना कुछ टैक्स तो पे करते हैं ना, जब हमारी आमदन ज़्यादा बढ़ती है। नहीं, असल में फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑडियंस हियर, इनकम फ्रॉम डेयरी इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स. Income from farming is exempted. We tried a lot when Mr. Sharad Pawar was the agriculture minister. We took it up several times with the finance minister, Mr. Chidambaram, that dairy income should also be exempted, but it was not agreed. So, but I hope you are not facing any problem so far. Yes sir. आराम से बैठो जी, बताइए मत किसी को 80 गाय हैं आपके पास. अच्छा जी, और किसी स्टेट के किसान कुछ बताना चाहें? हेलो सर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ. मैं जी सर जनपद एटा उत्तर प्रदेश से हूँ. अभी जो हमारे भैया जी अपने विचार साझा कर रहे थे और उधर बाहर के जो अधिकारीगण बैठे डॉक्टर साहब हैं, तो उन्होंने भी जो उस पर स्क्रैच करने के लिए, और वो क्या होता है, कोड होता है, दो चीज़ें होती हैं. इन सब के पीछे एक हल है, वो किसान नहीं करता है. दुकानदार की कभी हिम्मत नहीं है कि नकली बीज दे दे किसान को. क्या बिल नहीं देता. और अगर किसी भी कंपनी का बीज हो, किसी भी कंपनी का हो, A to Z, ये तो सिक्का कंपनी है बाहर, सेजेंटा है, किसान अगर दुकानदार से बिल मांग ले बीज लेते समय, और किसान अगर वो दुकानदार अगर बेच भी रहा है नकली बीज, तो मैं दावे से कह रहा हूँ किसान को किसी कीमत पे वो बीज नहीं देगा. नहीं होगा तो मना कर देगा. ये सबसे अच्छी रोक है. वरना भैया कह रहे हैं वो गलत नहीं है, रैपर भी मिल जाते हैं, बीज भी भर जाता है, खेतों में सब कुछ हो जाता है, और किसान जो है छला सा रह जाता है बाद में. उसके पास कोई सबूत नहीं होता है कि मैंने बीज, वो भले ही दुकानदार के पास कहे जाके कि मैंने आपसे लिया है, वो कहेगा नहीं लिया है. क्या सबूत है उसके पास? बहुत अच्छा सुझाव. तो ये तो सुझाव मेरे पास है. सर, मैं राजस्थान से हूँ, भिलवाड़ा ज़िले से. सबसे ज़्यादा सर मक्का में अभी दिक्कत आ रही इल्ली की. इल्ली उसका सर कोई हल नहीं है. दवा डालते हैं 20 दिन 15 दिन में वापस रिटर्न आ जाती है. मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा सर, इसका सबसे बड़ा इशू हो रहा है प्लांट स्टैंड के ऊपर. अर्ली स्टेज में ही प्लांट स्टैंड ही कम हो जाता है फार्मर का, तो पैदावार, और किसान इन एंटीसिपेशन कंट्रोल नहीं ले पाता है, क्योंकि जब तक वो आता है तब उसके बाद ही पोस्ट फैक्टो अप्लाई करता है. उससे इतना तो बहुत अच्छा सवाल आपने. देखिए, जो ये इल्ली है, कोई भी आप दवाई छिड़किए 15 दिन से ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती है. सब करती है 10 दिन तक. ठीक है ना. आपको जो सबसे बड़ा जो हमारा अनुभव है सभी किसानों के साथ काम करके, आप पहला तो ये बीज को उपचारित करके बोएं. ठीक है ना. उसमें आप चाहे क्लोरेंट्रानिलिप्रोल FS का सोल्यूशन आता है या फोर्टेंजा डुवे का सोल्यूशन आता है, 5 से 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम. सर का गोचो भी आता है, हम लोग उसका गौचो से ये वाला कीड़ा कंट्रोल नहीं होता है. नहीं होता. ये होता है जो सर कह रहे थे सूट फ्लाई, वो कंट्रोल होता है. ठीक है. दूसरी बात, आप 15 से 20 दिन के ऊपर अपनी फसल को जाके देखिए. 20 दिन के ऊपर अगर उसका आ रहा है तो आप एक प्रोफिलाइटिक स्प्रे नीम बेस्ड एजाडेक्टिन या किसी का पूरे पौधे को नहला दीजिए, छोटे छोटे पौधे को. ठीक है. 5-7 दिन वो आपको रोकेगा. एक स्प्रे आप भी 20-25 दिन के आसपास अगर आप करते हो, और पौधे की गोब में करना है, ऐसे नहीं आपने ट्रैक्टर वाला स्प्रेयर की वो पंप से किया है. अगर उससे करना है तो आप मत करिए, आप बैठे रहिए. इसको खाने वाले प्राकृतिक शत्रु है. ये हमारा पर्सनल अनुभव है सर. जब हम शुरू में जब आया था ये कीड़ा 2018 में, तो इसको 40% दूसरे कीड़े खाते थे. इसकी कीड़े की लट को 40% दूसरे खाते थे. आज की डेट में 90% से ज़्यादा इस कीड़े को दूसरे कीड़े खा रहे हैं. ठीक है. तो एक जो अंडा देता है ना, वो लगभग 100 के आसपास अंडे होते हैं एक पौधे के. आप देखोगे कितने पौधे होते हैं जो अफेक्टेड है.
तो आप इसको थोड़ा टेक्टिकली मैनेज करना है। आप अगर ज़्यादा स्प्रे करोगे, वो जो बड़े वाला स्प्रेयर है ना जिससे हम ट्रैक्टर के पीछे हैं, किसान कहेगा आप तो कहते कहते यहाँ बड़े बड़े बातें कर देते हो, गोलियाँ फेंक देते हो, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आराम से बैठो, ये अपना आप कंट्रोल हो जाएगा। बारिशें अच्छी होती रहेगी तो अपना आप कंट्रोल होगा। आप एक स्प्रे करना है चाहे 2 स्प्रे करना है, आप पौधे के बीच वाले भाग में गोब के अंदर एक एक गोब में जाके करना है। अभी एक नई दवाई और आने वाली है, जो पहले हम दवाई डालते थे मक्के के दाने के साथ मिला के, वो दवाई भी आने वाली है सॉल्यूशन, जो मक्के के दाने में उसको डाल देंगे, 15-20-25 दिन तक वो रहेगी। इतनी दिन हमें इसका कंट्रोल चाहिए, तब तक उसको खाएगा वो कीड़ा मर जाएगा, दूसरे कीड़े भी नहीं मिलेंगे। वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन आ रहा है। और मुझे लगता है सर वो जो क्या करते हैं उसको मक्के के दाने के ऊपर ही उसको इनग्रेन कर दिया स्पिनोटेरम को, ठीक है। तो ऐसी दवाई आ रही, तो मुझे लग रहा है वो भी एक अच्छी दवाई, इसका हम इस बार थोड़ा पायलट लेवल पे वो कर रहे हैं, तो एक मतलब इसको कंट्रोल करने में भी थोड़ी और आसानी हो जाएगी। तो ये तो बड़ा अच्छा है, इन्होंने बताया कि कैसे आप केमिकल्स इस्तेमाल करके ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ऑर्गेनिक के फ़ैन हैं, उनको लगता है बगैर केमिकल के भी खेती हो सकती है। तो ज़रा आप किसान लोग बताएं कि बगैर केमिकल के मक्का मुमकिन है उगाना? क्या लगता है आपके आजकल वाला नहीं है आपके तजर्बे में क्या है? अक्टूबर प्लांट जो होता है, नवंबर प्लांट, उसमें आप चाहिएगा तो हो सकता है, लेकिन अभी जो मक्का है इसमें बगैर मेडिसिन का कोई उपाय नहीं है। बरसात वाला मक्का नहीं हो सकता। पहले 4-5 साल पहले होता था सर, अभी वैसा नहीं हो रहा है। 4-5 साल पहले होता था, लेकिन अभी कंपलसरी है। तो अब बगैर केमिकल के कोई मक्का नहीं उग सकता? नहीं सर। सो एनी जेनेटिक इंटरवेंशन? सर ट्रैप भी है, जो फेरोमोन ट्रैप होते हैं। आई थिंक थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। देखो मैं बताऊं, अभी भी आप कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स लगाइए, 24 फेरोमोन ट्रैप एक एकड़ का। और साथ में आप जो मैंने आपको बताया नीम बेस्ड पेस्टिसाइड का फॉर्मुलेशन, अच्छे वाले स्प्रे, नीम वाले भी बहुत सारे हैं, एक को लोगे नीम हकीम बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको सही वाला अगर किसी कंपनी का लेते हैं या आप खुद बनाते हैं नीम का पेस्टिसाइड सॉल्यूशन, आप 2 बार स्प्रे कर दीजिए, ठीक है ना, वो आपका काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। दूसरा इसके साथ आप जो चंवला होता है, काउपी जिसको कहते हैं, जिसको लोबिया कहते हैं, उसके साथ आप इसकी इंटरक्रॉपिंग करिए सर, तो आप बिना दवाई के भी इसकी काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करके और अपनी उपज ले सकते हैं। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, तो इतनी साइंटिफिक आपको राय दे रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है या नहीं है? जो इतनी चीजें बताई गई सर हमारे यहाँ पे ये बताइए, डीडी किसान का कोई हो रहा है इस्तेमाल? नहीं। IIMR के जो साइंटिस्ट है हमारे यहाँ नियुक्त किए गए हैं, वो हमारे यहाँ बार बार आते हैं, वो सलाह देते हैं क्या करना है क्या नहीं है। ये महीने में 1-2 बार हमारे यहाँ आके हमको सलाह देते। किसान का इस्तेमाल हो रहा है यानी हमको ये समझाइए। हो रहा है लेकिन कम सर। कोई देखता है? बहुत कम लोग देखते हैं। कम हो गया सर, पहले टीवी था तब होता था, अब आजकल फोन में नहीं है सर। तो मोबाइल पे तो उनका मोबाइल ऐप आना चाहिए। सभी व्हाट्सएप फेसबुक पर बिजी है सर अभी। तो अब जो लोगों ने छोड़ दिया टीवी देखना? बिल्कुल सर। चलिए, अच्छा ये एग्री स्टैक है कोई चीज? सर इसमें क्या होता है, किसानों का पूरा डाटा लिया जाता है, उसका खेत कितना है, नहीं उसके तो आपका नाम ले लिया डेटा? हाँ ले लिया। तो कोई आया था फोन लेके, उसने नहीं, जीपीएस? उसमें क्या होता है, वो जो CSC सेंटर रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से CSC सेंटर होते हैं, उनको ये काम दिया गया है कि उनकी किसानों का रजिस्ट्रेशन करना है, उनका पूरा डाटा लेना है। वो डाटा फिर जाएगा गवर्नमेंट के पास CSC की तरफ से। पंजाब में भी हो गया? सर नहीं, मैं इस बारे पे नहीं। ठीक है, चलिए, तो अब तो हमारे पास तो टाइम बहुत बच गया, अब क्या करें? और बताइए, और बाकी लोगों का कोई सवाल? वुमेन फार्मर, मैडम आप तो कुछ बोले नहीं, आप बोलो कुछ। कहाँ से हैं आप, कौन से स्टेट से हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, आप कौन से जिले से? संभाजीनगर। संभाजीनगर, हाँ बताइए। मैं पाइनोर कंपनी से हूँ सर। 35-24 मक्का हमें अच्छा उत्पादन देती है, इसलिए हम वही मक्का लगाते हैं, पाइनोर कंपनी। बस, धन्यवाद सर।
का बीज अच्छा होता है? हो सर, अच्छा होता है। अच्छा होता है। हाँ। और ऐसा तो नहीं कोई डुप्लीकेट बीज बेचता नहीं, हो? नहीं सर, नहीं। नहीं। हमारे दादाजी थे, वो बीज से निकालते थे, हम 40-45 निकालते सर, कुंटल। अच्छा, 1 हेक्टेयर में? 1 हेक्टेयर में। 45? एकड़ में, एकड़ में। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। हाँ जी, रुचिरा मैडम बोलो, आप क्या कहना है? यू वांट टू से समथिंग रुचिरा? नो? जी साहब। जितनी भी बड़ी कंपनी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मक्का की खेती में बहुत तरक्की कराई हमको। जो जो हमारी समस्या थी वो हल हुई। लाइक जैसे नदीन बहुत उग जाते थे, बाहर की आपकी लॉरिस है वो ख़त्म कर देती है। एक मोथरा जैसा होता है, मोथरा वो किसी से नहीं मरता था, वो दानुका का एक सैंपर आता है, वो सभी को ख़त्म कर देता है। एक बारी कर दें तो पूरा ख़त्म। और इसके बाद जैसे सीड की बात करें, चाहे एडवांटा है, पॉइनर है, उन्होंने अच्छे सीड दिए, उसको अच्छी दवाई से ट्रीट किया ताकि जो उसको जर्मिनेशन है वो 95 से 98% जर्मिनेशन पूरा हो। और उससे जो हमारा साइलेज है वो भी ज़्यादा निकलता है। जे अगर ग्रेन की बात करें, दाना अनाज, तो उसकी भी माने 80-90 मन निकल जाता है। तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सभी कंपनी का कि जो हमें ऐसी सुविधाएं प्रदान कराई। साइंस है ना, एग्रीकल्चर तो साइंस पे बेस्ड है। अब हम आजकल ज़रा साइंस के खिलाफ होते चले जा रहे हैं, तो क्या करें? यस डॉक्टर साहब। नहीं, यहाँ ठीक है। आप तो मक्का के पिताजी हैं, इधर आइए। तो कुछ कंफ्यूजन है जो आपके थ्रू लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। हमें ये कहा जाता है कि मेज की प्रोडक्टिविटी इंडिया की बहुत कम है, और ये बहुत बुरी लगती है हमें। हम कभी ये नहीं कंपेयर करते कि हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं 17% हमारा एरिया, 70% एरिया हमारा ग्रेन फेड है, और डेज कितने हैं? 70 to 100 डेज मैक्सिमम, एंड साउथ इंडिया में 110 चले जाते हैं। और अगर 110 डेज की क्रॉप को आप देखते हैं तो साउथ के अंदर हमारी प्रोडक्टिव किसी भी स्टेट के अंदर 7-8 टन से कम नहीं है। यस, तमिलनाडु वट you get 7 ton. Spring maize 120 days, we get 8 to 10 ton. Winter maize we get more than USA. Farmer get 5 to 5.5 ton per acre. And if you see, compare the USA days, minimum 140 goes to 200, more than 200 days. 140, 141, 140, 200 days. And then innovation, 100% area under hybrid, GM, herbicide, and then insecticide, GM crop, totally mechanized, totally high fertility, irrigation, all. And here we are comparing 70% uncertain area with USA, with Brazil, China. China is subtropical. Again, 150 to 160 days crop. And how much fertilizer they add? 750 kilogram. 750 kilogram nutrient they are adding in the soil. When I went to China, I told the Chinese professor that one day you are going to suffer. Your soil will become sick, arsenic, and 2 days. And the productivity of China stick to 6 to 6.5 ton for the last 30 years. And where India, we started with 0 single cross hybrid, with 70% coverage, with 30% only sufficient duration, and we are 3.5 ton productivity. 7.
So the comparison is to made with comparable. Now in India, now I request to our private sector, they are doing good seed production, good quality hybrid, no cheating, but how much area they're covering under the uninsured condition. Public sector, again, we have good hybrids, but who produce seed ours? Nobody. NSA defunct, other company defunct, state seed corporation, I'm sorry to say, state seed corporation nowhere. They only produce rice wheat. That is easy task. If private sector go assured market, public sector go in the uncertain area like northeastern state, upland area of Odisha, Bihar, Bengal, Chhattisgarh, MP, single intervention of MP 100 days hybrid has changed the scenario of Madhya Pradesh. Shifted soybean to maize. As in Punjab and Haryana, we shifted from maize to rice because of money. We were having earlier 4 to 5 quintal variety, and rice came with more than 20 quintal. So that is why shifted. Now people, we are not replacing any crop. It is the farmer. फार्मर कर रहा है, क्यों कर रहा है? जिस चीज में उसको पैसा मिल रहा है. तो अब मेज के अच्छे हाइब्रिड आ गए. अब 1 मिलियन हेक्टेयर एरिया स्प्रिंग का, it can take care of the ethanol industry. You will get 8 to 10 million, 1 lakh हेक्टेयर is only. 1 million हेक्टेयर is. आपको 1 मिलियन हेक्टेयर से आपको कम से कम 10 मिलियन हेक्टेयर मक्का मिल जाएगा easily. स्प्रिंग का. एंड इथेनॉल इंडस्ट्री कैन एड्रेस विद दिस स्प्रिंग मेज. क्योंकि शुगर मिल चलता है उनका नवंबर टू अप्रैल ऑनवर्ड दे कैन यूज स्प्रिंग मेज. और पोल्ट्री फीड हमारे बेचारे बहुत कहते हैं ये मक्का यूक्रेन कहाँ से मिल रहा है? म्यांमार को हम भेजते थे, म्यांमार कहाँ से लाएगा? वाया बठिंडा आता है, अमेरिका से आएगा, यहाँ आएगा. म्यांमार की अपनी तो प्रोडक्शन है नहीं. हम म्यांमार को देते थे, आज म्यांमार से मेज आ कहाँ से है? विच इज सरप्राइजिंग. कुछ इशू ऐसे होते हैं, पता नहीं कौन कहाँ से ला रहा है. और आज भी हम कहते हैं इंडिया के अंदर मेज की शॉर्टेज ही नहीं है. हमारा मेज बिहार से बंगाल चला जाता है, बांग्लादेश चला जाता है, नेपाल चला जाता है, लंका चला जाता है, तमिलनाडु से. वी हैव नो शॉर्टेज. नंबर 2 के अंदर हमारा मेज आज भी एक्सपोर्ट हो रहा है. बॉर्डर क्लीन है. नेपाल के कितना मक्का जाता है हमारा? इंडिया से नेपाल में सीड भी जाता है, मक्का भी जाता है, खूब जा रहा है. तो इश्यूज आर टुडे वी हैव टेक्नोलॉजी इन इंडिया. यस, मैकेनाइजेशन इज आंसर टू इट. अगेन इशू स्मॉल होल्डिंग. बिहार के अंदर अभी एक प्रोजेक्ट में मैं भी गया था, टाटा का प्रोजेक्ट है. तो हमने किसी इंटरप्रेन्योरशिप के कहा कि आप खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, कुछ बेल्ट ऐसी हैं जहाँ बरसात आ जाती है, तो वहाँ पर मशीनें दें, अच्छी कंपनी के बीज लाओ. फॉरगेट जिसका भी अच्छी कंपनी का बीज मिले आप लाओ. ये मत बोलो कि पब्लिक सेक्टर का वेट करूं या प्राइवेट का वेट करूं. जो भी अच्छी कंपनी से कांटेक्ट करो और 4 अच्छी कंपनियों के 4-5 के करो. जो अच्छा लगे अगली बार उसको रिपीट करो. मैकेनाइजेशन कराओ ताकि इंटरप्रेन्योरशिप खड़े हों. उनके पास बैफलोस बहुत है. तो अप्रैल टू मई जून साइलेज तैयार करें ताकि नवंबर टू जून टू नवंबर उनके पास चारा नहीं है, उनका साइलेज भी मिलेगा. और मीडियम ड्यूरेशन का हाइब्रिड लगाएं. आप आज की डेट में हमारे पास हर टाइप के हाइब्रिड है. मीडियम भी है, अर्ली भी है, लेट भी है. अगर हम स्प्रिंग बेज की आंसर है हमारे पास, स्प्रिंग बेज कब लगाएं? वाई टू वी कैन गो टिल एंड फरवरी. अब पानी भी बच जाएगा हमारा. तो इश्यूज हैं, सोल्यूशन भी हैं, और कंपेरिजन को कंपेरेबल को कंपेयर को करो. तो इंडिया इज टुडे वेरी मच अहेड ऑफ टेक्नोलॉजी. और हमारे साइंटिस्ट भी अच्छा काम करें, हमारे प्राइवेट सेक्टर भी है, हमारे फार्मर भी बड़े अच्छे हैं. उनका हम मोरल डाउन कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी लो है. अब 70 दिन में कितना करेगा? तो 16 क्विंटल करेगा या 10 क्विंटल करेगा. 100 दिन के अंदर अगला 20 to 25 क्विंटल ले रहा है. 110-20 दिन में वो 3 टन ले रहा है. तो थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. तो बस अब ये कह के हम अपनी बात ख़त्म करते हैं. बार बार डॉक्टर साहब ने भी बताया कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन छोड़ के
और मक्का की तरफ जा रहे हैं और मक्का हम दे रहे हैं इथेनॉल में कार वाले लोगों को जो कार रखते हैं। तो अब आप देखिए कि एडिबल ऑयल हम और इंपोर्ट करेंगे और जो मक्का हम प्रोड्यूस करेंगे वो हम इथेनॉल में देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सारे पैनलिस्ट का और सारे लोगों का, ख़ास तौर से किसान भाइयों का। एंड थैंक यू FICCI फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस डिस्कशन ऑन genetics into maize research. Thank you so much. Thank you, sir. I would like to request all the panelists to remain seated. We will continue with the farmer voice segment. अब हम एक बार फिर से अपने उन प्रगतिशील किसानों का स्वागत करेंगे जिन्हें आज माननीय कृषि मंत्री ने सुबह सम्मानित किया गया था। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी महाराष्ट्र के प्रगतिशील किसान श्री योगेश रामकृष्ण काकड़े को, जिन्होंने मक्का की 45 कुंटल प्रति एकड़ उपज हासिल की है। साथ ही ये सब्जियों और अदरक की उन्नत खेती में भी निपुण है। गुड आफ्टरनून। मेरी लैंग्वेज मराठी है, मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करता। मैं योगेश रामकृष्ण काकड़े, छत्रपति संभाजीनगर ज़िले से। मैं पिछले 5 साल से खेती करता हूँ। पहले मेरे पिताजी करते थे। मक्का पीक लगातार बहुत बढ़ोतरी हो रही है। इसका कारण ये है कि मक्का को बाज़ार भाव ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए मुझे खेती में मक्का लगाना आसान है। और दूसरी बात ये कि आप मक्के का उपयोग इथेनॉल में होने के कारण मक्का को बाज़ार भाव और डिमांड बढ़ रहा है। मेरी कंपनियां और गवर्नमेंट को यही गुजारिश है कि महाराष्ट्र में अल्पभूधारक खेती ज़्यादा है, इसीलिए हार्वेस्टिंग करने के वास्ते जैसा पंजाब में बड़े मशीनरी चल सकते वैसे महाराष्ट्र में नहीं चलते। तो मेरी सरकार से और कंपनियों से गुजारिश है कि महाराष्ट्र में 20 गुंठे, 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, ज़्यादा 10 एकड़ वाला गांव में ज़्यादा 2-4 फार्मर मिलेंगे। तो कंपनी और गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि छोटा मशीन महाराष्ट्र में उपलब्ध हो। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। अब मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूँगी उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील किसान श्री उदयवीर सिंह शर्मा जी को, जो कृषक मित्र के रूप में अन्य किसानों को लगातार प्रेरित कर आ रहे हैं। अपने मार्गदर्शन और योगदान के लिए इन्होंने जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कई सम्मान प्राप्त किए हैं। सम्माननीय मंच पर जो है विराजमान सभी अधिकारीगण और दूर दराज से दूसरे प्रदेशों से आए हुए हमारे सहोदर भ्रातातुल्य किसान बंधु और भी सभी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, अपनी तरफ से मैं सबका हार्दिक अभिनंदन। और मुझे यहाँ मंच पर जो है कुछ कहने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसा अभी मैंने बताया था, जनपद एटा उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैं। तो मक्का की खेती मुझे जो है करीब 14 वर्ष हो गए मक्का की खेती करते हुए। तो अभी मुझे एक सुझाव बहुत अच्छा लगा था यहाँ, जो अभी डॉक्टर साहब ने बोला था कि हम थोड़ा थोड़ा बीज
जो सिक्का कंपनियां हैं उनमें से 2-4 कंपनियों का बीज लगाएं, तो उसमें जो एक्सीलेंट बीज आ रहा है उसको कम से कम हम अगली बार जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, हर वर्ष में ऐसा ही करता चला आया, और 2011 से मैंने खेती अच्छे पैमाने पर जो करना शुरू किया मक्का की। तो उस समय लगभग 5 और 6 कुंटल की पैदावार उसी बीज से मैं ले पाता था। जो बायर की मक्का जो अब बायर के नाम से है, वो मोनसेंटो के नाम से आती थी, फिर डिकाल के नाम से, और अब जो है बायर के नाम से आने लग गई। तो इस वर्ष जो है जो एकड़ की जो मक्का की जो पैदावार रही, बायर का ही मैंने 92-48 मक्का लगाया था, तो एकड़ का जो है 56 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार सूखी 12 और 13 मॉइस्चर पे जो है मार्केट में जाके बैठी मक्का की। तो मैं अपने किसान भाइयों से सहमत हूँ इस बात से, जो हमारे भैया कह रहे थे कि बीज नकली मिल जाता है। हाँ जी, बीज नकली मिल जाता है। तो मुझे तो इसका हल यही मिला कि ज़्यादातर किसान जो है न स्कैन कर पाता है, मोबाइल होते हुए भी नहीं करता वो, और ना ही अन्य कोई जांच कर पाता है। तो मोटा सबसे इसमें बचने का एक ही तरीका मुझे लगा कि अगर किसान दुकानदार से बिल ले ले बीज का, तो किसान किसी कीमत पर उसको नकली बीज नहीं देगा। लेकिन किसान को वो जो लाला होता है ना, वो थोड़ा सा भयभीत कर देता है, जीएसटी लग जाएगी, इतना बढ़ जाएगा, लोगे बिल। अरे ना, वो सर खुजलाया और वो लेके कान पकड़ा और चल दिया। हाँ, अगर उसने ये कह दिया 50 रुपये पैकेट पे ज़्यादा लगेंगे तो लेगा नहीं। हाँ, मैं भी किसान हूँ और कहीं दूसरी जगह से नहीं हूँ। तो इस तरह से वो बीज के जो है नकली बीज के चंगुल में फंस जाता है। अब नकली बीज भैया को दर्द इसलिए हो रहा है कि भैया को पड़ गया है पाला। मुझे भी एक बार पाला पड़ गया। तो मैं दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने पैर पकड़ लिए कि ये तो बहुत खतरनाक आदमी है इस क्षेत्र का। अब हमारा जो है मुश्किल हो जाए, पैर पकड़ लिए कि अब जैसे भी चाहो आप। तो मैंने तू दुकान बंद कर दे, अपनी बीज बेचना बंद कर दे, ये सजा तो हो सकती है बोल। तो आखिर उसने दुकान ही बंद कर दी। तो मैंने तो बस यही कहा, ज़्यादा समय न लेते हुए, कि नकली बीज से बचने के लिए तो यही तोड़ है कि हम बिल दुकानदार से मांग लें। कसौटी किस पर लगाई जाती है? कोयले पर, सोने पर। कोयले पर कसौटी कोई नहीं लगाता। तो जो सिक्का कंपनियां हैं, बीज नकली मिलेगा तो उनका मिलेगा, बायर का मिलेगा, सिजेंटा का मिलेगा, पायनियर का मिलेगा। अभी मेरा मोबाइल देखो भैया के पास है, खोल के देख लो, पायनियर का जो है बाजरा नकली पकड़ा गया है मेरे पास, जो है मैं 2-3 वीडियो आए हैं। तो जो सिक्का कंपनियां हैं नकली, उनका बनाने की कोशिश करते हैं लोग, और जो बिक्री नहीं हो रहे हैं उनको उसमें मिला देते हैं और पैसा बना लेते हैं। तो इतना ज़रूर है साथियों कि आपको ये 55-56 क्विंटल ज़्यादा लग रहा है, नहीं, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं 2011 में मात्र 6 कुंटल की पैदावार ले पाया था। आज वो पैदावार 11 कुंटल प्लस में पहुँच गई, और मैं दावा करता हूँ कि अगले वर्ष मैं 12 को क्रॉस करके दिखाऊंगा। और मैं ऐसे नहीं मानता कि मंच पर जाके हाथ उठा के कह दिया कि मेरी 12 कुंटल की हुई है। फीता डालो और उसको जो है थ्रेसिंग के समय पर जो है आ जाओ, और ये माल पड़ा है इसको निकालते हैं, इसका मॉइस्चर निकाल के मार्केट तक चलो। नहीं, झूठ बोलना भी तो गलत है ना, कि अपनी शान जताने के लिए कि हमने जो है मक्का इतनी पैदावार कर ली, या गीली मक्का को नमी ज़्यादा है उसको वजन दिखा दिया, ऐसे नहीं। मार्केट में 12-13 मॉइस्चर, बस। धन्यवाद साथियों, जय श्री राम। I would like to thank all the panelists for sharing their insightful thoughts with us. We will now have a group photograph.
We will have a short break of 10 minutes for tea. We will be distributing the delegate kits during the last session.
India, a country with largest agricultural land globally. The largest source of livelihood in our country. 70% of rural households still depends on agriculture for their livelihood. However, the agricultural output of our country throws a stark picture. Even with much lesser land under cultivation, China's agricultural output is 3 times more than that of India, and productivity in most crops is 50% to 100% higher than India. While this could be attributed to pre-harvest yields loss due to pests and diseases, the lack of proper irrigation facilities, storage facilities, and transportation infrastructure often leads to post-harvest losses of rupees 6 lakhs crore. Today, Indian farmers face crop failures due to unpredictable weather conditions too, like droughts, floods, and untimely rainfall. Hence, in sync with Godrej Agrovet's mission to constantly innovate to improve farmers' productivity and help feed our nation, we ventured into crop protection business. Food and nutritional security is one of the top priorities for our country. It is a challenge to feed the ever-increasing large population we have. With arable land decreasing, the most important thing we need to focus on is productivity. That is more food from the same acre. Our company is serving the farmer for last several decades with an array of products in all areas where the farmer needs us. We sell several growth promoters, we sell several pesticides including insecticides, herbicides, fungicides, etc. We have a solution approach to all the problems our Indian farmer has, and we have been extremely successful in doing our bit for the farmer. As the world's largest producers and marketers of homobracinolides and the leader in selective post-emergence cotton herbicide in India, we have comprehensive integrated pest management solutions that aid in enhancing yield in terms of both quality and quantity and help farmers tackle abiotic and biotic stress in field. Over the years, we at Godrej have created a unique identity for ourselves. Be it introducing the first selective cotton herbicide in India, FICCI, or putting India on the global grape exports markets through Combine, we are always there to uplift the farming families in the country. Our collaborations with multinational companies and several Japanese companies have enabled us to bring innovative solutions to the Indian farmers to meet their ever-growing demands in the country. As we move ahead, it's our endeavor to create educational programs to the farmers to know about the pests and diseases and how proactive application can help them to counteract the pests and diseases that they normally see in their fields. We are there for them to ensure that they get the best solutions through our innovative collaboration project with several companies, which is what we will be known for now as well as in the future. Our endeavor continues to reduce cost of cultivation for farmers considerably, thereby aiding them get assured produce and price for superior product. Leveraging our state-of-art manufacturing facilities and the new R&D center, we are enabling access to solutions that aid farmers tackle the problems and increase farm productivity.
our new R&D center will undoubtedly play a central role in our integrated pest management strategy. It is equipped for new product generation, process optimization and scale-up, and product lifecycle management. It is supported with advanced analytical instruments and sophisticated process safety infrastructure. With soaring temperatures and erratic rainfall impacting crop yields, there is a need to popularize integrated disease management in the farming community by imparting training to farmers at the grassroots level. Hence, we at GAVL will continue serving Indian farmers by offering them an effective, integrated pest management tool. As we move ahead, our people continue to be our major strength. From employees to distributors to channel partners, we are incomplete without them. Our partners continue to be our torch bearers, and we will continue to champion social responsibility because it is the core of who we are. हमें बहुत खुशी है कि हम पूर्वी भारत के मक्का किसानों की खुशहाली और तरक्की का हिस्सा हैं, जिनकी कामयाबी के सफर से जुड़े हर कदम के साथ हमने कदम मिलाया है, हर कामयाबी को धूमधाम से मनाया है। मैं पायनियर हूं। मुझे खुशी और गर्व महसूस होती है कि मैं पूर्वी भारत के मक्का किसानों के कामयाब सफर का साथी हूं। क्या आप जानते हो, मेरे इन मक्का किसान भाइयों की जिंदगी में आने से पहले ये रबी के मौसम में सिर्फ 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का की पैदावार ले पाते थे। हम 2010 से मक्के की खेती करते हैं। इससे पहले हमारे दादाजी पिताजी भी किए, जो सब दिन पायनियर का ही बीज लगाते थे। अभी जो है हम लोग 33-55, 35-26 वो सब मक्का लगाए हुए हैं। इस साल कल 40-50 कुंटल के एवरेज में उपज होता है। एकड़ में जो है 60 कुंटल तक चले जाता है।
We're starting our session number 4. I'm requesting everyone to take their seats so that we can start the session. Requesting my colleagues to escort the remaining guests in the room. Everyone, please take your seat. We'll soon starting the session. Good evening, everyone, and welcome to Session 4, Sustainable Maize Systems Building Productivity, Profitability, and Planet Health. Chairman for this session is Mr. Hemendra Mathur. He leads the FICCI Task Force on Agri Startups and is a venture partner at Bharat Innovation Fund, driving agri innovation and entrepreneurship in India. I welcome him on the dais. Moderator of the day is Mr. Dhritiman Biswas. He leads government relations at Kargil, India, bridging public and private sector collaboration for sustainable agriculture. Welcome, sir. Our distinguished panel includes Dr. R.G. Agarwal, Chairman Emeritus of Dhanuka Agritech Limited, with decades of experience in agrochemical innovations and agribusiness leadership. Mr. Arun Yadav, Senior Vice President, NCDX, brings expertise in commodity markets and agriculture risk management. Mr. Suhas R. Joshi, leading India Carbon Initiative at Bayer Crop Science. He works on integrating sustainability with crop protection and farming systems. Mr. Anish Jain, founder and CEO of Gram Unnati. He champions tech-driven solutions for improving farmer livelihoods and market linkages. Mr. Vidur Verma, CEO of AgriWings, an innovator in digital agriculture marketplaces and farmer-centering service platforms. And our guest of the session, Dr. Praveen Kumar Singh, Agriculture Commissioner at the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Sir is spearheading national agriculture policies and program. Welcome everyone on the dais. Thank you, sir. Now I would like to request Mr. Hemendra Mathur to kindly do the honors of welcoming and honoring our guest, Dr. Praveen Kumar Singh, with the Green Certificate as a token of our gratitude. Ladies and gentlemen, the Green Certificate is a unique FICCI initiative wherein a grove of 10 trees will be planted in the name of eminent dignitary at Somgo, Sikkim. Thank you, sir. A small update. One of our progressive farmers who couldn't join us during morning felicitation ceremony will be now honored during this session. We are privileged that Dr. P.K. Singh, Agriculture Commissioner at Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, will do the honors. मैं आमंत्रित करती हूँ भीलवाड़ा राजस्थान से श्री उज्जवल शर्मा जी को. I request all the dignitaries to stand up for the felicitation ceremony. श्री शर्मा ने मक्का की उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर 42
क्विंटल प्रति एकड़ की उत्कृष्ट उपज प्राप्त की है और अन्य किसानों को भी ये फसल अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आइए एक बार जोरदार तालियों से इनको सलाम करें। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। Now I would like to give the floors to the moderator. Thank you. Thank you so much. So welcome to the graveyard shift. I hope you all have had coffee, tea, and we can start this. So I think we have discussed about the value chain, we have discussed supply chain and demand side, supply side. We have also talked about the other things which is making the industries prosper. Now, last but not the least, let's talk about the sustainability part. So I think without much ado, I would request Hemendraji Mathurji to say a few words, then we can start. Thanks, Mr. Biswas. Good evening, everyone. I know it's the last session of the day. And the good part about the last session is whatever had to be said has already been said. But yeah, we'll try and make it interesting for all of you. Hopefully, you'll get some new insights. So I think it's a very interesting topic. We are talking about the intersection of innovations and sustainability and maize value chain. Which makes it very interesting. I come from startup world, and for last 15 odd years I'm seeing a multitude of innovators trying to build some very innovative solutions, and maize definitely is one of the focus value chain. I think there are a lot of startups who are working across staples, oilseeds, horticulture, dairy, but maize definitely is one of the focus areas. If you look at top 10, 15 startups in the country, maize is an important crop, and thankfully we have a few innovators on the dais also who can talk about it. In terms of solution that I see, I think a lot of solutions, especially in the pre-harvest, are around precision agriculture, use of sensors, IoTs, drones, satellite imagery, mobile phones, essentially to figure out crop health, soil health, water level, soil nutrition, and advising the farmers, when to sow, how much to sow, when to give fertilizer, when to spray pesticides. So I don't think there's any dearth of solution. We can definitely improve a lot upon it. I think a lot of solution probably need to be customized to the maize value chain because the problem statement are very, very sort of specific. Likewise, in the post-harvest value chain, I think the biggest challenge is around dehydration, storage, logistics, challenge of aflatoxin. So again, there are solutions which have been developed, but again, for scaling them, we need to figure out what is the best way to do it. So I think I would be very happy if in this session we can discuss how policy, how capital can drive the adoption of these kind of solutions. I think that could be one of the agendas. And frankly, a lot of people sitting in the room, as well as FICCI, has a huge role in building this ecosystem which can drive innovations and sustainability at scale in the maize value chain. On a lighter note, we don't have an agri-tech unicorn in the country, but I believe corn is one of those crops which can throw an agri-tech unicorn, right? So with that optimism, I'll hand it over to the moderator to take this forward. Thanks, Mr. Mathur. Good points. We will come to the policy and capital part of it, but before that, let's hear Dr. Singh. I think your view on policy especially would be very pertinent to everyone here. So over to you, sir. Okay, thank you. First of all, I should thank FICCI to organize this kind of discussion. Every time you are making maize more and more popular every year, and now it has reached the top of the popularity. Some farmers are also sitting, so I would like to speak in Hindi. I think it will be better for them to understand. So सुबह से आज जो है आज ICR का AGM भी था और माननीय मंत्री जी यहाँ पे भी काफ़ी कुछ कह के गए होंगे और वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी कुछ बात की है
तो उसमें अगर हम देखें तो एक कॉमन शब्द वो अक्षर निकलता है पी, है ना, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, प्लेनेट। हम लोग बहुत पहले से इसके ऊपर बात करते रहे। 3 बॉटम लाइन की बात होती थी हमेशा से ना, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तीनों जब तक नहीं रहेगा तब तक काम आगे नहीं बढ़ता है। और मेज़ उसका इतना अच्छा एग्जाम्पल सामने आया। 2 साल में मेज़ का प्रोडक्शन भी बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने की उस पे है, एरिया भी एक्सपेंड कर गया, केवल एक कारण से कि मेज़ के लिए किसानों को प्रॉफिट अच्छा होने लगा। लेकिन अब जो है वो बाकी के दो पी हैं, पीपल और प्लेनेट, उसकी भी बात करनी पड़ेगी। समर मेज़ बढ़ रहा है, रबी मेज़ बढ़ रहा है कि खरीफ मेज़ बढ़ता है? अगर खरीफ में बढ़ रहा है और वहाँ पे भी प्रॉफिटेबल है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर धान को रिप्लेस करके मेज़ आता है। बट हो क्या रहा है कि वहाँ पे हम लोग फिर जो है ज़्यादा इरिगेशन दे के इसको समर में लगा रहे हैं, वहाँ पे अच्छी उपज भी आ रही, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक मैटर ऑफ कंसर्न, जब पॉलिसी लेवल पे इसकी बात होने लगी तो फिर ये कंसर्न हो गया है कि भाई ये जो है अब मेज़ जो है नाउ इट इज़ टेकिंग द शेयर ऑफ अदर क्रॉप्स, दूसरी फसलों को ये खाना शुरू कर दिया है। तो इन दैट वे उसको कहीं ना कहीं, आज ही अभी जूट की मीटिंग चल रही थी तो वेस्ट बंगाल में काफ़ी एरिया जूट का भी उधर शिफ्ट हो रहा है, तो जूट का दाम बढ़ रहा है। तो क्या हम लोग को कहीं ना कहीं अब ये विचार करने का समय आ गया है, पॉलिसी लेवल पे भी इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई है कि हर क्रॉप को किस लेवल तक आप प्रमोट कर सकते हैं। दैट इज़ वन वेरी बेसिक इशू कि हमारा अब उसी एरिया में हमारा एरिया ना बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसके लिए सामने बैठे हुए हैं आप, IIMR के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये नई नई वैरायटीज़ किस तरीके से हमको लानी है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स आएँ, ड्यूरेशन भी बहुत ना बढ़े, हो 10-5 दिन ड्यूरेशन बढ़ जाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ऐसी वैरायटीज़ की अब शायद ज़रूरत आ गई है, जो कि खरीफ में जो हमारे पास काफ़ी बड़ा एरिया मध्य प्रदेश का या इन सब का, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो इसमें है खरीफ में, उसको टैकल करने के लिए वहाँ से हम क्या अपनी जो आज की एवरेज प्रोडक्टिविटी 29, 30, 32 ऐसे चल रही है, इसको बढ़ा के खरीफ के इसको किसी तरह से 35 तक तो पहुँचाएँ, जो हमारी एवरेज, नेशनल एवरेज आता है, खरीफ में भी उतना आए कम से कम। दैट सिंपल पॉलिसी ऑफ फोकसिंग खरीफ मेज़, अब हम लोग इस पे काम करने की कोशिश करेंगे आगे। तो पहला तो ये है कि बाकी मेज़ फॉर इथेनॉल के साथ साथ अब मेज़ फॉर जो है आपका पोल्ट्री फीड या और भी जहाँ कहीं भी जाता है मेज़, उनके लिए स्पेशलाइज्ड वैरायटी, कैप्टिव कल्टीवेशन की बात भी आ गई, शुरू हो गई है कि इथेनॉल के लिए जो ज़्यादा उसका क्या होगा कंपोजिशन, और जो आपका क्वालिटी प्रोटीन मेज़ की बात है फीड में, उसमें कहीं पे भी ज़्यादा है, उसका कितना एरिया होना चाहिए, किस तरीके से कौन सा मेज़ कहाँ पे जाए, एरिया, एग्रोक्लाइमेटिक जोन, यूटिलिटी, सब कुछ ध्यान में रख के आगे मेज़ का प्रमोशन हो, ताकि एरिया अब ना बढ़े। जो एरिया हो चुका है आपका 106-107 लाख हेक्टेयर, जो कि काफ़ी है, 10-11 मिलियन हेक्टेयर इज़ ए वेरी गुड एरिया फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप। तो अब वो कॉटन पे का एरिया ना कम होने पाए, उसकी वजह से जूट का एरिया ना कम हो, हमारी फाइबर की रिक्वायरमेंट भी कम तो हो नहीं रही है, हमारे ऑयल सीड्स का एरिया कम होने लगा, हमारे और चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं अब इसका बिल्कुल इसके ऊपर नज़र रखी जाएगी कि एरिया नहीं बढ़ेगा। दूसरा, आपका जो इथेनॉल में जा रहा है, कितना इथेनॉल की ज़रूरत है हमको? E20 टारगेट हमारा करीब करीब पूरा हो चुका है, अब उसमें हमारा अगर 1000 करोड़ चाहिए हमको इथेनॉल, तो फॉर दैट वी हैव इनफ नाउ। डिफरेंट क्रॉप्स आर आल्सो कमिंग, स्वीट sorghum इज़ कमिंग, अब बात होने लगी है कि शुगर बीट को भी ले आना है, कसावा को ले आना है, पोटैटो को ख़राब हो रहा है उसको भी यूज़ करना है, कहीं से भी इथेनॉल बनेगा। और अब सबका एक कोटा कहीं ना कहीं फिक्स करने की ज़रूरत हो रही है, सबको, हर क्रॉप को
ये अपनी बात सोचने की ज़रूरत पड़ रही है कि हमें कितना एरिया अपना फोकस करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स उसी के हिसाब से हों कि हमें कहाँ लगाना है अपना डिस्टिलरी या जैसे भी है, ताकि एक पर्टिकुलर एरिया के बाद हमारा एरिया, अब हम लोग के पास 1100 लाख हेक्टेयर हमारा खरीफ में जो सोइंग होती है, दैट इज़ मैक्सिमम विच वी कैन कवर इन खरीफ। मतलब पूरे देश में 1100 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सोइंग अब नहीं बढ़ रहा है। हम लोग काफ़ी कोशिश करके देख लिए, खरीफ एरिया 2-4-5 लाख हेक्टेयर अगर राजस्थान में ठीक ठाक मौसम रहता है तो बाजरा का बढ़ पाता है। बाकी 1100 लाख के आसपास ही पिछले 5-6 साल से हम लोग फिक्स हैं। उसी 1100 लाख में से हमको सारी क्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सोयाबीन भी उसमें उगाना है, आपको धान भी उगाना है, मक्का भी उगाना है। तो उस लेवल पे अगर देखेंगे तो आपका मक्के का एरिया इनफ अब है। अब उसी में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करें, एरिया ना बढ़ाने की बात करें। एक तो ये काम हो। दूसरा, इरिगेशन और रेनफेड की बात अगर है तो उसमें निश्चित तौर पे पूरा फोकस जो है रेनफेड पे होना चाहिए। इरिगेटेड मेज के कम से कम, तो इसका मतलब हमको समर का भी जो एरिया है उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, एंड वी कैन शिफ्ट इट टूवर्ड्स लेट खरीफ और खरीफ क्रॉप। ये है। उसके बाद फिर हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की बात है, उसका सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, सप्लाई टू द फार्मर्स, उसका पूरा वैल्यू चेन, कौन सी वैरायटी कहाँ जा रही है, उसका ट्रेसेबिलिटी का मैकेनिज़्म बनाने की भी बात है। तो उसके लिए भी साथी पोर्टल हम लोग का तैयार है करीब। उसमें अगर प्राइवेट की जो वैरायटीज़ हैं उसका भी लिस्टिंग की बात हो रही है। अगर वो हो जाता है तो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ कि कहाँ पे सीड बन रहा है, उसके ओरिजिन से लेके और कौन यूज़ कर रहा है वहाँ तक। क्योंकि अभी कल ही माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश में अपने एक गंज सबौदा या गंज बसौदा जगह पे गए हुए थे, तो वहाँ के किसान शिकायत किए भाई सोयाबीन जमा नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो सीड कहाँ से लाया, उसके कोई ट्रेसेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वो रसीद से खरीदता नहीं है। उसके बाद फिर उसके ऊपर वो पेस्टिसाइड उसको ट्रीट करके सीड लगाया था कि नहीं, क्योंकि माननीय मंत्री आज भी कह रहे थे कि वो उसके ऊपर फंगस सी लगी हुई थी। इसका मतलब सीड ट्रीटमेंट नहीं किया गया था। अगर किया गया था, पेस्टिसाइड यूज़ हुआ था, तो वो भी असली था कि नकली था वो पॉइंट। तो किसान हमेशा जो है वो सीधे फाइनल बताता है साहब सब सामान खराब है ना। बीज भी खराब था साहब, वो पेस्टिसाइड भी खराब था। जब उससे कहो कि भाई रसीद बता दो कि कहाँ है, वो किससे खरीद के लाए, तो उसका नाम बता दो, तो वो नहीं बताता है ना। तो हम लोग को ये भी प्रमोट करना है कि मक्के में भी आप जो भी बीज लाते हैं, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड की अच्छी से अच्छी वैरायटी जिस भी कंपनी की हो, आप लीजिए, उसका रसीद जरूर लीजिए। इन केस ऑफ वैरायटी फेल्योर, क्वालिटी इनपुट्स की जो बात अभी चल रही है उसको हम लोग पूरा फोकस करने का, अब तो सीड का नया सीड एक्ट का, नया पेस्टिसाइड मैनेजमेंट का एक्ट सब बनने की बात हो रही है, तो उसमें दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से इसके ऊपर बात होगी, तो आगे भी ये करना पड़ेगा। और तीसरा है कि आपका जहाँ कहीं भी मक्के का वैल्यू चेन बन रही है, वो वैल्यू चेन स्टार्च में जा रहा है मक्का, कि आपका इथेनॉल में जा रहा है, कि फिर फीड में जा रहा है, जहाँ जा रहा है दैट वैल्यू चेन शुड ट्रैक एंड ट्रेस, और उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इंडस्ट्री को भी उसमें आना पड़ेगा। आज अभी जूट से की मीटिंग में भी हम ये बात कह रहे थे कि आपको अब जूट को भी यू हैव टू इंडस्ट्री शुड कम इन। ये नहीं हो सकता कि इंडस्ट्री केवल बताए कि साहब 10 लाख बेल कम हो रहा है, 5 लाख बेल वहाँ से मंगा लो, ये करो, वो नहीं। सबको उसमें कुछ न कुछ किसानों के साथ जुड़ने की ज़रूरत आ गई है। मतलब हर क्रॉप में बिना किसान के साथ जुड़े, बिना किसान की हेल्प किए, बिना उसके ये सस्टेन नहीं करेगी चेन आगे, ये भी निश्चित है। आज किसान को दाम मिल रहा है, मक्का लगा रहा है, कल को दाम नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा किसान उसमें आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मक्का होने लगेगा, दाम फिर से चला जाएगा नीचे। तो कब एमएसपी के दम पे सपोर्ट करने में, उसमें भी अब अमेरिका से दबाव बन रहा है। अमेरिका में 1500 रुपये पड़ रहा है मक्का, या 1200-1300 का पड़ रहा है, यहाँ पे 2400 रुपये का एमएसपी चल रहा है। तो ये तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं है। हम लोग एमएसपी के बेसिस पे या इस तरीके से केवल सब्सिडी और एमएसपी और उसके बेस पे कोई वैल्यू चेन बहुत ज़्यादा दिन
सस्टेन शायद नहीं करेगी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी अब धीरे धीरे चर्चा शुरू हो रही है कि किस जहाँ आपका सोयाबीन रिप्लेस करके मक्का लग रहा है, हमारा डीएपी कंजम्पशन और फिर यूरिया कंजम्पशन बढ़ रहा है, हमारा सब्सिडी फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीज़ को भी कहीं ना कहीं 2 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी अब बढ़ के कितना हो जाएगी पता नहीं। हाउ कैन वी सस्टेन। इथेनॉल का दाम जो है वो 72 रुपये अगर मक्के के लिए रखा गया है और 58 रुपये 60 रुपये अगर गन्ने के लिए रखा गया है, तो कल को ये गवर्नमेंट कह सकती है ना कि भाई आप गन्ने से ही कराओ, सस्ता लो, वो एमसीएस क्यों मक्के से खरीदें। इट इज़ ऑल एक अजीब सा वेब है, उस वेब में हम लोग फंसे हुए हैं, घूम रहे हैं। उससे बाहर निकलने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा, ताकि धीरे धीरे ये सब्सिडी और इन सब की जगह रियल प्रॉफिट किसान के पास बिल्डअप हो, किसान को भी फ़ायदा हो, कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो, और एक्चुअल जो कुछ मार्केट में है वो सही स्थिति सामने आए। ऐसे ही 2-4 और छोटी छोटी बातें हैं। एक तो प्रकृति, संस्कृति और विकृति की हम हमेशा बात करते हैं कि प्रकृति से ही संस्कृतियों का विकास हुआ है, तो प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं हमको करना है। एक तरफ हम लोग नेचुरल फार्मिंग मिशन, प्राकृतिक खेती का मिशन चला रहे हैं, और दूसरी तरफ फर्टिलाइजर सब्सिडी भी बढ़ रही है, तो वो दोनों चीज़ जस्टिफाइड नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग को जो हमारी जैसी प्रकृति ने हम लोगों को रिसोर्सेज दिए हैं, उसी के हिसाब से अपनी संस्कृति को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। अगर आज स्वीट सॉर्गम मक्के से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो हमको स्वीट सॉर्गम को भी प्रमोट करना पड़ेगा। अगर हमको सलाइन सॉइल में शुगर बीट अच्छा चलता है, उससे भी इथेनॉल बन सकता है, तो हमको उसको भी करना पड़ेगा। केवल मक्का ही नहीं, बाकी क्रॉप को से कंपटीशन भी देखते रहना पड़ेगा, ताकि ये सारा जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसके हिसाब से हम ज़्यादा से अच्छी खेती कर सकें। अब उसमें इस पूरे चक्र में जो खेती का है, प्रकृति संस्कृति विकृति का, विकृतियाँ आएंगी तो उसके लिए वैरायटी नई चाहिए, पुरानी कम उसमें डिजीज़ आ रही है, पेस्ट आ रहा है, वो सब के लिए लोग इंस्टीट्यूट्स लगे हुए हैं। R&D सपोर्ट से विकृतियों को दूर करने की कोशिश होगी हमेशा, लेकिन फिर भी इस चक्र में सबसे ऊपर अब प्रकृति को फोकस, जो PPP की बात है, प्लैनेट, पीपल एंड प्रॉफिट, तो उसमें प्लैनेट सबसे ऊपर अब फोकस पॉलिसी में है। उसके बाद तब फिर पीपल है, तब फिर प्रॉफिट है। ये तो अब शिफ्ट हो चुका है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे ज़्यादा लेक्चर देने का तो डेटा सब तो मंत्री जी का लेक्चर हम देखे रहे थे, तो उसमें सब पहले से दिया हुआ है। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन आंसर और किसानों के साथ चर्चा की जो बात है ना, उसको ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सिंह। आपने बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पीपल और प्लैनेट के बारे में अच्छा से समझाया, और पॉलिसी का जो भी सारा सारांश है उसको अच्छे से बताया आप। आई विल नाउ एक्चुअली गो टू डॉक्टर अग्रवाल। Sir, you are, I think you are the shining star of this industry, and whatever Dr. Singh said, I would like to understand from you. You have been part of this ecosystem for a long time. Is what role does climate efficient, climate resilient crop plays in the whole planet thing, the sustainability part, and do you have any recommendations to basically improving the maize cultivation, especially in areas where there is water stress and diseases, etc.? धन्यवाद। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे किसान भाई बैठे हैं, तो मैं भी हिंदी में ही बात करना चाहूँगा। आज देखिए, जो आज क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, उसके लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और करेंगे। तो आज जो रिसर्च में काम हो रहा है, उसमें हमको सीड की वैरायटी जैसी लानी पड़ेगी
जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में भी हेल्प कर सके। इसके अलावा आज जैसे सीड ट्रीटमेंट, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत सालों से मैं समझता हूँ एक सीड ट्रीटमेंट केमिकल शायद 50-60 साल से यूज हो रहा है, वीटावैक्स, जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में भी सीड को जर्मिनेशन करने में हेल्प करता है, एक्सेस वाटर में भी सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। फिर अभी बात हो रही थी वीड्स। वीड्स एक बहुत बड़ा न्यूसेंस है, खास तौर से मेज में। और डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेज में एक वीड आता मोथा, अंग्रेजी में साइप्रस रोटेंडेंस कहते हैं, हिंदी में मोथा, जिसका अभी तक कोई कंट्रोल नहीं है। अगर जो किसान मैनुअल निकालता है तो उसकी गांठें अंदर तक होती है और वो ऊपर ऊपर से निकल जाता है, फिर गांठें जर्मिनेट हो जाती है, तो किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है और उससे कम से कम 20-25% तक किसान का नुकसान हो जाता है, क्योंकि बीज मॉइस्चर भी लेते हैं, न्यूट्रिशन भी लेते हैं, सिंथेसिस की भी रोकते हैं, सनलाइट भी लेते हैं, तो हर चीज़ से कम्पीट करते हैं। तो इसलिए वीड मैनेजमेंट, अभी जापान से एक नई वीडिसाइड आया जो बहुत ही सिलेक्टिव है, जो इसको मोथे को कंट्रोल करता है। तो आज जो ये आपने जो बात की रेजिलेंट एग्रीकल्चर, तो आज सोइंग टू हार्वेस्ट, सीड टू सीड मैनेजमेंट की बात है। अगर वीड्स कंट्रोल कर लिए आपने तो फिर डिजीज या इंसेक्ट आते हैं। मेज में फॉल आर्मी बार आया कर्नाटक में 4-5 साल पहले, और उसका कंट्रोल भी है, दवा भी है लेटेस्ट। तो आज साइंस के साथ अगर एग्रीकल्चर की जाएगी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एरिया नहीं बढ़ना है लेकिन प्रोडक्शन बढ़नी है। आज बिहार में भी देखें तो पूर्णिया, खगड़िया बेल्ट है, यहाँ 6-7-8 टन तक की भी प्रोडक्शन किसान ले रहे हैं और एवरेज 3 टन है। अगर थोड़े से भी सिंसियर एफर्ट्स करे जाएं तो इस प्रोडक्शन को एवरेज 4 टन तक बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ जैसे डॉक्टर साईं दास बैठे हैं, मेज़ के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने मतलब देश में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न तक भी यहाँ वो ला रहे हैं। तो आज सोइंग टू हार्वेस्ट, हर चीज़ का अगर टाइमली मैनेजमेंट किया जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हम देश में मक्के की पैदावार स्टेप बाई स्टेप बढ़ा के 5-6 टन तक ले आएँ। और जो संभव है, अगर आज बिहार के किसान कर सकते हैं या साउथ के किसान कर सकते हैं, तो बाकी इंडिया में यूपी का किसान भी कर सकता है और उड़ीसा के भी किसान कर सकता है। जो डॉक्टर साहब ने एक बात पे नकली वाली बात कही, जो अभी कहा कि शिवराज चौहान साहब कल गंज बासोदा थे और किसान ने शिकायत की या बीज भी नकली और सीड ट्रीटमेंट भी नकली, तो ऐसे में क्या होगा। अभी मैं एक बात किरोड़ी लाल मीणा जी, जो राजस्थान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम 50 नकली फैक्ट्रियों, चाहे सीड की है, चाहे पेस्टिसाइड है या फर्टिलाइज़र की है, उन पे इस तरीके से रेड की और टेम्पो में बैठ के गए। मतलब इस तरीके से गए, गाड़ियों को घुमाते रहे, स्टाफ को भी पता नहीं लगा कहाँ जाना है मंत्री जी ने, और लास्ट में वो फिर जहाँ उनको रेड करनी थी वहाँ पहुँच गए। तो ये नकली जो पैरेलल इंडस्ट्री है सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड की, इस पर भी अब मंत्री जी कह रहे हैं हमें बहुत सख्त कानून बनाने हैं। कानून ऑलरेडी बने हो लेकिन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। आज अगर किरोड़ी लाल मीणा जी राजस्थान में आईपीसी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो बने हुए हैं, उन्हीं कानूनों से कंट्रोल कर सकते हैं, तो बाकी राज्य भी चाहें तो कर सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज फ्रॉम सीड टू सॉइल मैनेजमेंट टू वाटर मैनेजमेंट, everywhere it is needed if it is done, and maize is such a wonderful crop, it can do miracle to our agriculture, to our economy. Thank you. Thank you, sir. I want to take a contrary view now. आप डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे, so I'll come to Anish. Anish, you are working in UP. You are trying to actually diversify crop. You're trying to get people, the farmers, from paddy to corn. Yeah.
So this flies against the understanding that the area should not grow, but there should be more yield. So what are the key challenges you are facing in this transition in the cropping system? Okay. Thanks, Ritiman, and thank you everyone. First of all, जब ये सेशन चालू होने वाला था हमें लगा नहीं था कि कोई भी होगा, तो हमें तो लगा था कि हम यहाँ पे 5-6 लोग ऐसे ही गप मार करके चले जाएंगे, बट ये अच्छा लग रहा है कि लास्ट सेशन में भी इतने सारे ऑडियंस है यहाँ पर जो हम लोग को सुनने के लिए आई है. रितिमान, फर्स्ट थिंग ना, कॉन्ट्ररी व्यू नहीं है ये, क्योंकि अगर आप रीड बिटवीन द लाइन्स करिए जो डॉक्टर सिंह बोल रहे थे, तो ही हैड सेड कि एरिया नहीं बढ़ना चाहिए, बट अगर पैडी को रिप्लेस कर रहा है तो इट इज़ अ गुड आइडिया. सो आवर फोकस इज एंटायरली अबाउट कि कैसे पैडी या जो हाईली इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनको कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर क्रॉप्स में इकोनॉमिकली कमर्शियली वाइबल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि मेज इज़ दी ओनली सोल्यूशन, आई एम श्योर उसके लिए और भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते होंगे, बट आज की तारीख में मेज इज़ द मोस्ट ऑब्वियस सोल्यूशन, गिवन द फैक्ट कि मेज का एक स्टेबल मार्केट है, स्टेबल क्या एक्चुअली ग्रोइंग मार्केट है आज की तारीख में. एंड एज ऑफ नाउ, जैसे डॉक्टर सिंह ने भी बोला, हमें ओवर रिलायंस नहीं करना चाहिए एक इंडस्ट्री पे. अब कल की तारीख में अगर गवर्नमेंट अपना नज़रिया बदल देता इथेनॉल के बारे में या सोर्स ऑफ इथेनॉल के बारे में, तो अचानक से ये होगा कि हमारे पास मेज का प्रोडक्शन बहुत सारा हो जाएगा, बट मार्केट नहीं होगा उसका. बट आई थिंक अभी उस स्टेज में भी अभी है समय, क्योंकि पोल्ट्री का और स्टार्च की भी डिमांड सफिशिएंट है. एंड अगर कंसिस्टेंटली भी अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती हैं तो वी स्टिल हैव अ स्लाइट शॉर्टेज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉर्न. प्रॉब्लम क्वांटिटी नहीं है, प्रॉब्लम क्वालिटी हो जाती है काफ़ी केस में, क्योंकि स्टार्च भी और पोल्ट्री भी इज़ वेरी सेंसिटिव टू एफ्लाटॉक्सिन कंटेंट, क्योंकि ये दोनों में हो सकता है एंड यूज ह्यूमन कंजम्पशन आता है कहीं ना कहीं पे, एंड एफ्लाटॉक्सिन के उसके रेजिड्यूज नहीं आ सकता. सो एनीवे, सो काइंड ऑफ कमिंग बैक टू ट्रैक, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है. मेज इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट इन जनरल जो चैलेंजेस आते हैं, एंड वी डू दिस वर्क अक्रॉस मल्टीपल जोग्राफीज. तो यूपी में हम लोग 6 ज़िलों में काम कर रहे हैं, एंड उत्तर प्रदेश सरकार का उसमें एक बहुत मेजर योगदान रहा है कि कैसे इन 6 ज़िलों में, जो ये आपके वेस्टर्न यूपी वाले ज़िले हैं, जो कि ट्रेडिशनली यहाँ पर समर में लोग बाग जो है साठा धान लगाते थे. समर में साठा बोलते हैं क्योंकि 60 दिन का धान होता था, समर के सीज़न में लगाया जाता था. तो उस धान को रिप्लेस करके आप कैसे उसके लिए ऑल्टरनेट सोल्यूशंस डाल सकते हैं. मेज और स्प्रिंग मेज वॉज द मोस्ट ऑब्वियस सोल्यूशन उस केस में, क्योंकि जो आपका कंपैरेटिव है, अगर हम प्लैनेट वाले लेंस से इसको देखें, तो प्लैनेट वाले लेंस से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70-80% कम वाटर कंज्यूम कर रहा है. जो प्लांट का रेजिड्यू रह जाता है वो आपको जलाना नहीं पड़ता, इट इज़ एक्चुअली फॉडर फॉर द कैटल ओवर देयर. एक स्टेबल इंडस्ट्री है उसके लिए, तो आपका प्रॉफिट जो है, अगर एमएसपी नहीं भी होता है तब भी जो है आपके पास एक स्टेबल इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर आज एमएसपी जो है 2250, अगर एमएसपी में नहीं भी जा रहा होगा तो किसान का आराम से 2000-2100 रुपये में कम से कम जा रहा है मक्का हर जगह में. तो इट इज़ नॉट अ बैड ऑल्टरनेटिव. अगर आपके पास एमएसपी सपोर्ट नहीं भी एग्जिस्ट करता है, इंडस्ट्री जो उसको परचेज कर सकती है. यस, इंडस्ट्री का पार्ट ऑफ द रीज़न जो उसका ड्राइविंग फोर्स इज इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो कि कहीं ना कहीं से एमएसपी से लिंक्ड है, बट एक नॉन एमएसपी बेस्ड डायरेक्ट इंटरवेंशन के बेसिस पे भी आप उस क्रॉप को चला सकते हैं. हमारी अपनी लर्निंग जो रही है, क्योंकि हम ये जो चीज़ है पिछले 2-2.5 साल से हम लोग यूपी सरकार के साथ काम कर रहे हैं, उससे पहले हम लोग खुद भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. तो हम लोगों को ये एक्सपेरिमेंट रन करते हुए 2019 में हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट रन किया था. हमने एक चीज़ रियलाइज़ किया है, आपको कोई भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम चलाना है, अगर हम स्टेबल मार्केट नहीं दे पाएंगे किसान को, और मैं ये नहीं कह रहा कि हम उसको एक अपर लिमिट करें या एमएसपी भी करें, अगर आपके इंडस्ट्रियल पार्टनर्स मिल करके अगर एक प्राइस का इंडिकेशन या एक फ्लोर प्राइस का इंडिकेशन या कमिटमेंट भी कर सकते हैं, तो आपका प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल हो जाएगा. हम लोगों ने जब ये चालू किया था, एंड ये पब्लिकली नोन डॉक्यूमेंटेड है, तो हमारा पार्टनर बायर जो था रॉके इज़ अ फ्रेंच कंपनी, उनका प्लांट है उधम सिंह नगर में, तो देवर आर पार्टनर्स. तो उन्होंने कमिट किया था, तब शायद 17-18 रुपये का एमएसपी चलता था, लेकिन उन्होंने कमिट किया था कि चाहे जो हो जाए मार्केट में, हम 13 रुपये में लेंगे.
एंड वो कमिटमेंट के कारण किसान ने अपना वर्किंग किया, उसने देखा कि भाई मैं 1 हेक्टेयर में जो हूँ 8 से 10 टन मक्का निकाल सकता हूँ, 13 रुपये पे अगर मेरा जाएगा, मेरा खर्चा इतना है, उसने अपनी गणित की, उसने बोला कि यार बेयर मिनिमम मेरे को इतना रिटर्न आएगा। फिर उसने देखा कि भाई पास्ट में जो है रेट 17-18 भी गया है, तो उसने देखा कि अच्छा इतना मैं सट्टा खेल सकता हूँ। मतलब किसान भी अल्टीमेटली जो है प्रॉफिट के लिए कर रहा है, और उसका अनफॉर्चुनेटली क्या है कि प्रॉफिट फिक्स नहीं है, क्योंकि उसका जो रेट जब बिकेगा, वो जो आज मैंने लगाया फसल 4 महीने बाद फसल निकलेगी, तब रेट क्या होगा मुझे नहीं मालूम। सो फार्मर जो है एक तरीके से सट्टा खेल रहा है उस एंड में। आपने थोड़ा सा डिरिस्क कर दिया, आपने उसको इंडिकेशन दे दिया, किसान जो है रेडी होता है उसको अडॉप्ट करने के लिए। आज की तारीख में आई एम वेरी प्राउड टू से कि आई डोंट थिंक कि उधम सिंह नगर वाली बेल्ट में और उसके आसपास वाली बेल्ट में, जो ट्रेडिशनली जहाँ पर साठा धान लगता था, आज की तारीख में कोई भी जना लगा रहा है। कुछ उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहा था, गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी बैन कर दिया कि आप पैडी नहीं लगाएंगे। कुछ किसान ने खुद भी देखा कि प्रॉफिट बन रहा है, तो वाई नॉट। एंड आई थिंक ये पूरा एक मिक्स होगा। जब भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्लान होगा, हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को उसमें प्लैनेट वाले एंगल को कहीं ना कहीं पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि ये ना हो कि हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी वाले चक्कर में कहीं ऐसे डाइवर्जेंट क्रॉप में चले जाएं विच डज मोर हार्म टू द प्लैनेट। तो वहाँ पर आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले दैट कंट्रोलिंग रोल। कहीं पे समझा करके हो जाता है, कहीं पर पेनल्टी लगा करके किया जाता है, बट वो कैरेट और स्टिक वट एवर इज दैट, आई थिंक दैट द गवर्नमेंट विल हैव टू प्ले दैट रोल, विच आई नो इज सेंसिटिव, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर। बट वो रोल अगर गवर्नमेंट नहीं प्ले करेगी, तो आई डोंट थिंक इफ वी लीव इट टू प्योर मार्केट्स, तो थिंग्स विल गो ऑल ओवर द प्लेस। तो आई थिंक मार्केट कनेक्ट्स, ऑब्वियसली क्रॉप का अपना डीएनए क्या है, बट दैट गवर्नमेंट कंट्रोल और दैट ओवरसाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल है एट अ लोकल लेवल, एट अ स्टेट लेवल, एट अ नेशनल लेवल, फॉर एवरी क्रॉप। एंड टू रिआइटरेट, हमारा व्यू डाइवर्जेंट नहीं है सिंह साहब से। वी आर फोकसिंग ऑन अ बेटर देन पैडी क्रॉप, सो आई थिंक ही विल नॉट माइंड इफ वी कंटिन्यू टू डू दैट। थैंक यू। Thanks. No, Anish, I was just dramatizing it. I'll come to Mr. Joshi now. We heard Anish and others speak a lot about MSP. Apart from MSP, I think the other um, way that the farmer can earn is the carbon credits. So just want to understand how the maize farmers can participate in the global carbon market, and what are the benefits that they can derive. Thank you, Tritiman and my co-panelist. पहले मैं बात करूंगा मैं कहाँ से आ रहा हूँ, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड। एक जॉइंट वेंचर है 4 कंपनियों का, बायर, मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, शेल और टेमासेक। ये 4 कंपनियों ने मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाया है कार्बन क्रेडिट का बिजनेस करने के लिए। तो ये जॉइंट वेंचर क्या करता है, एग्रीकल्चर में काम करता है, फार्मर्स के साथ काम करता है, और उसमें से कार्बन क्रेडिट जनरेट करता है और उसको इंटरनेशनल मार्केट में उसको सेल करता है। दिस इज़ द बिजनेस मॉडल। तो ये जॉइंट वेंचर को मैं हेड करता हूँ, एंड इस वेंचर के थ्रू कार्बन का बिजनेस यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ फार्मर्स के साथ मिलके। दिस इज़ द बैकग्राउंड। अभी यहाँ पे जो ऑडियंस है, दिस इज़ अ मिक्स ऑडियंस। कुछ लोग को पता होगा कि कार्बन मार्केट क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, एंड आई एम कॉन्शियस ऑफ टाइम। जो हम प्लैनेट की बात करते हैं, सभी हमारे को पैनलिस्ट प्लैनेट की बात करते हैं या सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी के 2 डायमेंशंस है। एक बड़ा डायमेंशन है बिग पिक्चर एंड बड़ी बड़ी बातें कि GHG एमिशन कम करो, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको कम करो, ये तो ठीक है, बड़ी बड़ी बातें हैं। मगर हमारे लिए, फार्मर्स के लिए या हिंदुस्तानी लोगों के लिए इसका क्या मतलब है, इसका क्या डायमेंशन है। तो जब हम प्लैनेट या सस्टेनेबिलिटी या एनवायरनमेंट बोलते हैं,
हमारे लिए इसका कॉन्सिक्वेंस है कि हमारे लाइवलीहुड पे, हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारे बिजनेस पे इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है और होने वाला है। सीधी सी बात है, दो चीज़ें हैं। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो पानी, हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाइए आप, नॉर्थ पंजाब से जाइए, कश्मीर से जाइए, कन्याकुमारी तक जाइए, पानी की अवेलेबिलिटी हर साल कम हो रही है। पंजाब में तो आपको पता है कि हर साल 1 मीटर से पानी का लेवल नीचे जाता है। तो पानी की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ाना, ये किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमारे एग्रीकल्चर, हमारे फार्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये हमारा बहुत सीधा इम्पैक्ट हम पे आ रहा है। दूसरा, प्लैनेट का जो एंगल है या सस्टेनेबिलिटी का एंगल है जो हमारे लिए रेलेवेंट है, वो है सॉइल क्वालिटी। हमारी जो ज़मीन है वो हर साल इतनी उसकी क्वालिटी घट रही है, और इसका एक सीधा इंडिकेटर है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। आपको पता होगा सबको, ये एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पे। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन हमारे देश में मेजॉरिटी एरिया में 0.5% से नीचे चला गया। इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी जो है, सॉइल की क्वालिटी जो है, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो काम है, ये सभी कुछ बहुत ही कम हो गया। सीधा इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्शन पे आएगा, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पे आएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी पे आएगा, फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट पे आएगा। तो सीधा ये जो प्लैनेट के एंगल है, ये जो सस्टेनेबिलिटी के एंगल है, वो किसान को या फार्मर को सीधे सीधे इम्पैक्ट करते हैं। बाकी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ठीक है, उसका भी इम्पैक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का भी इम्पैक्ट है। जैसे हमारी नेचुरल साइकिल बदल रही है, रेनफॉल का स्केड्यूलिंग बदल रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, उसका हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, वीट का प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आ रहा है, राइस के प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं सीधे किसान के लिए समझनी और उसको हैंडल करनी बहुत ज़रूरी है। अभी ये चीज़ें इम्प्रूविंग सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी, इम्प्रूविंग वाटर अवेलेबिलिटी, और क्लाइमेट मिटिगेशन, मतलब ऐसे क्रॉप को प्रोडक्शन करना कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है वो हम पे कम आए। ये सब चीज़ें अगर स्केल पे करनी है, 10,000, 15,000, 20,000 हेक्टेयर करना है तो बहुत इजी है। कहीं से CSR का फंड लेके आइए और कुछ छोटा सा प्रोग्राम कीजिए, हो गया काम ख़त्म। उसको अगर बढ़ाना है तो आपको चाहिए बहुत बड़े फंड्स, एंड ऐसे फंड्स चाहिए कि जो रिन्यूएबल है, जिसको आप इन्वेस्ट करें, उससे बाहर निकालें, फिर से इन्वेस्ट करें। ऐसा अगर फंडिंग आपके पास है तो आप लाखों करोड़ों हेक्टेयर्स में ये सब काम कर सकते हैं और आपकी सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, या तो आपका क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कर सकते हैं। तो आपको चाहिए रिन्यूएबल फंड्स इन ह्यूज अमाउंट। दूसरा, आपको चाहिए कि ये जो एफर्ट्स है इसको बिजनेस की तरह ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। CSR का इम्पैक्ट लिमिटेड होता है, बहुत छोटा होता है। अगर ये बिजनेस मॉडल बन जाए, क्लाइमेट चेंज कम करना, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ाना, सॉइल को अच्छा करना, तो आप इंसेंटिव के साथ प्रॉफिट के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हो। ये हमको अवेलेबल कर दिया है कार्बन मार्केट्स ने। जो ग्लोबल मैकेनिज़्म है कार्बन मार्केट का, उसमें क्या है कि आप काम कीजिए, आप एमिशंस कम कीजिए, आप सॉइल की क्वालिटी अच्छी कीजिए, आप पानी की मात्रा अवेलेबिलिटी बढ़ाइए, और उसके आप जो काम करेंगे उसके लिए पैसे देने के लिए ग्लोबल कंपनियां जो है वो तैयार बैठी है, अगर आप अच्छा इफ़ेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड काम करोगे तो। और यही है बेसिस कार्बन मार्केट का। तो कार्बन मार्केट में क्या होता है कि आप एमिशन कम कीजिए, आपकी एक्टिविटी का, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है या कुछ भी है,
उसमें आप एमिशन कम कीजिए। अगर आपने 1 टन एमिशन कम किया तो उसके लिए एक आपको क्रेडिट मिलेगा कि आपने ये क्रेडिट वर्दी काम किया है। वो क्रेडिट आप किसी को बेचिए, बड़ी कंपनी को बेचिए, मल्टीनेशनल कंपनी को, और उसके लिए वो आपको पैसे देंगे। ये जो कार्बन मार्केट है वो अभी आजकल 2 से 3 बिलियन डॉलर का है और वो बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, और उसमें एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। एग्रीकल्चर में जो एमिशन अगर हम कम कर पाएंगे तो उसमें से जो कार्बन क्रेडिट जनरेट होगी उसकी डिमांड क्विकली, रेगुलरली और ओवर टाइम बढ़ रही है, और इसका फ़ायदा होगा हमारे किसानों को, हमारी ज़मीन को और हमारी पानी की अवेलेबिलिटी को। I'll stop here and maybe next round I can answer more. Thank you. Thanks, Waz. That was a quick one and very informative. So, I will move to another startup, Vidur. We heard Dr. Singh talk about sustainability and how we can, without increasing the acreage, how we can increase the yield. So, companies like yours, you are actually bringing in digital first solution, distributing the inputs, the farm inputs, etc. So I just want to understand that, looking at the current state of the maize cultivation and where it is, how do you really ensure that how you deliver these inputs actually help increase the yield and make this crop more sustainable? Yeah, thank you, Dhitiman. Thank you very much. So, if you see in today's time, and this question is very, very valid, specifically for maize growers across a few states. If you see today's ecosystem, what we have seen is that there has been a sizable or agri input manufacturers or seed manufacturers or seed sellers, or they have taken a large stride in developing a lot of products, developing very high quality, high yielding products. One thing that has always been ignored, or I would say overlooked, has been the mechanism of delivery of these chemicals. And by delivery I mean the mode of spraying. There has been sizable data that has proven that there has in certain cases, in certain chemicals, the difference between manual spraying, the difference between mechanized spraying, and the difference between aerial spraying has been fairly different. So all in all, I would say that there is a dire need today that the whole ecosystem needs to work together to improve the delivery of these chemicals, improve the delivery of the fertilizers, improve the delivery of the method of spraying at the farmer level. And companies like ours, we don't call ourselves a technology company, we are not a technology company. हमारा काम है ड्रोन स्प्रे सर्विसेज, एंड हम वो कैसे करते हैं? We take the drone to the farmer and take the chemical, spray the chemical at the field. It solves multiple problems. It doesn't only solve the problem of spraying, but it also solves किसी farmer भाई का हमारा एक सवाल था कि कैसे पता लगेगा कि chemical सही है या नहीं है. तो हमारे pilots are trained to see and test कि वो chemical सही है या नहीं है, किस मेथड से उसको अप्लाई करना है. दे आर ट्रेन्ड, एंड दैट इज व्हाट रिजल्ट्स इन प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. So I feel, and we have a live example in terms of distribution of technology, right? You see UPI. The success of UPI today is not just the technology in itself, but the success of UPI is started from demonetization, went to making phones available at a cheaper price, making 4G available at a cheaper price, and then institutionalizing a solution called UPI, then distributing the technology all through. And that is what really matters. So I feel, in terms of, if you talk about these three things, productivity, profitability and sustainability, or planet health, I feel everybody in this room, starting from the farmers to the agri input manufacturers to the government to startups like Anish startup, or to companies like us, we need to sit down together
and train the farmers and tell the farmers, increase acceptability, adaptability at the farmers level, that there is technology available and there are companies like ours which are delivering technology at the doorstep of the farmer on a SaaS based model, so on a per acre basis model. So you don't need to ideally purchase the machine, you don't need to purchase the drone, you just need to book a service and avail or reap the benefits of this technology that is available today. Thanks, Vidur. So you are actually doing drone as a service plus model kind of thing. So we can say agriculture as a service kind of a model, right? So this is something new. So, coming back to what Anish said some time back, Arun, I'll come to you. I will, and again, take the liberty of dramatizing what Anish said. He said farmers are playing satta, right? They don't really know what pricing will happen after 4 months, 5 months. So you are, I think, India's largest commodity exchange, and how do you really play the role of the enhancing the productivity and the income of the farmers and the other ecosystem using the exchange? Yeah, thanks. I'll keep it in Hindi because I think there are farmers also there. So सर्वप्रथम मैं फिक्की का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया इस बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल का हिस्सा बनने के लिए। और जो सवाल आपने पूछा है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यदि हम पूरी वैल्यू चेन को देखें तो अभी हमने ये बात की है कि कुछ सालों में मक्के का जो उत्पादन है वो बढ़ा है, या मैं कहूँगा कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, राइट। एंड कुछ हद तक उससे चिंता भी हुई है कि वो दूसरी फसलों को रिप्लेस कर रहा है। और जो कारण है उसके पीछे अगर हम उसको देखें तो वो इकलौता कारण है कि पिछले कुछ सालों में किसानों को मक्के का भाव अच्छा मिला है। तो जब अगर आप देखें तो अपने को जो वैल्यू चेन है उसके एंड से शुरू करना पड़ेगा। अगर प्राइस राइट मिलता है तो बाकी सब चीज़ें फॉलो करती है। तो अगर हम एक सही भाव देने को, और आई थिंक इससे पहले भी अनिश जी ने भी यही बात कही थी कि अगर आप एक मिनिमम प्राइस गारंटी कर पाते हैं या दे पाते हैं फार्मर को या जो भी प्रोड्यूसर है उसको, तो डेफिनेटली आपको बाकी सब चीज़ें उसको फॉलो करेगी। यानी कि आप वो प्रयास करेगा कि वो अच्छे बीज बोए, प्रोडक्टिविटी बढ़े, ज़्यादा एरिया उसके अंदर आए और प्रोडक्शन बढ़े, तो एवरीथिंग विल फॉलो। लेकिन क्या होता है एग्रीकल्चर में, और ये सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ है आई थिंक जिन्होंने भी एग्रीकल्चर पढ़ी, एक फिनोमेना होता है कॉबवेब फिनोमेना, जिसका अर्थ ये है कि इस साल अगर मुझे किसी चीज़ के भाव अच्छे मिले तो क्या होगा कि अगले साल उसकी फसल ज़्यादा उगाई जाएगी, और जब उस चीज़ की फसल ज़्यादा उगाई जाएगी तो अगले साल जब फसल कट के आएगी तो उस चीज़ के भाव डिप्रेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और मुझे लगता है एग्रीकल्चर का ये एक बेसिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का शब्द है, और हर कोई इसको सुनते आया है, समझते आया है या शुरू से पढ़ते आया है। अब इससे कैसे जो प्रोड्यूसर है उसको निकाला जाए, तो मुझे लगता है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर एक्सचेंजेस हैं या कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं वो एक रोल अदा करते हैं। और वो किस प्रकार से इस रोल को अदा करते हैं, वो ये है कि जब यदि आप अपनी फसल लगा रहे हैं, यदि उस समय आपको एक ऐसा माध्यम मिल जाए कि मुझे इतना प्राइस में कम से कम मैं आज से 4 महीने बाद या 5 महीने बाद अपनी फसल को बेच सकता हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास उस समय मैं ये देख सकता हूँ कि 4 फसलों में से या 5 फसलों में से जो मैं उगा सकता हूँ, मुझे मैक्सिमम रिटर्न किस में मिल रहा है और जिसका भाव मुझे सबसे अच्छा दिख रहा है उस समय, उस फसल को कम से कम मैं लगा सकता हूँ। तो ये जो रोल है ये कमोडिटी एक्सचेंजेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं फार्मर की दृष्टि से या किसान की दृष्टि से देखूं, और मैं ये भी बताना चाहूँगा हमारे साथ लगभग 700 FPOs जुड़े हुए हैं, मक्के में नहीं, अक्रॉस कमोडिटी, जो लगभग 11 लाख किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनमें से लगभग 250 FPO ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी NCDEX के ऊपर काम किया है। और उन्होंने क्यों काम किया है उसका कारण ये है कि आज अगर मैं कोई फसल उगाने जा रहा हूँ, जैसे अभी हमारा मानसून का सीजन चल रहा है तो हमारी खरीफ की सोइंग चालू है। अब अगर मुझे कहीं से ये पता चला कि अक्टूबर या नवंबर में मुझे उस क्रॉप के लिए क्या प्राइस मिलेगा, तो मैं कहीं ना कहीं ये निश्चित हो सकता हूँ कि मैं कम से कम इतना प्राइस तो मुझे मिलेगा। एंड ये रोल जो है कमोडिटी एक्सचेंजेस प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आपको हर महीने के 2 महीने 3 महीने 4 महीने आगे के जो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, वायदा जिसे कहते हैं, वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो अपनी क्रॉप को, अगर आपको भाव सही लग रहे हैं, जैसे अक्टूबर का अगर मैं आज का बात करूँ तो अगर अक्टूबर का भाव मान लीजिए मक्के का मैं उदाहरण लेता हूँ और मान लीजिए वहाँ पे 2450 रुपये का मान लीजिए भाव चल रहा है, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे ये पता है कि 2450 रुपये में मैं अपनी फसल आज बेच सकता हूँ। अब हो सकता है उस समय भाव ऊँचे भी हो जाए, लेकिन मुझे ये तो पता है कि कम से कम मुझे ये भाव मिलेगा।
तो मैं बैक कैलकुलेट कर सकता हूँ कि क्या वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और मैं उसके बेस पे एक डिसीजन ले सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी, जैसा कहते हैं कि अगर इफ़ देयर इज़ अ बिजनेस विच इज़ नॉट, इफ़ यू आर नॉट डूइंग बिजनेस फॉर profit, and I think farming is also a business, right? So then we are actually just doing our hobby. So if we are not driven by profit, it is just a hobby. तो अगर मैं प्रॉफिट की तरफ नहीं देख रहा हूँ, और किसानों के लिए भी ज़रूरी है, अगर वो प्रॉफिट देख के काम करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट करने का हमेशा प्रयास करेंगे। तो ये एक चीज़ है जो कमोडिटी एक्सचेंजेस जो है फुलफिल करते हैं। और क्योंकि एक किसान के लिए ये हमने देखा कि पॉसिबल नहीं होता है हमेशा कि वो जो एक्सचेंजेस पे जो लॉट साइज ट्रेड होते हैं जितनी कमोडिटी चाहिए वो कर पाएँ, इसीलिए हमने एफपीओ मॉडल की तरफ गए, और लगभग जैसे मैंने बताया 700 के आसपास एफपीओ जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मक्के में जो है एफपीओज ने ऑलमोस्ट 20,000 टन की फिजिकल डिलीवरी एनसीडेक्स के ऊपर पिछले 5-6 सालों में की है, अलग अलग समय के ऊपर। तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक कह सकते हैं एज अ पायलट जो है वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है। थैंक यू अरुण। सर, नोटिसिंग आप घूम फिर के हम वही प्राइस पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, प्लानट पे आ रहे हैं बार बार, बट देर इज़ वन थिंग दैट Mr. Mathur took up, actually defined in the beginning. It was policy and capital. आपने पॉलिसी के बारे में बात किया एंड काफ़ी लोगों ने बात किया। So I will come back to you on the capital bit, because you are an investor yourself. You are in the P world, you are in the funding world. So आप ही हमें बताइए, how can capital help a small farmer, and how can capital really help define sustainability for a maize farmer? So I think there's one term that we use very often in the investing world, which is called unit economics. उसका बड़ा सिंपल जो मीनिंग ये होता है कि अगर कोई 1 रुपया खर्चा कर रहा है तो उस पर वो कितना कमा रहा है, राइट? सो इफ इट इज़ लेस देन 1 रुपी, डेफिनेटली यूनिट इकोनॉमिक्स इज नॉट वर्किंग, राइट? तो आई थिंक वो हमें किसान को भी उसी नज़रिए से देखना है कि उसकी जो यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे इम्प्रूव होगी, राइट? आई थिंक एक जो बड़ा चेंज आया पिछले 10-15 सालों में कि जो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी थैंकफुली इज़ एट अनदर लेवल। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हमने बहुत बड़ी चीज़ कर दी है, बट एक शुरुआत कर दी है। तो मेरा जो मानना है कि जैसे आज अनीश है, विदुर, मतलब इतने स्टार्टअप्स, कम से कम मतलब इंडिया में 10,000 एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हैं, और एटलीस्ट 1,000-2,000 तो ऐसे हैं जिनके सॉल्यूशंस प्रूवन है। बट क्या किसान को पता है? यू ट्रैवल 100 किलोमीटर्स आउटसाइड दिल्ली, एंड आई डू इट वेरी ऑफन, एंड यू गेट सरप्राइज कि देयर इज नॉट अनफ अवेयरनेस. So awareness, access, affordability, all these are still big challenges. तो coming to your point, मेरे ख्याल से ये सब टेक्नोलॉजी, और मैं I won't say one technology over another. We need a combination of that. Let's say we talked about pricing. If we have tools to do price forecasting, it will help farmer. If we have tools to tell him कि इतनी पानी की बचत हो सकती है, इतनी खाद की बचत हो सकती है, आप टाइम पे पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो इतना आपका नुकसान कम हो सकता है। सो देर इज़ अनफ रीज़न टू प्रूव विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक चैलेंज है। आई थिंक वी स्टिल, मतलब टू मी दैट्स अ काइंड ऑफ अ लो हैंगिंग फ्रूट। द क्वेश्चन इज हाउ डू वी मेक दिस टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू द फार्मर, द स्मॉलेस्ट ऑफ द फार्मर। और मुझे वहाँ लगता है कि मतलब हम सबको मिलके कुछ करना पड़ेगा। विद टॉक्ड अबाउट UPI, UPI is there on every phone. आज किसान के पास जाओ तो वो बोलता है मैं क्यों, मेरे पास फ़ोन में इतनी जगह ही नहीं है कि मैं 20 ऐप भी डाउनलोड कर पाऊँ, राइट? और ऑलमोस्ट एवरी सोल्यूशन इज ऐप ड्रिवन. सो आई थिंक देर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैपनिंग. अनीश ने बात करी यूपी गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रहा है. आई थिंक वन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग टुगेदर इज ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर, इट्स एसेंशियली ऐप एग्नोस्टिक. किसान को ज़रूरत ही नहीं है ऐप डाउनलोड करने की. इट इज़ एज सिंपल एज अ व्हाट्सएप बॉट. उसको लिखना है, जैसे मक्के का किसान है कि मुझे मक्का बेचना है, मुझे मक्के का बीज खरीदना है, मुझे ड्रोन स्प्रे करना है, उसे सिर्फ एक बटन दबाना है.
और पीछे हमने पूरा नेटवर्क बना दिया स्टार्टअप्स का, और या जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एंड इट क्वेरी गोज डायरेक्टली टू दैट पर्सन. इनफैक्ट इस पर हम KCC लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद अभी तक डिजिटल फॉर्म में कभी कहीं हुआ नहीं है. तो आई थिंक हमें इस पे अब सोचना पड़ेगा. मतलब यूनिट इकोनॉमिक्स तो मेरे ख्याल से प्रूवन है एक लेवल पे, बट इसको किस माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाए, वो इस पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा. और वहाँ पर मुझे लगता है सरकार का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अल्टीमेटली फार्मर ट्रस्ट द गवर्नमेंट द मोस्ट, नॉट एज मच प्राइवेट सेक्टर. फ्रेंकली स्टार्टअप का जो, अगर आप एवरेज एज देखेंगे इंडिया में, एवरेज एज ऑफ ए स्टार्टअप इन एग्रीकल्चर 4 to 5 years, कुछ भी नहीं है. That to build that kind of credibility and trust among farmers is a big challenge. That's why I think the government has to come forward, and thankfully there are a lot of very good initiatives apart from open network. There's AgriStack which is in work. There's a CropStack, digital crop survey which is being built, which has a phenomenal multiplier implication on how agriculture will be done in the future, not just maize, across value chains. So I think that is where we should be thinking very smartly, how to make these solutions available at the fraction of a cost, to the farmer, and in a manner which is customized. Again, another important thing, farmer is not looking for a point solution, he is looking for a holistic solution. Can these networks, technologies orchestrate a solution? इनपुट खरीदना तो सिर्फ इनपुट नहीं चाहिए, उसके लिए फाइनेंसिंग भी चाहिए, राइट? बट हाउ डू योर सिस्टम ऑर्केस्ट्रेट दिस सॉल्यूशन is very important. So I think I would say that I think time has come for us to think out of the box. Otherwise, to cater to the smallest of the farmers in a manner which is profitable for everyone. Startups are also not doing charity, right? They also need to make money. Kisan has to make money. जो उनको खरीद रहा है, जो उनको बेच रहा है, उसको भी पैसा बनाना है, right? So I think that's where the ecosystem building is so critical. Thankfully, we have broadband. Thankfully, we have 4G. Thankfully, the smartphone penetration is at another level, right? We're going to have weather station in every block. The soil testing is becoming more portable and affordable, right? So I think there are a lot of positive movements, but we need some catalytic effort and a policy effort, I would say. And whether we like it or not, state government call the shot when it comes to agriculture. I hope what we are doing in UP becomes a benchmark for rest of the state to follow. But state governments need to be, to be onboarded for this to happen at scale. I'll stop here. Thank you, Mr. Mathur. So you talked about out-of-the-box solutions. So I think one of the out-of-the-box solutions is, of course, the carbon credits. And so I'll come back to you, Mr. Joshi. So you spoke briefly, you explained everything about the carbon credit and how it is done. Can you tell us what are the key trends going in the carbon markets right now, particularly in the nature-based agriculture solutions? Just add one more question in that. How can you generate carbon market through maize? That is also very important. We are sitting here. Absolutely. And perhaps I take that question first, क्योंकि पहली बार में मैंने जनरल कार्बन मार्केट के बारे में बताया. बैकग्राउंड थोड़ा होना ज़रूरी है बिफोर यू टॉक स्पेसिफिक. फॉर द मेज फार्मर जो मक्के की खेती करते हैं, कार्बन मार्केट का प्रिंसिपल क्या है कि आपको एमिशन कम करना है. आप अगर 1 टन एमिशन कम करोगे आपके फार्मिंग में, तो वो 1 टन कम हुआ एमिशन का एक सर्टिफिकेट, एक कार्बन क्रेडिट उसमें से बनता है. और वो सर्टिफिकेट देन अगर आप, वो मार्केट है तो कोई उसको $5 देगा, कोई $10 देगा, कोई $20, $25, $30 देगा. सो मार्केट में जैसे प्राइस मिलेगी उस हिसाब से उस सर्टिफिकेट के पैसे मिलेंगे. तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको 1 टन कार्बन का एमिशन कम करना है या 1 टन कार्बन आपको ज़मीन के अंदर डालना है. कम करने का मतलब है आप उतना कार्बन को अवॉइड करोगे. ज़मीन के अंदर डालने का मतलब है आप 1 टन का कार्बन सिक्वेस्टर करोगे ज़मीन के अंदर. अभी मक्के में क्या होता है, पहले तो जो किसान हाई इंटेंसिव क्रॉप प्रोडक्शन से मक्के में शिफ्ट होते हैं, वो तो पहले ही ऑलरेडी आप एमिशन या कार्बन इम्पैक्ट कम कर रहे हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल राइस है,
राइस से अगर आप मक्के में शिफ्ट हो गए तो ऑलरेडी आपका एमिशन बहुत कम हो गया। मगर मक्के में भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, फर्टिलाइज़र से एमिशन होता है। मक्के में आप टिलेज करते हो, टिलेज ऑपरेशन करते हो, सॉइल को ब्रेक करते हो आप बिफोर द सीज़न। उसके कारण ज़मीन के अंदर का जो कार्बन है वो बाहर चला जाता है, डिसिपेट हो जाता है। और मशीन का अगर यूज़ करते हो आप, ट्रैक्टर का या किसी का, तो उसके कारण भी आपका एमिशन होता है। तो मक्के में कार्बन क्रेडिट जनरेट करने के लिए 3-4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है रिड्यूस टिलेज या नो टिलेज। टिलेज का जो हमारा प्रैक्टिस होता है कल्टीवेशन का, सॉइल कल्टीवेशन का, वो अगर आप कम कर दोगे या बंद कर दोगे, और वो कैसे बंद करना है, देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस, वो अलग अलग मेथड्स हैं। वो अगर आप कम करोगे तो ज़मीन का जो हमारा कार्बन है वो डिसिपेट नहीं होगा, ज़मीन में ही रहेगा। और वो हम जितना ज़मीन में रख पाएंगे, अगर 1 टन हमने ज़मीन में रखा, मेंटेन किया, तो हमारा 1 कार्बन क्रेडिट बनता है। अगर फर्टिलाइज़र यूज़ थोड़ा आपने कम किया तो उसके हिसाब से भी हमारा कार्बन क्रेडिट जनरेट होता है। और टिपिकली, बहुत ब्रॉडली, स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्रॉडली मक्के का पर हेक्टर एमिशन होता है 2 से 3 टन प्रति सीज़न कार्बन एमिशन। उसको हमने अगर कम करके उतना कार्बन हमने ज़मीन में सिक्वेस्टर किया तो हम प्रति हेक्टर पर सीज़न 2 से 3 कार्बन क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं। कभी कभी सब अच्छे से किया तो 4-5 भी कर सकते हैं। ये जो कार्बन क्रेडिट है उसका अगर हम अच्छे क्वालिटी का जनरेट किया तो हमको प्राइस अप्रॉक्सीमेटली मिल सकता है $20 से लेके $50 तक। मार्केट मैकेनिज़्म है, फिक्स प्राइस नहीं है, मार्केट में जैसे मिलेगा वैसे है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल $35-40 हमको 1 टन का एक सर्टिफिकेट का प्राइस मिला। प्रति सीज़न आप 3 टन या तो 3 क्रेडिट जनरेट कर रहे हो। एग्ज़ाम्पल सोच लीजिए आप कितना पैसा प्रति सीज़न जनरेट कर रहे हैं कार्बन मार्केट से। सो मोटा मोटी 10% आपका जो टोटल मक्के से जो रेवेन्यू आता है, जो आपकी कमाई होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10% तक एडिशनल रेवेन्यू आप कार्बन मार्केट से जनरेट कर सकते हो। एडिशनली कार्बन से पैसा मिलता है, मगर उसके साथ आपकी ज़मीन का जो SOC है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, वो भी इम्प्रूव होता है। मैंने बताया अभी हिंदुस्तान में 0.5% से कम है जनरली सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, और उसके कारण ज़मीन की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है। अगर हम इसी प्रोसेस में कार्बन सिक्वेस्टर करेंगे तो हमारी ज़मीन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, सस्टेनेबल प्रोडक्शन बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा। ज़ीरो टिलेज या रिड्यूस टिलेज प्रैक्टिस करोगे तो आपका मशीन का खर्चा जो रहेगा वो भी कम हो जाएगा और उसका भी कुछ सेविंग आपको मिलेगा। सो ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिससे हम कॉर्न फार्मर के लिए थ्रू कार्बन मार्केट्स एडिशनल सप्लीमेंट्री इनकम, ये मेन इनकम कभी नहीं बन सकता, मगर एक एडिशनल इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम इम्प्रूविंग दी सॉइल क्वालिटी। थैंक यू। जस्ट एक एडिशनल क्वेश्चन, इधर विदुर जी बैठे हुए हैं। विदुर जी, कोई नीति बताइए जिससे कि आपका जो ड्रोन का स्प्रे है वो कार्बन क्रेडिट से उसको बैलेंस किया जा सके, मतलब उसका कॉस्ट कम कर सकें आप, और ड्रोन का से आपका पेस्टिसाइड भी कम होगा और इधर कार्बन क्रेडिट भी जनरेट हो जाए, किसान को फ्री में आप सर्विस दे दें, क्रेडिट आप ले लीजिए सारा। जोशी साहब बैठे हैं यहाँ पर, मेरी पूरी इच्छा है कि मैं किसी तरीके से कार्बन क्रेडिट्स को बनाऊं, बट मुझे लगता है कि अभी वो दिन थोड़ा दूर है, क्योंकि जिस क्वांटम पे अभी हम जिस इंडस्ट्री की शुरुआत पे हम बैठे हैं, अभी थोड़ा टाइम है जब वो स्केल उतना बढ़ेगा कि हम उतने कार्बन एमिशंस को कम करेंगे। और हाँ, आज का फोकस मगर हमारा ये रहेगा कि एक्सेप्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़े, मे बी इन अनदर 2 or 3 years जोशी साहब विल हेल्प अस in buying our credits. श्योर, एब्सोल्युटली, कन्वर्जेंस बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे होगा वो। तो
आपका ड्रोन का स्प्रेइंग हो सकता है फ्यूचर में फ्री हो जाए कार्बन के सामने, और वी कैन जनरेट मोर कार्बन क्रेडिट्स. लेट्स सी द फ्यूचर. Correct. Thanks, Mr. Joshi. Uh, Dr. Agarwal, you heard Mr. Joshi talk about sequestering carbon and bringing around the credit, etc. So, just want to understand how can the input industry actually collaborate more with the government to ensure that the farmers adopt more sustainable practices in maize, which also feeds into Dr. Singh's actual question on drones and the carbon credits. So similar to this basically. थैंक यू. देखिए, हमारी कंपनी ने लीड ली हुई है गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए. हमारा आईसीआर के साथ एमओयू है, और आईसीआर के साथ मिलकर हम फार्मर्स को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमारा R&D सेंटर है पलवल में, जहाँ 100 फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग हॉल है, एसी हॉल, और पूरे इंडिया में हमारे 2 कॉल सेंटर है फ्री. फार्मर उसमें कॉल भी कर सकता है और वीडियो या फोटो भी लोड कर सकता है, और उससे उसको एडवाइस मिलती है. आज कार्बन की तो मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता कि कितना कार्बन क्रेडिट होगा, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी है, आज जैसे टिलेज की बात है, या सॉइल बायोमास की बात है, या जो बायो फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं, उससे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज भी धीरे धीरे कम हो सकता है. 1 मिनट की एक वीडियो है, मैं वॉइस अगर आपकी इजाज़त हो तो सुनाने चाहूँगा कि फार्मर्स अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं आईसीआर के साथ. और धानुका की तरफ से किसान भाइयों के हित में संदेश. किसान भाइयों नमस्कार. क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी मेहनत का असली फल उन तक सही तरह से पहुंचता है या सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. ठीक है, वो आईसीआर के साथ आपका एक कोलैबोरेटिव चल रहा है. सर 1 मिनट चाहिए. मैं किसान भाइयों के हित में संदेश. किसान भाइयों नमस्कार. क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी मेहनत का असली फल उन तक सही तरह से पहुंचता है या नहीं? इसका उपाय, जब भी खरीदें, अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदें और सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि किसान भाइयों सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. जागो किसान जागो. आपके खेत की तरक्की आपके हाथों में. नकली रसायन ना खरीदें एवं इससे बचने के लिए हमेशा विक्रेता से पक्का बिल मांगें और उत्पाद पर अंकित क्यूआर कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आपका कृषि रसायन असली है. इससे आपको मिले स्वस्थ फसल, अधिक उत्पादन और ज्यादा मुनाफा. जागो किसान जागो. देखिए, जब हम किसान की प्रोडक्शन कम रिसोर्सेज में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कार्बन का एमिशन कम होगा, लेकिन आज उसको मेजरमेंट करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है. मैं एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ. 5 दिन पहले हमने मूंग हार्वेस्ट डे मनाया था पलवल में, जहाँ एडीजी पल्सेज भी थे आईसीआर के, और एडीजी एक्सटेंशन थे, डीसी लोकल और बाकी लोग भी थे, और वहाँ 36% इंक्रीज मूंग में हमारी टेक्नोलॉजी से हुआ, जबकि हमने कोई एक्स्ट्रा सिंपल सीड ट्रीटमेंट और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके 36% ईल्ड इंक्रीज की. तो आज जो टेक्नोलॉजी है हर क्षेत्र में, सबसे पहले कोई भी टेक्नोलॉजी और राइट टेक्नोलॉजी, चाहे आज विदुर प्रोवाइड कर रहे हैं या मिस्टर अनीश कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले द की रोल. और वो अभी प्रॉब्लम, जैसा माथुर साहब ने बताया, कि किसानों तक कैसे पहुँचे. आज किसानों तक टेक्नोलॉजी पहुँचाना बहुत ही एक बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है
जो हमारा एक टीएनवी सिस्टम होता था जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन आए, तो वो बहुत बहुत इफेक्टिव और कारगर था टीएनवी सिस्टम। और 2008 में उस सिस्टम की तारीफ भी की थी उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करते हुए, और उन्होंने कहा था और एक्सटेंशन सिस्टम हैज collapsed बट अवर टीएनवी सिस्टम वाज वेरी गुड एंड वी आर लुकिंग समथिंग लाइक दैट। लेकिन उसके बाद उस जैसा कोई अच्छा सिस्टम जिसमें फार्मर्स को हम टेक्नोलॉजी ले जाएं, वो नहीं हो पाया। आज कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां काम कर रही हैं, गवर्नमेंट के भी कुछ लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं। हमने मोटिवेट करने के लिए सभी केवीकेस के लिए अवार्ड रखे। अभी 5 जून को फंक्शन हुआ, उसमें हमने केबी के बेस्ट अटारी डायरेक्टर, सब बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे हम दे रहे हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो आज सबसे बड़ी चीज़ है हर फील्ड में सक्सेस। बहुत हमारे यहाँ पोटेंशियल है, क्योंकि हमारी जीडीपी पर हेक्टर 1/3 है चाइना के मुकाबले। और चाइना का फार्मर किसी ऑर्बिट या सैटेलाइट से नहीं आया, सिर्फ उसके पास टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी के कमाल से ही चाइना आज हमसे ओवरऑल जीडीपी में भी देखें तो चाइना की इकॉनमी हमसे 5-6 गुना है। तो आज वंडर जो है वो टेक्नोलॉजी है। हर फील्ड में अगर हम टेक्नोलॉजी को लाएं, चाहे सीड है, चाहे फर्टिलाइजर है, चाहे पेस्टिसाइड है, चाहे स्प्रे टेक्नोलॉजी और एनी टेक्नोलॉजी, और दिस कार्बन विच इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। तो आप अगर उसी रिसोर्सेज में प्रोडक्शन 40% 50% बढ़ाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये कार्बन क्रेडिट अर्न करने का एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात किए तो मैं वापस विदुर के पास पहुंचूंगा। एंड विदुर, अगर 5 years hence from now, we don't talk about which chemical works, we don't talk about which fertilizer or which input works, but if we talk about what is the delivery method that is going to work, the technology basically. So any thoughts on that? Thank you for the question. So again, very relevant question. मैं ये कहना चाहूँगा कि धृतिमान, this shift is actually happening today, and there is acceptability today. There are certain people who are denying it, there are certain people who are ignoring it, but there are certain agri input companies who have accepted it and who are working towards it. Agarwal Saab is sitting over here. Dhanuka is closely working with us today to deliver these services, these drone spray services to their farmers through us. Syngenta is also one of your sponsors. Cortiva is also one of your sponsors. So we are working with all of these companies. So ये कुछ कंपनियां हैं जो आज इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी को, या दे आर वेल अहेड ऑफ देयर टाइम कि टेक्नोलॉजी को, डिलीवरी मेथड को प्रमोट किया जाए ग्राउंड पे. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री इट रन्स विद फियर. Agriculture runs with fear, and there are very few companies except for the ones that I mentioned right now. बाकी लोग इस चीज़ को जितना पुश करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज दे आर फियरिंग कि आज हमने कोई भी चेंज लेके आए, हाउ डज द ट्रेड रिएक्ट, वी डोंट नो. हाउ विल आवर बिजनेस कोलैप्स, विल समथिंग गो साउथ, वी डोंट नो. So there is dire need that these agri input manufacturers or seed distributors or seed manufacturers start acknowledging the fact, even if you don't want to start, but start acknowledging the fact that the delivery method is important. And nonetheless, people or companies who started to accept it, मेरा मानना है they will be way ahead of their time for 5 years hence. And yes, for sure we will wish and hope कि ये किस मेथड से एक केमिकल को स्प्रे किया जाए वो भी साथ में प्रमोट करना शुरू कर देंगे. एंड येस, देयर इज ड्रोन स्प्रे सर्विसेज ऑल्सो. आई डोंट से दैट ड्रोन्स आर वन साइज फिट्स ऑल कि एक ही सोल्यूशन है जो हर जगह पर यूज होता है. बट देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो दैट आर देयर इन दिस ecosystem today. There is boom sprayer. I mean, we may say that it is a little drones is an advanced methodology, but there are chemicals that are sprayed better with a boom sprayer, but there are a lot of other chemicals that are sprayed better with a drone spray. So yes, definitely we should look forward to that time, and we should hope that people should say that agri wings se spray karao, and it's not just the method.
I hope we sit in the Maize summit after a couple of years and talk about this. I wish you all the best for this. Uh, you said agri runs on fear. So I'll come to Anish to to understand, if agri runs on fear, how to take off this fear. What role do you see the government, the private sector, and the research, the academia come together to play this role and enable this transition? Okay, agri does not run on fear, agri runs on hope. ठीक है, किसान जब बीज लगाता है तो वो होप करता है कि जर्मिनेट हो जाएगा, वो होप करता है कि बारिश सही समय पर आएगी, कम नहीं आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है, सही इंटरवल्स पर आएगी, कीड़ा फफूंद नहीं लगेगा, फसल जब कटने को तैयार होगी तब बारिश नहीं आएगी, ताकि जो वो तो वर्स्ट होता है ना, जो किए कराए पे पानी फिरने वाला जो हिसाब होता है वो, और मार्केट जो है थोड़ा सपोर्ट कर देगा, थोड़ा पैसा बन जाएगा उसमें. तो एग्रीकल्चर कम्प्लीटली रन ऑन होप. आई थिंक एक इंडियन फार्मर हैज़ द बिगेस्ट हार्ट पॉसिबल. मतलब आई डोंट थिंक कि इस रूम में जो भी खेती नहीं कर रहा है उसके अंदर इतने गट्स हैं कि वो हर सीजन में जा कर के नया एंटरप्राइज खड़ा करे विद ऑल द सेम रिस्क्स, विद ब्लाइंड फेथ कि सब कुछ ठीक होगा, ऊपर वाला है वो देख लेगा. कि इंडियन एग्रीकल्चर इन जनरल वही है, इंडियन एग्रीकल्चर स्पेशली वो है. मेरा आई फर्मली बिलीव सो. इसको कैसे डीरिस्क किया जा सकता है, कैसे इस होप में थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी ला करके उसको एक स्टेबिलिटी दी जा सकती है. ऑब्वियसली किसान जब लगाता है या कोई भी एंटरप्राइज, हमारे को पहले तो किसान को एक बेचारा किसान ना देख करके एक जागरूक बिजनेसमैन की तरह देखना पड़ेगा या बिजनेस वुमन की तरह देखना पड़ेगा. किसान भी खेती इसीलिए कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं से आमदनी आएगी. उसकी आमदनी तभी आएगी जब माल कहीं पे बिकेगा, उसका रेट ठीक मिलेगा, ठीक उपज होगी और ठीक रेट मिलेगा. तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट. आई थिंक अरुण ने भी ये चीज़ मेंशन की थी. वी हैव टू स्टार्ट विद द मार्केट. अगर हम लोग जो है, एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक गवर्नमेंट का एक रोल इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि आई थिंक और किसी प्लेयर के पास विजिबिलिटी नहीं है कि इस देश में कितना आलू लगने वाला है, कितना आलू का बीज बिक रहा है, कितना आलू लग रहा है. अग्रवाल साहब को मालूम होगा कि धानुका के कितने प्रोडक्ट्स बिके हैं, सुहास जी को मालूम होगा बेयर के कितने पड़े हैं. बट अगर कोई है एंटिटी जिसको मालूम हो सकता है कि कितना सीड बिका है मक्के का, वो सिर्फ सरकार हो सकती है. अभी में भी मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता होगा, बट वो मैकेनिज्म बिल्ड किया जा सकता है. वो कंट्रोल सिर्फ सरकार कर सकती है. कहीं ना कहीं पे सरकार को ये भी एक, मतलब आपको इंटरफियर भी नहीं करना है सरकार को, बट एक पॉजिटिव वे में एज एन इनेबलर एटलीस्ट अगर एक डायरेक्शन ही पास कर दिया जाए कि भाई मक्के की डिमांड जो है वो 10 लाख मीट्रिक टन की है, उसके लिए हमारे हिसाब से इस सीज़न में इतनी प्रोडक्शन होती है, मान लीजिए 5 लाख एकड़ में वो लगना चाहिए, 5.5 लाख एकड़ तक सरकार कुछ ना करे. जहाँ पर दिख रहा है कि हाँ भाई 10% से ज़्यादा एरिया लग रहा है, एटलीस्ट एक एडवाइजरी जारी कर दी जाए. ठीक है, ताकि जो किसान सोच रहा था कि हाँ आज मैं मक्का लगाऊंगा, वो एटलीस्ट जो है थोड़ा सा अवेयर हो जाए कि हाँ भाई जो जनरल एरिया था या जो डिमांड है उससे 10% ज़्यादा एरिया. एंड अगेन आई एम जस्ट गिविंग इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, आई डोंट नो व्हाट द आंसर इज, आई एम जस्ट सेइंग कि शायद दिस कुड बी अ सोल्यूशन. अब उसमें सरकार अकेले भी ये नहीं कर सकती है. जब तक प्राइवेट सेक्टर वाले पूरे सारे प्लेयर्स जो हैं वो साथ में इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक ये नहीं हो सकता. थैंक्स टू डिजिटाइजेशन आज की तारीख में ये इन्फॉर्मेशन फ्लो सीमलेस हो सकता है. अगर आप सारी के सारी जो इन्वॉइसिंग है, अगर हम लोग आज की तारीख में डिजिटाइज करके, अगर हम जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करते हैं, क्यों नहीं हम लोग, क्योंकि जितने भी इनपुट प्लेयर्स हैं जो इनपुट सेल कर रहे हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं, कोई भी अनरजिस्टर्ड प्लेयर तो हो नहीं सकता. या हम सिर्फ उनसे ये ना पूछे कि कितने रेट में बेचा, क्या बेचा, बस एक टेम्पररी ये मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई इस वैरायटी का इतना सीड गया. आप एज अ गवर्नमेंट यू आर इन अ पोजीशन टू सी कि भाई डिमांड इतनी है, इतना ट्रेडिशनली एरिया हो रहा है, दिस हैज गॉन बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट आप एक एडवाइजरी जारी कर सकते हैं. सिमिलरली अगर, बट दिस इज टू ट्रेडिशनल, मान लीजिए कि ट्रेडिशनली अगर हमारा चेंज ऑफ डिमांड अगर कुछ नहीं हो रहा तो ये हो रहा है. अब अचानक से अगर मान लीजिए भारत सरकार ने अपनी इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट जो है वो 10% से 20% कर दिया, तो दैट शुड ऑल्सो देन बी फीड इन टू द गवर्नमेंट सिस्टम.
कि जो 5 लाख टन की या 5 लाख एकड़ की जो रिक्वायरमेंट हो रही थी वो अचानक से 7 लाख की हो गई, क्योंकि डिमांड जो है वो उतनी बढ़ गई है। तो आप उसी हिसाब से मे बी एक डिमांड वाले साइड पे, अगेन दिस इज इलस्ट्रेटिव, ये इंडिकेटिव है। अब किसी ना किसी को वहाँ पर ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारे लोगों कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। डिजिटाइजेशन काफ़ी सारे एंड पर हो रखा है, उन सबको कंबाइन करना पड़ेगा। मे बी एग्री स्टैक, हम लोग डिजिटल पब्लिक गुड की बात करते हैं, डिफरेंट यूपीआई लाइक सिस्टम्स की बात करते हैं। दिस इज बेसिक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। So if someone can do that, I think there is a solution to be built over there. There is also a solution to be built in terms of जब फार्मर अपनी फसल लगा रहा है, तो आज की तारीख में वेदर का डेटा भी हमारे पास आ रहा है। एग्री एडवाइजरी जो है ऑलरेडी आईसीआर ने क्रिएट कर रखी है, बाकी इंस्टीट्यूट्स ने क्रिएट कर रखी है। हर प्राइवेट कंपनी जो सीड बना रही है या एग्रोकेमिकल्स बना रही है, दे आर डेवलपिंग देयर एडवाइजरी। जो हेमेंद्र दादा से बात हो रही थी, एंड आई विल कम बैक टू हेमेंद्र दादा, मेरा एक कंप्लेंट है तो मैं पब्लिक फोरम पे उसको करूँगा, तो बुरा मत मानिएगा। बट जैसे जो बात हो रही थी कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और डिजिटल एक्सेस आज की तारीख में इतना मुश्किल नहीं है। अब एक किसान है, अगर हमें ये मालूम पड़ गया कि उसने अपनी फसल कब बोई है, हमें मालूम है कि मक्के की ये वाली वैरायटी जो 110 दिन की वैरायटी है, अगर बारिश ज़्यादा होगी तो शायद 115 दिन खिंच जाएगी, बारिश कम हो गई तो 105 दिन में निकल जाएगी। ये मतलब रेंज यही रहना है आपका, जो फसल का रहना है उसमें। आप एडवाइजरी जो है आप काफ़ी डायरेक्टेड दे सकते हो। अभी क्या होता है, हम लोग काफ़ी ओपन एंडेड एडवाइजरी दे देते हैं। हम क्या करते हैं, किसान बीज खरीदने जाएगा, उसके साथ उसको 4 पेज का पैम्फलेट मिल जाएगा, बुकलेट मिल जाएगी कि ये करो। नहीं है इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं भी आप लोगों से बात करूं, आप लोगों को अगर कोई ऑप्शन दिया जाए, आप करोगे ना? खेती छोड़ दोगे यार, मतलब सरदर्दी का काम है। एटलीस्ट मैं जितने किसानों के साथ काम करता हूँ, सबका ये मानना है कि मतलब इतना रिस्क है और बाद में रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई फायदा नहीं है, तो कोई जना क्यों अटेंशन पे करें। एटलीस्ट हम उनको ये सहूलियत प्रोवाइड कर दें कि अच्छा 12 दिन के बाद आपको ये स्प्रे करना है। आपने आज मुझसे सीड लिया, वो तो मेरे पास आ गया, इनवॉइस जब गया, मैं मान लेता हूँ जब बारिश, और सारे मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। हमें मालूम है कि मान लो सीड जो है धान का हो सकता है किसान मई में खरीद ले, लेकिन कुछ एरियाज में होगा जहाँ हमें मालूम है कि उसको मालूम पड़ जाता है कि वो जो है वो 15 मई को नर्सरी डाल देगा। कुछ ऐसे एरिया होंगे जहाँ पर जब तक एक बूंद पानी का नहीं गिरेगा तब तक वो नहीं डालेगा। वो सारे एरिया वाइज मॉडल होते हैं। आपको बस जाकर के किसान से बैठना है, समझना है उसकी आज की तारीख में क्या बिहेवियर है, उसके बेसिस पे बैठ करके आपको एडवाइजरी क्रिएट कर देनी है। ये सारी चीज़ें जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करती हैं। मालूम नहीं आप 10-15 रुपए या 20 रुपए अगर महीना का इसका चार्ज किया जाएगा तो शायद आप लोग बुरा भी नहीं मानोगे उसका पे करने का, लेकिन वो रेलिवेंट होनी पड़ेगी और उसको एक लार्जर डेटा स्टैक से टाई अप करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम उनको ये नहीं बता पाएंगे कि यार मक्के की डिमांड इतनी है और आप लोग, क्योंकि पिछले साल आपको मक्के का रेट अच्छा मिला था, या मान लीजिए अचानक से सरकार ने जो अपना चेंज कर दिया कि नहीं हम जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग, या अगर हम लेंगे भी तो हम मक्के से नहीं लेंगे, हम किसी और क्रॉप से लेंगे, एटलीस्ट बताना तो पड़ेगा ना किसी को। वो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि नहीं भाई सरकार जो है मक्के से फोकस हटाने वाली है। इस साल कह रहे हैं कि शुगर केन का क्रॉप अच्छा होगा, तो क्या इसका मतलब है कि शुगर केन से इथेनॉल ज़्यादा बनेगा? क्या मक्के की डिमांड कम होगी अगले साल? किसी को तो बैठ करके ये चीज़ें आगे कन्वे करनी पड़ेंगी ना। नहीं तो फिर जब वही मक्के का रेट जो आज की तारीख में 21-22 रुपए चल रहा है, जब 16-17 पे आ जाएगा तो हम लोग आकर के एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि क्या हो रहा है। ये इतना कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है, बट बैठ करके साथ करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म में ही हो सकता है, क्योंकि क्या होगा ना, हम कहीं पर भी बैठेंगे तो मैं इनपुट कंपनी वाला, मुझे इनपुट बेचने से मतलब है, ठीक है। मैं खरीदने वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि भाई रेट गिर जाए, जितना सस्ता माल मिलेगा उतना ज़्यादा मार्जिन कमाऊंगा। तो वो कहीं ना कहीं पे एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। एंड पहले, सबसे पहले किसानों का दुख दर्द समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं आज की तारीख में। ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं। मुझे मालूम है राजस्थान और एमपी में बतर बनना कहते हैं, मतलब उसको डिफाइन कैसे करते हैं मुझे मालूम नहीं। आप में से कोई राजस्थान से है क्या? हाँ, आप कहाँ से हो राजस्थान से? भीलवाड़ा से। तो आपके यहाँ तो ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं होगा, ब्लैक कॉटन है नहीं। हाँ, तो वो कुछ उसका मतलब ट्रेंड होता है, मतलब मुझे अभी भी मैं आई कैंट डिफाइन इट, बट वो ये होता है कि जब पहली बारिश गिर जाती है उसके भी तुरंत बाद नहीं करते हैं, वो थोड़ा पानी सोक कर लेती है, मिट्टी जो है थोड़ी भुरभुरी हो जाती है। इट शुड बी गुड इनफ कि वो स्टिक कर जाए, लेकिन जब आप उसको फेंको तो पूरे में फैल जाए।
जब तक वो नहीं होता है तब तक जो है नहीं सोइंग करते हैं। कितना मुश्किल है ये चीज़ साइंटिफिकली डिफाइन करना, कितना मुश्किल है कि इसके अराउंड हम पूरी एडवाइजरी बत्तर बनना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रीजन वाइज सारी फिक्स्ड हैं, हमें बस इनको डॉक्यूमेंट करना है, डिजिटाइज करना है, उसके बेसिस पे सारी चीज़ों को बिल्ड कर देना है। सो मेरा ये मान कि ये सब के सब जो आशा पे काम कर रहे हैं, निराश ना हो तो हमारी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। हम लोग अगर साथ में मिल जाएंगे तो हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो आगे हमारे देश को आगे खींच लेंगे। तो आई डोंट मतलब वाज इट यूजफुल और नॉट, बट अच्छा, जो मेरी एक कंप्लेंट थी, हेमेंद्र दादा को मैं पुश कर रहा हूँ कि कल हमारे साथ चलेंगे थोड़ा अमरोहा और बुलंदशहर। मेरी बात तो मान नहीं रहे, शायद आप लोग बोल दीजिए तो शायद चले चले मेरे साथ कल। बस जी, धन्यवाद। Thanks Anish. So hope floats. There is no fear, but hope floats. No, when I said fear, I meant agri input companies operate on fear. They Okay. fear changing their policies. Thanks for putting the more nuance to it. I didn't want to go out and सारे farmer भाई मेरे ऊपर डंडा लेके चढ़ जाए. Sure. So, but very interesting thing you said, Anish, is every farmer is possibly a founder, a startup founder. So that makes India the largest founder ecosystem in the world. He or she is not just a founder. He or she is a founder who's starting a new business at least 4 months. Every 4 months. Interesting. So, so basically what you said is we need to crack the cobweb phenomena, which Arun basically described before. So, we plan for the worst, hope for the best, basically, right? So, coming back to you, Arun, you spoke about, working with 11 lakh farmers, 700 FPOs, right? So, how is NCDX supporting these FPOs to get a better post-harvest services, which kind of gives while the farmer hopes for the best, but how do they have some amount of planned future? So your thoughts. तो अगर मैं एफपीओ के एंड से बात करूं, क्योंकि ये काफ़ी पिछले 5-6 साल में काफ़ी उभरता हुआ सेक्टर रहा है, गवर्नमेंट का भी फोकस रहा है इस पर, और क्योंकि एनसीडीएक्स जो है वो एक रेगुलेटेड कमोडिटी एक्सचेंज है जो सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इसके अंदर हमने पिछले कुछ सालों में कुछ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो धीरे धीरे करके हमने पायलट्स में किए हैं। तो एक 2020 में हमने एक पायलट किया था जहाँ पे हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव्स मार्केट में ऑप्शंस करके, आई थिंक आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल ट्रेड इन एफएनओ, बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है। तो ऑप्शंस जो है वो एक प्रकार से आप ऐसे कह सकते हो इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे आप उस सौदे को एक प्रीमियम दे के, या आप इंश्योरेंस से उसको कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक भाव तय किया, उस भाव को अगर मैं उस भाव पे अपनी फसल बेचना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए एक प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन यदि बाजार का भाव बाद में उससे ऊपर चला जाता है और मैं ज़्यादा भाव पे अपनी फसल को कहीं और बेचना चाहता हूँ तो मेरा केवल प्रीमियम लगेगा और मैं उस सौदे से मुकर सकता हूँ या मैं उसको छोड़ सकता हूँ। तो इट्स लाइक एन इंश्योरेंस। सो बेसिकली इसका सरल भाषा में बताऊँ तो उसको पुट ऑप्शन कहते हैं, या पुट ऑप्शन का बायर है, यानी कि उसने एक तरीके से अपनी फसल को बेचने का एक सौदा किया है, लेकिन अगर भाव उसके फेवर में चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं बाद में, तो उस सौदे को वो छोड़ भी सकता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत समय से बाज़ारों में है, लगभग पिछले 50 सालों से डिफरेंट मार्केट्स में है। फ्यूचर अभी आज अगर मैं शेयर बाज़ार की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वो ऑप्शंस में ही होता है। उसका कमोडिटीज़ के अंदर भी जो है सेबी ने 2017 में इसको परमिट किया था। तो हमने 2020 में एक एक्सपेरिमेंट किया कि यदि इस पुट ऑप्शंस को लेकर हम एफपीओज़ के पास जाएं और हम उन्हें ये कहें कि भाई आप अपना मिनिमम प्राइस जो है वो लॉक कर सकते हो, तो क्या वो ऐसा करेंगे? तो उसमें एक अड़चन थी। वो अड़चन ये थी कि वो प्रीमियम नहीं देना चाहते। जैसे आज की डेट में भी होता है कि यार मैं अपफ्रंट कुछ पैसा 3%, 4%, 5% जो भी लगता है, तो दे वर नॉट विलिंग टू पे द अपफ्रंट मनी, अपफ्रंट प्रीमियम। तो हमने क्या किया उसके अंदर, सेबी विच इज़ आवर रेगुलेटर, सो उन्होंने हमें परमिट किया कि एक सेबी का फंड हमारे पास था, उसको हम यूटिलाइज़ करें, अराउंड 1 करोड़ का फंड था, और उसको हम एफपीओ को सब्सिडाइज करें कि वो उसको हम एज अ प्रीमियम के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एफपीओ के लिए, यानी एफपीओ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पायलट के अंदर हमने ये देखा लगभग 45 के आसपास एफपीओ ने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने सोयाबीन, मस्टर्ड के अंदर, मस्टर्ड एंड चना 2 क्रॉप के अंदर जो है उन्होंने
पुट ऑप्शन खरीदा और ये पाया गया कि उन्होंने जिस भाव पे अपने भाव को तय किया, हालांकि उन दोनों ही फसल में बाद में प्राइस बढ़ गया, तो वो ऊंचे भाव पे भी अपने माल को बेच पाए क्योंकि उन्होंने जब तय किया था उससे बाजार ऊपर चला गया, राइट। अगर भाव नीचे चला जाता तो वो मिनिमम भाव तो उनका तय था, तो समवट लाइक एमएसपी, बट यू नो मार्केट ड्रिवन, यानी एमएसपी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है तो सरकार उसका पूरा वहन करती है जो भी एक्सपेंस होता है। यहाँ पे ये मार्केट ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट था तो केवल प्रीमियम का वहन किया। इस एक्सपेरिमेंट को लेके हमने फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अप्रोच किया और हमने नाबार्ड को भी अप्रोच किया। नाबार्ड इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर प्रमोटर। सो नाबार्ड ने पिछले साल हमें इसके लिए एक 100 करोड़ का लिमिट सैंक्शन किया, जिसमें से 5 करोड़ का फंड उन्होंने रिलीज़ किया। और इस एक्सपेरिमेंट को हमने 3 और क्रॉप्स के ऊपर, जो कि स्पाइसेस में है, जीरा, धनिया और हल्दी, इन 3 का भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लिक्विड है एक्सचेंज के ऊपर, तो इन 3 में हमने उसको रन किया और उसके अंदर हमने ये पाया कि लगभग 80 एफपीओज ने 20,000 टन के आसपास जो है क्रॉप, तीनों क्रॉप जो है उसको इस प्रकार से रिस्क को मिटिगेट किया। और ये पाया गया कि जैसे हल्दी में कुछ किसानों ने या एफपीओ ने जो है किसानों के बिहाफ पे 16,000 के भाव में हल्दी का एक तरीके से प्राइस को लॉक किया, और जब फसल आई तो भाव लगभग 12-13 हज़ार के आसपास आ गया। तो उनको, क्योंकि भाव नीचे भी आ गया तो भी उनको नुकसान नहीं हुआ और उनको ऊंचा भाव मिला। कुछ क्रॉप्स में जैसे ये जीरा के अंदर हुआ, उन्होंने 22,000 के अंदर लॉक किया लेकिन भाव बाद में 23-23,500 हो गया, तो वो ऊंचे भाव में माल बाहर बेच पाए। तो एक तरीके से उनका मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो लॉक हो गया। अब इसको हम, क्योंकि एक पायलट हो गया है, तो अगले साल इसको और बड़े स्केल पे करने जा रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मक्के के केस में भी हमने देखा कि वन ऑफ द सीड कंपनी, वो या रादर इनपुट कंपनी, नॉट एग्जैक्टली सीड, सो वो अपना एक नया प्रोडक्ट बाजार में लेके आए थे। तो उनके साथ हमने उनको हमने ये कंसेप्ट समझाया, तो उन्होंने क्या किया, कुछ एफपीओ के साथ टाई अप किया और ये बोला कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो हम आपको एक मिनिमम प्राइस गारंटी करेंगे, एंड दैट प्राइस दे गारंटीड थ्रू पुट ऑप्शंस। तो उन्होंने एफपीओ के बिहाफ पे पुट ऑप्शंस मक्के का परचेज किया, एंड दे सेड कि जितना हमारा सीड बिका उससे जो क्रॉप आने वाली, थोड़ा एस्टिमेशन था उसमें, उतना हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे, उसका प्रीमियम हम पे करेंगे। तो अगर बाजार बाद में गिर भी जाता है तो ये मिनिमम भाव हम आपको गारंटी कर रहे हैं। सो एज यू नो एवरीबडी वर डिस्कसिंग अबाउट कैन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कम टुगेदर एंड प्रोवाइड सम सॉल्यूशंस। आई थिंक देयर आर एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस, इट इज ओनली अबाउट गेटिंग टुगेदर एंड utilizing the existing solutions for the betterment of the the farming community. So ये कुछ चीज़ें जो हमने की। इसके अलावा हमारे एंड पे हम लोग ये भी करते हैं कि कोई एफपीओ अगर एनसीडीएक्स में अपने फसल को बेचता है, या फसल जैसे मान लीजिए वो ये कंपेयर करता है सीजन में कि मुझे ज़्यादा भाव कहाँ मिल रहा है, मंडी में मिल रहा है या एनसीडीएक्स में मिल रहा है। तो अगर एनसीडीएक्स में मुझे ज़्यादा भाव मिल रहा है तो अपनी क्रॉप को एनसीडीएक्स में बेचता है और फिर वो माल को डिपॉजिट भी कर सकता है। तो ऐसे केस में अगर वो माल को डिपॉजिट करता है तो उसमें हम उसको सब्सिडाइज भी करते हैं। सेबी, ऑफ कोर्स दिस इज मैंडेटेड फ्रॉम सेबी, तो हम उसके अंदर उसका जो वेयरहाउसिंग चार्जेस हैं, जो उसका टेस्टिंग चार्जेस है, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम उसको सब्सिडाइज करते हैं, ताकि वो धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस काम को स्वयं कर पाए। तो इस प्रकार से एफपीओ हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं अलग अलग फसलों के अंदर, अलग अलग कमोडिटीज़ के अंदर। और जहाँ जहाँ जिन कमोडिटीज़ के अंदर वो काम कर रहे हैं, हम उनसे मिलते हैं तो डेफिनेटली दे ऑलवेज फील दैट दे आर रियलाइजिंग अ बेटर प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर टू जो उनको बाहर के बाजार में मिल रहा है। तो I think that is what the experience that we have working with the farmer and FPO. And I think as I started by saying that if I get a better profit, probably they will invest in their crop and they will definitely productivity will improve, and they will take a better solutions, and that is a win-win for everyone. So I'll end there. Thanks, Arun. This is the example that you gave about this put option is actually the out of the box solution that Mr. Mathur spoke about earlier. So Dr. Singh, we spoke about productivity, profitability, people and the planet in the last hour or so. Any last, and partnerships also, yes, all the sustainable development goals. Dr. Singh, any last thoughts? But before the last you also should tell something about your value chain management, what your company is doing, how you are managing that. Cargill is a big in cereals and all. Yeah, so possibly that's for some other day, because I think we are waiting, we are between the dinner and this thing, so I think dinner
must be coming from your brain, from your warehouses. So just 2-3 minutes. Sure. Yeah, we are the largest trader in corn globally, and we originate corn across the world. In India, we actually doing regenerative farming across 25,000 acres with about 10,000 farmers. So we are trying to build a carbon credit into that also, trying to create less water, farming and less tillage, those kind of things. Um, Technosa was supposed to be here today. They could not come, but they are our partners on the ground. So we actually use the corn for starch manufacture and also to supply to the ethanol industry. So we are strangling both the industries, food as well as energy. So yeah, that's the value chain we are creating in India. And what about aflatoxins? How you are managing that? So that is the Shishti program, regenerative program that we have started. So in North America, we have about 10 million acres under regenerative cultivation. And we thought we will take that technology that we are doing there and bring it to India so that we introduce this to Indian farmers. And we hope that over the next couple of years, these 25,000 acres will grow and more maize farmers will take this approach. थैंक यू. सो देखिए सभी लोग बैठे हैं, बस ये है कि वो सबको मिलाने की बात है ना, पार्टनरशिप की जो बात कर रहे थे, तो दिस इज़ देयर. अगर जितने हमारे डिस्टिलरी के यूनिट्स हैं या जो स्टार्च यूनिट हैं, अगर इस तरह से पूरा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करके अगर आप बिना एफ्लाटॉक्सिन के मेज़ उनके लिए आप वैल्यू चेन बना सकते हैं, तो वहाँ पे आप किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट की बात. अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, सोचे टाइम अगर 1 मिनट में बता देते हैं. एक केनिया के हैं, ये इंडिया के ही हैं, केनिया में बसे हुए हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट का यूज़ करके इथेनॉल सप्लाई कर रहे हैं. कम से कम उनके पास 3 लाख कस्टमर हैं जो कि गैस वाले जो चूल्हे हैं ना, उसी तरह के उनके इथेनॉल के चूल्हे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो लोग लकड़ी जला के खाना बनाते थे तो बहुत ज़्यादा कार्बन उसमें एमिशन था. उसको मिटिगेट करने के लिए इन लोगों ने अपना खुद का डिज़ाइन करके इथेनॉल के बर्नर्स और इथेनॉल का, जैसे यहाँ पे एटीएम है वैसे उनके इथेनॉल एटीएम्स हैं, और वहाँ से वो इथेनॉल लेके आते हैं, उसको चलाते हैं, और इट इज़ हाईली सब्सिडाइज्ड बिकॉज दिस कंपनी, ये कंपनी जो है वो खुद उससे कार्बन क्रेडिट जनरेट करके उससे अपने आप को सब्सिडाइज कर ली. तो दैट काइंड ऑफ थिंग. 3 लाख कस्टमर हैं उसके पास आज की डेट में. तो सच थिंग्स आर देयर. वैसे एग्जाम्पल हैं, तो क्या हम लोग को कार्बन क्रेडिट का यूज़ करके आने वाले समय में इथेनॉल के में या कहीं से भी समथिंग लाइक दैट कुछ करना पड़ेगा. आपकी भी कंपनी जैसे है बिना एफ्लाटॉक्सिन का, या जैसा अगर आप मेज़ इस तरह से करते हैं, वेयर हाउसिंग का पूरा चेन करते हैं, उसमें कहाँ कार्बन क्रेडिट से आप सब्सिडाइज कर सकते हैं. ये सारी चीज़ों को आगे हम लोग को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक जो अभी इथेनॉल का रेट है और जो अभी मिक्सिंग का रेट चल रहा है या जो भी दाम है, आप तेल के दाम से अब ऑलमोस्ट मतलब अब बहुत ज़्यादा उसमें ऊपर नीचे करने का आपका बहुत वो नहीं है ऑप्शन. और अगर तेल का दाम सस्ता होता है तो वो जो डिफरेंस है उसको कहाँ पे आप किस तरह से मिटिगेट करेंगे, कहाँ पे जाएगा, वो सोचने वाली बात है. उस पर हायर लेवल पे भी बातचीत चल रही है. लेट अस सी कहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं, कैसे बैलेंस बनता है. सो आज आप देख रहे हैं कि सभी हमारे जितने यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सभी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं. बस उनको एक दूसरे के साथ मिल के कोलैबोरेट करके इंटीग्रेट करके काम करने की ज़रूरत है. तो हमें लगता है बहुत अच्छा सेशन रहा है. हमारे किसान भाई भी इसको सुने हैं, देखे हैं, बातचीत में आप लोग भाग लिए हैं. तो आने वाले समय में ऐसा कोई एडॉप्शन का आपके पास पहुंचता है ऑफ़र, NCDX में आप अपना सामान बेचने की बात हो, चाहे कार्बन क्रेडिट क्रिएट करने की बात हो, चाहे किसी भी तरह की, तो वहाँ पे आप लोग का भी सहयोग मिलना चाहिए. जो अभी इधर बात हो रही थी कि क्वालिटी इनपुट का अभी जो कर रहे थे ना कि गवर्नमेंट पता लगाए, गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है, तो गवर्नमेंट ज़रा सा पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि 600 करोड़ रुपया का HT कॉटन फर्जी तरीके से बिक गया बाजार में.
जिसका कि ना तो कोई रसीद है ना तो कोई हिसाब किताब है, कौन बेच गया, कहाँ प्रोड्यूस हुआ, अब उसकी ट्रैकिंग हो तो कहीं ना कहीं पे परेशानी होगी। तो इसलिए तो अब एच टी कॉटन का सीड बिका है तो निश्चित ग्लाइफोसेट का उपयोग भी बढ़ेगा और तो आपका जो कार्बन का और कार्बन क्रेडिट का और पेस्टिसाइड का लोड कम करने की बात है वो सब धाराशायी हो जाए। तो गवर्नमेंट के साथ और भी बहुत सी चीज़ें होती है। एमएसपी है आपका, मिनिमम गारंटी की जो बात करते हैं, चाहे एनसीडीएक्स पे बेचना हो चाहे एमएसपी पे, एक एफएक्यू की बात होगी, फेयर एवरेज क्वालिटी का ही सामान उस पर बिकेगा, आप भी वही लेंगे। होता क्या है कि जब आप एमएसपी पे किसान बेच आता है मंडी में लेके, तो उस समय किसी में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, किसी में एफ्लाटॉक्सिन ज़्यादा है, किसी में कुछ, तो वो सारी चीज़ें बिकती नहीं है, तो उससे दिक्कत होती है। उनके मार्केटिंग, उनके वैल्यू चेन, उनके हैंड होल्डिंग, उनका गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इन सब की बात जब इंटीग्रेटेड रूप में होगी ना, तो फिर ही जाके कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि सभी जो हमारे किसान भाई हैं उन तक अच्छे से अच्छा सामान पहुंचेगा और इंडस्ट्री को भी इनपुट्स अच्छा पहुंचेगा और उधर से जो प्रोडक्ट आएगा वो भी बेस्ट क्वालिटी का इंडस्ट्री को मिलेगा। तो इस सेशन के सक्सेसफुल डिस्कशंस के लिए आप सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत थैंक यू। Thank you, Dr. Singh. Any questions from the audience? Hello. I have one question to Dr. P.K. Singh. Yeah. Hello, sir. I am from Godrej Agrovet, Mumbai. सर मैं ये जानना चाहता था, राइट नाउ गवर्नमेंट का जो मैंडेट है E20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का, आई थिंक दिस ईयर वी आर ऑलमोस्ट रीच 19.8% एंड वी आर गोइंग टू अचीव दैट 20% टारगेट। सो उसके आगे गवर्नमेंट का कोई प्लान है टू गो फॉरवर्ड विद 30% ब्लेंडिंग इन फेज्ड मैनर? उस पर आप कुछ इसके लिए बातचीत चल रही है, उसमें सियाम का भी बहुत बड़ा रोल है ना, जो आपके व्हीकल्स हैं उसका इंजन क्वालिटी, उसमें किस तरीके के, दूसरा भी एक ऑप्शन जो फ्लेक्सी फ्यूल्स का चल रहा है, E85 का जो है फ्लेक्सी फ्यूल का, वो भी एक चल रहा है। बट कितना जल्दी हम ये जो एमिशन नॉर्म्स हैं BS6 कैन नॉट टेक मच बियॉन्ड E20, तो उसके लिए कैसे टारगेट फिक्स करेंगे, कितनी गाड़ियाँ आप पुरानी हटा, देख तो रहे हैं यहाँ पे पॉल्यूशन के नाम पे गाड़ियाँ हटने लगी तो कितना हल्ला। तो अभी E20 के जो पुराने आपके हैं ना गाड़ियाँ, उसमें अगर E20 के बियॉन्ड जाते हैं तो बहुत बढ़ा पाएंगे, तो 1-2% हमें लगता है वो सस्टेन करेंगे, नहीं तो सारे इंजन जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। उसका जो आपका क्या ऑक्टेन नंबर नहीं, क्या होता है इसमें जो नंबर जो होता है 91 ऑक्टेन, हाँ ऑक्टेन का जो नंबर है ना वो मैच नहीं करता है इन गाड़ियों से। तो लेट अस सी हाउ वी प्रोसीड। आ जाएगी पॉलिसी, जल्दी ही आ जाएगी। या थैंक यू सर। Sir, The lady in the back, yeah. Yeah, so since this afternoon there is so many conversation about the aflatoxin here, so I just wanted to understand, and within India I have seen that like institutions like ICRISAT and CIMAT, and there are many such institutions which is working on extensively on aflatoxin detection and also management. So my question is to Dr. Singh that while you are making policies, while government is like extensively working with farmers, FPOs and all, so far I have not seen that that extension of aflatoxin detection and management at the farmers end. So what are your plans to take it forward? And certainly capacity building of farmers and awareness is much needed in this field. So what are the plans of the government? दो तरह के एफ्लाटॉक्सिन की प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर एक काफ़ी डिस्कशन करके पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, जिसका कि हर स्टेट के हर ज़िले तक के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स तक को ट्रेनिंग दे दी जा चुकी है कि किस तरीके से हैंड होल्डिंग करना है किसानों की। उसमें है क्या, दो तरह का, एक तो आपका जो ग्रेन से सीधे आ रहा है एफ्लाटॉक्सिन, एक तो वो हो गया। दूसरा जो है जब वो DDGS में जा रहा है, वो ग्रेन कहाँ जाएगा अभी वो डिसाइड नहीं है। तो एक तो आपको मंडी के लेवल पे डिटेक्ट करने की बात है,
उसके सैम्पलिंग प्रोसीजर के लिए TNAU को एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि हाउ मच सैम्पलिंग शुड बी देयर। अगर 100 लॉरी रोज या 100 ट्रक रोज आपका मक्का आ रहा है तो उसमें कहाँ से आ रहा है, किस जगह ओरिजिन नहीं ट्रेस हो पाता है, तो उसको किस तरीके से आप कितना सैम्पलिंग करेंगे, क्योंकि हो सकता है एक ट्रक जो है गन्ना, एक ट्रक जो मक्का है उसमें कम से कम 50 किसानों का हो, उसमें से 10 किसानों के पे अगर एफ्लाटॉक्सिन था, बाकी के 40 के पे नहीं था, बट नाउ इट इज़ उस एक की वजह से आपका वो क्या सैम्पलिंग हो, कितना उसमें एफ्लाटॉक्सिन है, किस उसका डिटेक्शन, वो फिर जब आपका इथेनॉल होगा उसके बाद DDGS में उसमें से कितना ट्रांसमिट होगा और उसका क्या होना चाहिए, किस तरीके से सैम्पलिंग हो, कहाँ पे जाए, इसके ऊपर काम चल रहा है, रिसर्च ऑन है। बाकी हैंड होल्डिंग कि कम से कम एफ्लाटॉक्सिन्स हों, किस मॉइस्चर पे उसको हार्वेस्ट करना है मक्के को, किस तरीके से उसको सुखाना है, वहाँ पे और क्या कर सकता है, किस कीड़े लगे हैं तो कैसे उसको रोकना है, वो सारा ये IIMR के साथ मिलके पूरा इसके ऊपर एक गाइडलाइन जारी करी है एफ्लाटॉक्सिन्स और फॉल आर्मीवर्म दोनों के लिए। बिल्कुल काफ़ी लेवल पे ट्रेनिंग की गई, कम से कम 6000 लोगों को ट्रेन किया गया है। अब ट्रेनर्स ट्रेनिंग तक हो चुकी है एंड देन वी आर थिंकिंग हम लोग उसको किसानों तक ले जाने की, किसानों तक पहुंच हो वो सब चीज़ों की, वो एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से इतना बड़ा पॉपुलेशन है किसानों का, बिल्कुल सही है। दिक्कत क्या है ना कि किसान जानते हुए भी कई बार, मान लीजिए बिहार में किसान मक्का हार्वेस्ट किया अभी खरीफ या रबी के बाद, हैं वो सड़क के पे सुखा रहा है, घर के बाहर सुखा रहा है, बरसात हो गई, अब उसमें एफ्लाटॉक्सिन बन जाता है तो वो किसान भी कुछ नहीं कर पाता है, उसकी भी मजबूरी है ना, क्योंकि भीग गया एक बार तो कुछ भी हो सकता है, उसमें फंगस ग्रोथ हो गई, कहीं पे हीप लगा के रखा है, रात को बारिश आ गई, कहाँ तक सुखाएगा। तो किसान के साथ जो अभी बात कर रहे थे ना कि किसान के साथ जब तक जोड़ के वहाँ देखो उसकी, तो वो पूरे गांव की समस्या नहीं होगी, 1 2 3 किसान के यहाँ हो सकता है ऐसा हो जाएगा, है ना। ये थैंक यू। I have a query. Hi, my name is Arab Khan, and I am from the drone manufacturing side. So I'm from the industry background. And actually, my question is to Mr. Joshi here. A couple of months back, I was really worried with this, the climate change in action. So I just thought of, I strongly believe in destiny, and today here I am in front of Mr. Joshi. So what has happened is I'm already working on creating an app which can actually identify, geotag a tree, and so I just want to go ahead and I have allocated a land of mine to plant trees. So basically I'm taking my personal initiative to to grow this tree in my, I've already planted over 500 trees. But I want to understand, like, in order to encourage more youth to get involved in this, or anybody to involved in this, so the idea was to like whatever CO2 we immerse, on a personal level, anybody can register on our platform, and then we suggest them that okay, you should plant X number of trees, and in order to do so we will take care of that entire vertical. So that was the idea I was really thinking on, and I was trying to figure out how to work this. My AI based algorithm app is already under process. So today here I am here, so I want to understand is this tree initiative will help in this carbon credit thing or not, I don't know. I just want to also connect the business aspect to it, because as long as you are depending on CSR or public fund, it's not going to be successful. So I would require your little bit of suggestions, how I can make it more successful or implemented on a large scale. देखो जोशी जी जवाब दें उसके पहले एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर दें। ये जो एक सर्टिफिकेट दिए हैं ना, इसमें मेरे नाम पे 5 ट्री कहीं पे लगा हुआ है सिक्किम में जी। फिक्की को इस पे काम करके देखना चाहिए कि कितना कार्बन क्रेडिट उस पे जनरेट हुआ, whether we have generated something carbon credit or not. Absolutely, आपने जो शुरुआत किया है that is good, and you can definitely generate carbon credits from that initiative. But the market का response जो रहता है individual level पे, सिंह साहब appreciate करेंगे मगर not everyone would appreciate that. So individual level पे people's willingness to pay for carbon credits is not so encouraging. Corporates, yes, they would pay for it. So target कीजिए corporates के लिए carbon credit generation,
एंड स्केल थोड़ा आप बड़ा कर सकते हैं बिकॉज देर आर नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन कार्बन क्रेडिट जनरेशन. आपको मेजर करना है, आपको रिव्यू करना है, आपको रिपोर्ट करना है, आपको प्रोजेक्ट रजिस्टर करना है, एंड दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट. Yes. वो कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए स्केल थोड़ा बड़ा होना चाहिए. देन So I would like to connect with you offline and get more knowledge sure, on sure, this we one. can talk. Because one of the angles which I was thinking is, you know, getting an orchid involved in it. जैसे आम के बगान मेरे पास खुद के बहुत, I mean I have a lot of mango orchids. So you know, getting involved in, just need your suggestion and guidance how it can be implemented. Definitely, we can connect offline. Mr. Joshi is here for the dinner, and so Yeah. you can also join. Yeah, So thank you. I think we are standing between Thank people you, and the sir. dinner. So thank you so much, everyone, and FICCI, thank you so much for giving us this platform to talk and discuss about sustainability. So thank you, and please join us for the dinner. Thank you. Thank you, sir. But I would like to request you to please remain seated. We are starting with our session of Farm Voice segment. हमारे किसान भाई बहन हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज उनकी एक सफलता की कहानी उनसे सुन रहे हैं. मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूंगी पूर्णिया बिहार से श्री अखिलेश सिंह जी को. इन्होंने 55 क्विंटल प्रति एकड़ की शानदार उपज प्राप्त कर पूर्वी भारत में मक्का खेती की दिशा को नया आयाम दिया है. अखिलेश सिंह जी. जी, मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह हुआ. मैं पूर्णिया जिला अंतर्गत एक छोटा सा गांव, बिहार प्रांत के पूर्णिया जिला अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, वहां से मैं आया हूं. और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतने छोटे से गांव से मुझे लाकर इस मंच पर सम्मानित किया गया. इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. मक्के पर बोलने के लिए मुझे लाया गया सर. जब हम लोग खेती शुरू किए थे तो 20-22 कुंटल प्रति एकड़ हम लोग उपज लेते थे, तो समझते थे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है. लेकिन प्राइवेट कंपनी का जो सीड आया और उसका जो उच्चतम गुणवत्ता रहा, और दूसरे तरफ प्राइवेट सेक्टर के साइंटिस्ट या गवर्नमेंट के साइंटिस्ट, प्रत्येक साल हम लोगों को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है इस संबंध में कि कैसे कितना बेसल में खाद डालना है, कब हर्बिसाइड देना है, कब इंसेक्टिसाइड देना है, और कब उसमें पानी देना है, सिंचाई देना है. तो इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिला. और बीज के सर्वश्रेष्ठता के कारण अभी हम लोग 50 से 55 कुंटल कोसी सीमांचल में मक्का का उत्पादन ले रहे. ये सामान्य उत्पादन है सर. वहाँ एक ड्रॉबैक है हम लोगों के साथ, जो बंगाल की खाड़ी हम लोगों को नज़दीक पड़ता है और उसका मार, प्राकृतिक मार हम लोगों को झेलना पड़ता है. दूसरी बात सर, यहाँ पर ये है और एक दिक्कत है कि कोई सॉइल टेस्ट हम लोगों के यहाँ नहीं है, कोई वाटर टेस्ट नहीं है, कोई फसल का इंश्योरेंस नहीं है. लेकिन अगर ये सब चीज़ में प्रगति होता है, एक सर थे बहुत पूर्व यहाँ बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे जो कि 47 तक हम लोगों को तो उत्पादन 10 इसका करना है डबल. मैं कहता हूं सर, कोसी सीमांचल की बात मैं कर रहा हूं कि आप हमको 35 तक का समय दीजिए. जितना जो हम लोगों के साथ दिक्कत है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं. मैं 100 कुंटल प्रति एकड़ दूंगा उपज. 47 तो बहुत लंबी अवधि हो गई सर. हम 100 कुंटल देंगे प्रति एकड़. अभी कोसी सीमांचल मक्का का बहुत बड़ा हब है. मेरे समझ से शायद इंडिया में उतना बड़ा हब नहीं होगा जितना वहाँ पर है. 100% जमीन में 90% पे मक्का की खेती होती है. 33-55 सर एक सीड आया था, वो हम लोगों के जीवन में मौलिक परिवर्तन लाया, जो हम लोग इतना उपज क्षमता बढ़ाए. अभी 35, 26, 35, 32 पूरा धूम मचाए हुए है. 50-55 कुंटल सामान्य प्रत्येक व्यक्ति को हो रहा है उपज. तो हम लोग आप लोगों से यही हमारी गुजारिश है
जो हम लोगों के साथ जो कठिनाई है उसको अगर थोड़ा दूर कर दिया जाए तो हम भरपूर उत्पादन आप लोगों को देंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद अखिलेश सिंह जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भीलवाड़ा राजस्थान से श्री उज्जवल शर्मा जी को। श्री शर्मा ने मक्का की उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर 42 क्विंटल प्रति एकड़ की उत्कृष्ट उपज प्राप्त की है। श्री उज्जवल शर्मा जी। मैं सर भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ और मक्का की खेती करता हूँ। सोयाबीन की करता था, लेकिन सोयाबीन में सर काफ़ी समय से पैदावार कम हो रही है और इतनी इनकम नहीं मिल रही। लेकिन अभी भी सर काफ़ी पीछे है। 20% किसान अच्छा कर रहे हैं, बाकी 80% नहीं कर रहे। उसके कारण ये है कि सारी जानकारी का अभाव है और बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे बीमा है, तो बीमा जैसे फसल ख़त्म हो गई तो उसको वास्तविकता में मिलता भी नहीं है। बाकी रहा बीज का सवाल, तो बीज काफ़ी अच्छा भी है, गवर्नमेंट वाला भी अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर वाला भी अच्छा है, लेकिन सर वास्तविक स्थितियाँ काफ़ी परे है, जिसका सामना करना बहुत मुश्किल है। तो सर अच्छा कर रहे हैं, पैदावार मेरे हो रही है लेकिन दूसरों के नहीं हो रही है। तो उस पर सर वहाँ जाके लोगों को जागरूक करना। और पहले क्या है, जैसे अभी सर बता रहे थे कि टीवी पे दूरदर्शन, तो वो सर टीवी आज बंद हो गया। तो सर फ़ोन पे ऐसी कोई सुविधा हो, जैसे सर अभी बता भी रहे थे, तो सारी सुविधाएं मिले, बस। धन्यवाद। धन्यवाद उज्जवल शर्मा जी। अब अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अमित सोलंकी जी को। इन्होंने पेयर्ड रो सिस्टम, बीज ड्रिल और खेत तैयार करने की उन्नत विधियों को अपनाकर आदर्श खेती का प्रदर्शन किया है। अमित सोलंकी जी। धन्यवाद। आदरणीय समस्त मान्यवर प्रतिनिधिगण एवं किसान भाइयों, नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार सोलंकी, मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला के चौरई तहसील के गांव खिरखिरी का रहने वाला हूं। मैं हमारे यहाँ खरीफ के मौसम में मक्का प्रमुख फसल है। मेरे 40 एकड़ में खेती करता हूं, जिसमें 25 एकड़ में मक्का की खेती करता हूं, 15 एकड़ में गन्ने की खेती तथा रबी के सीजन में गेहूं, चना, आलू और मूंग की खेती करता हूं। मैं विगत 10 वर्षों से मक्के की खेती कर रहा हूं। औसतन हमारे यहाँ 25 से 28 कुंटल प्रति एकड़ एवरेज आता है। मैं हर समय मक्का की उपज बढ़ाने के लिए प्रयास करता हूं। इस मक्का की उपज बढ़ाने के लिए मैंने मैन रेज रोड पेयर्ड प्रणाली, यांत्रिकी बुआई तथा उच्च उत्पादन देने वाली हाइब्रिड किस्मों का उपयोग किया है, जिसमें एडवांटा कंपनी की 741, 759 मक्का का उपयोग करके 4 से 5 कुंटल का एवरेज और बढ़ा है। पिछले 2-3 वर्षों से औसत से अधिक हमारे यहाँ वर्षा हो रही है, फिर भी हमारे यहाँ रेज वेट पेयर्ड प्रणाली, यांत्रिकी बुआई के द्वारा उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया गया है, क्योंकि उससे अतिरिक्त पानी की निकासी खेत से हो जाती है और फसल को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। हाल के वर्षों में हमारे यहाँ फालार्मी वर्म, उगता रोग, तना सड़न रोग जैसे कीट की समस्या हुई है, मगर समय पर प्रबंधन करके उनको नियंत्रित किया गया है। हमारे यहाँ मक्का की फसल में सबसे प्रमुख खरपतवार नाशक रोटोवेरिया मतलब भर्रू खरपतवार है, जिसकी समस्या किसानों को अधिक उठाना पड़ रहा है। वो कोई भी खरपतवार उस पर करते हैं तो उसको नहीं ख़त्म कर पाता है, तो जिसके लिए हमें एक प्रभावी खरपतवार नाशक की आवश्यकता है, ताकि हमारी मक्का की पैदावार और अधिक बढ़ सके। हम उच्च उत्पादन वाली मक्का की हाइब्रिड किस्में उगा रहे हैं, मगर हमें समय पर खाद्य प्रबंधन और खाद की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। मेरा आज इस कार्यक्रम से यही अपेक्षा है कि किसानों को खाद्य प्रबंधन, खाद के विकल्पों की बेहतर जानकारी मिले, ताकि हाइब्रिड किस्मों से उनकी उत्पादन की क्षमता के अनुसार उपज प्राप्त की जा सके। कार्यक्रम में आमंत्रण देने के लिए
सभी भाइयों को मेरा सादर धन्यवाद। धन्यवाद। आपका जो रोटबोलिया मैंने किसान भाई सुधांशु मेरा नाम है, इधर एक सेकेंड इधर, मैं बायर कंपनी से हूँ। मैं आपका एग्रोनॉमिक सिस्टम मैनेजर हूँ, इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका देखता हूँ। ये जो रोटबुलिया मैनेजमेंट के लिए अभी आप अगले नेक्स्ट खरीफ में आपके पास एडेंगो बोल के एक दवा आएगा, खरपतवार नाशक, उससे आपका रोटबुलिया सेटरिया जो हार्ड टू किल जितने भी वीड्स हैं इसका निदान हो सकेगा। ठीक है, ठीक है। अभी बाहर इस सीजन में है उसका ट्रायल। अभी बाहर इनका नंबर ले लीजिए, इनसे कांटेक्ट करके कराइए। धन्यवाद सोलंकी जी। With that, we now bring the FICCI Maize Summit 2025 to a close. A heartfelt thank to all our esteemed dignitaries and guests once again for gracing the occasion. I request all the esteemed panelists to stand up for a group photograph. We are requesting all the farmers to come on in the front. We can have a group photograph with you all. आज मेज समिट के आप ही स्पेशल गेस्ट हैं। Thank you, everyone. This concludes today's session. Please join us now for dinner and cocktails in the hall. Thank you so much.